Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan, 1 to 10. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other colleagues, Sri Ravishankar Prasad ji, Srimati Smriti Subin Irani ji, Sri Dharmendra Pradhan ji, Sri Santosh Kumar Gangwar ji, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Hardeep Singh Puri ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, General Retired V.K. Singh ji, Sri Dhotre Sanjay Shamrao ji, Sri Nityanand Rai ji, I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial numbers 1 to 10 in today's list of business. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce. Sri Jugal Sinha Mahadurji Lokhandwala. आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही में मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधी वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 159वां और 160वां प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. Professor Ram Gopal Yadav. Hanumantaya ji. Yes. Dr. L. Hanumantaya. Sir, with your permission, I rise to present a copy of the 128th report on demands for grants 2021-22 of the Ministry of Ayush in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Industry. Dr. K. Keshwarao. I rise to present the 304 to 307 reports of the Department Interrelated Parliamentary Standing Committee on Industry as listed against my name. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri T.G. Venkatesh. Honorable Chairman, sir, I rise to present the following report both in Hindi and English of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 291 report on demand for grants to 21-22 of Ministry of Civil Aviation. Thanks, sir. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Agriculture. Srimati Chaya Verma. सर, आपकी अनुमति से अपने नाम के आगे 2021 और 22 के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग का 27वां और 28वां अनुदान मांग की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में आपके टेबल पे रखती हूँ। धन्यवाद। Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Chemical and Fertilizer. Sri G.C. Chandrasekhar. Sir, I rise to lay the Hindi and English version of the 7 reports of the Standing Committee on Chemical and Fertilizers as listed against my name in the today's business, sir. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on External Affairs. Srimati Jaya Bachchan. I raise to lay on the table a copy in English and Hindi of the English report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs on the demands for grants of the Ministry of External Affairs for the year 21-22. Thank you. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Urban Development. Sri Sushil Kumar Moji. So I rise to lay the 6th and 7th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Urban Development listed against my name in today's list of business. Statement of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Urban Development. Statement bhi hai. Sri Sushil Kumar Modi ji. Sir, I rise to lay the reports of the Standing Committee on Urban Development listed against my name in today's list of business. Statement of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes. Srimati Kanta Kardam. जी सर, धन्यवाद। मैं अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति के 22वें प्रतिवेदन 16वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। Honorable members, I have to inform the members that a letter has been received from M.V. Shreyams Kumar, member stating that he is not able to attend the sitting of the House from 8th March to 8th April due to personal reasons.
He has therefore requested for grant of leave of absence from 8th March to 8th April during the second part of the ongoing 253rd session of Rajya Sabha. Does he have the permission of the House for remaining absent 8th March to 8th April during the second part of the ongoing session of Rajya Sabha? Okay. Permission to remain absent is granted. Zero the Ram Vichar Netam जी धन्यवाद सर, आपका आभारी हूँ मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया है। महोदय, महामाया शक्कर सहकारी कारखाना मर्यादित केरता जिला सूरजपुर में स्थापित है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है तथा कारखानों को चपत भी लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दूसरे शक्कर कारखाना में मोलासीस 6500 प्रति टन से लेकर के 7000 प्रति टन के दर से विक्रय किया गया। वहीं महामाया शक्कर कारखाने में बिना निविदा आमंत्रित किए 5500 की दर से भ्रष्टाचार कर अपने चहेते फर्म को मोलासीस बेच दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 33 रुपये प्रति किलो की दर से शक्कर बेचने का दर तय किया गया है, जिसमें बगैर निविदा के भ्रष्टाचार कर कम कीमत में शक्कर बेचा गया, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। महोदय, इस संबंध में मैंने लगातार पत्राचार भी किया। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद वहाँ तमाम तरह का आंदोलन भी हुए, इसके बावजूद अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से वहाँ बड़े पैमाने पर वहाँ गन्ना के परिवहन से लेकर के और मनमाने तरीके से नियुक्तियां करने का जो प्रकरण सामने आया है, इस बारे में मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इसकी विस्तृत जांच कर इसमें दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीमती जर्ना दास वैद्या। Thank you, sir. My zero hour is rising prices of LPG cylinder. Sir, my zero hour relates to the concern over the price of hike of subsidized and non-subsidized domestic gas cylinder by the oil companies is unjustified and will not be intolerable burden on people already suffering from price rise. The price of LPG has been hiked again. The fourth upward revision in just 4 weeks has made the cooking gas refills dearer by rupees 125 each for households. Since February, cooking gas rates in Delhi have been hiked for the 4th time. The prices were first hiked by rupees 25 on February 4 and then by rupees 50 on February 14. On February 25, the price were once again hiked by rupees 25. The finance minister claimed that 8 crores connections were provided under the Ujjwala Yojana, and this coverage expanded by the additional 1 crore connections. Further, the direct benefit transferred to LPG companies for providing subsidized connection or free connections under the Ujjwala scheme has been slanted by about 52%. The cardback in the entire LPG subsidy amounts to 60%, and even the existing subsidies are not reaching the bank accounts of the beneficiaries. So free connections loses its meaning. For a poor family, it is impossible to bear this cost. This is a matter of serious concern. This will affect health and the food security of women
Hence, this must be placed and discussed in Parliament. Thank you, sir. Right, Ma, thank you. Sri A.D. Singh, whoever want to associate, send the names. Sri A.D. Singh. A.D. Singh ji hai? No. Oh. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to speak. It relates to a matter of very urgent importance relating to save the livelihood of hundreds of farmers in Bihar. It relates to NTPC plant in Barauni in Bihar, which needed needed land for sending taking out the waste from of the coal plant. That said land is available next to the NTC plant, which is about 10 meters. Hundreds of acres are infertile and barren. Instead, in its own wisdom, our state government Bihar allocated them 290 acres, 5 kilometers from the plant, which is highly fertile and which should not have been taken over. And our Honorable Prime Minister is view is definitely that fertile land should not be taken for non-agriculture. So this matter should be taken up with the state government. Dhanyavad Singh ji. Dr. Ami Agnik. Thank you, Honorable Chairman, sir. So my topic is public safety for women and girls in rural areas. So 70% of our population is in rural areas, and the public spaces in rural areas is also more compared to urban areas. Sir, available data and studies show that these spaces pose a serious threat to safety and security for women. So there's a perceived or real kind of a thought that is prevalent in these areas that women cannot come out of their safe homes, and that is why there's a dropout from schools, middle schools, and the girls are devoid of getting education. So this kind of perception has to be completely broken, and as a result, these public spaces need to be made safer for women and girls. So on one hand, we talk about bringing girls outside their homes, giving them education, asking them to come and study. And on the other hand, despite the efforts of the state and despite the society trying to change its perception for women and girls, the girls cannot come out safely. They do not feel safe whether they are walking on urban roads, rural roads, working in fields, or going out to work in community centers. So as a result, I think there is a distortion in the equitable distribution which is happening in society, and the development goals also are not getting achieved in this sense, because she being 50% partner in society, she would like to be provided with safety and security. Sir, I would urge through your honor, sir, to the government to bring out some immediate, concrete, comprehensive steps so that they can feel safe and secure in these spaces. Thank you, sir. Sri Mujibullah Khan ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं स्वाधीनता सेनानियों के बारे में बोलना चाहता हूँ। उस स्वाधीनता सेनानी जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उनको मैं सोचता हूँ मेरे समझ में है कि उसको सम्मान नहीं मिला है। उदाहरण तो हजारों उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा। एक, जिस कश्मीर को लेके आज हम गर्व करते हैं, हमारा देश का सर ऊंचा है, उस कश्मीर को जब पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस गए अंदर आक्रमण करने के लिए, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको भेजा था, और वो ऐसे पायलट थे जो पंजाब रेजिमेंट को फर्स्ट टाइम श्रीनगर में ले जाकर उतारे, इसीलिए उन लोग कश्मीर पूरा ऑक्युपाई नहीं कर सके। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत आजकल चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा जोर शोर से चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को 60 साल पहले बिजू पटनायक जी ने शुरू किया था। अगर वो 60 साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नहीं बनाते तो आज हम आत्मनिर्भर भारत के पास पहुंच नहीं पाते। वो 60 साल पहले सोच चुके थे।
बिजू पटनायक ऐसा स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने 3 देश के लिए लड़ा था, 3 देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। इसीलिए जब बिजू बाबू का निधन हुआ तो 3 देश का झंडा झुका उनके लिए। वो देश है रशिया, इंडोनेशिया और भारतवर्ष। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं, सारे सदन को अनुरोध करना चाहता हूं कि बिजू बाबू जैसा नेता को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए महोदय। मैं सारे जितने भी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग सब बोलिए बिजू पटनायक जैसा नेता को जरूर जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एसोसिएट करने वाले जो चाहते हैं वो लोग स्लिप भेज दीजिए। चौधरी सुखराम सिंह यादव। धन्यवाद माननीय सभापति जी। ये जो मैं आज विषय लेकर आया हूँ सून प्रहर में, वो विषय हम लोगों से सम्मान से जुड़ा हुआ है। जब एमपी हुए हम लोग तो जिलाधिकारी का पत्र आया कि आपको एक गांव आदर्श गांव के रूप में देना है। उस आदर्श, उसका नाम रखा गया सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। उसके तहत हर साल एक गांव हमने गोद दिया। पहला गांव लिया हमने कानपुर में ही बिजनू ब्लॉक में पिपौली, दूसरा गांव लिया हमने गोद बिजनू ब्लॉक में मर्दनपुर, तीसरा गांव गोद लिया हमने बिजनू ब्लॉक में सपई और चौथा गांव गोद लिया हमने घाटमपुर में बेंदा। 4 गांवों को हमने गोद लिया 4 सालों में। लेकिन महोदय, दुर्भाग्य की बात है उन 4 गांवों में अब तक विकास के कोई काम नहीं हुए और हम लोगों के पास जो धन था कोटे का, निधि का, वो भी 2 साल लिए बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उन गांव में विकास हो नहीं रहा। गांव वाले परेशान करते हैं कि मेरे गांव में कुछ हुआ नहीं, हम कहते हैं हमारे पास धन नहीं। एक समस्या पैदा होगी बानी सांसदों के लिए, इस पर आपको निर्णय करना होगा। आप कुछ व्यवस्था देनी होगी ताकि जो गांव आदर्श गांव के रूप में लिए गए हैं, गोद लिए गए हैं, उन गांव में विकास हो, ताकि हम लोग मान सम्मान भी रहे और इस सदन का सम्मान भी रहे। ये मैं आपसे अपील करूंगा और मैं चाहूँगा कि ऐसा निर्देश दें। मेरी मांग है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलग से निधि जारी करने का नीतिगत निर्णय सरकार अविलंब करे, जिससे इस योजना में हम लोगों का सम्मान बढ़े और गांव में विकास भी हो। धन्यवाद। धन्यवाद सुखराम जी। नाम भेजना पड़ेगा। डॉक्टर फौजिया खान। Chairman sir, generally the percentage of tourists visiting a tourist destination for religious purposes is said to be 30 to 35%. That means a large number of people undertake tourism for religious purposes. And I feel that the government needs to place more emphasis on religious tourism programs. In Marathwada, in the Marathwada region of Maharashtra, Chairman sir, which is a backward region, we have Shirdi, which is visited by many people because they go to pay reverence to Sai Baba there. But Patri near Parbhani, 8 kilometers from Parbhani, is said to be the birthplace of Sai Baba. So this also needs to be paid attention to, where thousands of devotees visit. Even the President of India had visited Patri to pay his obeisance to Sai Baba there, and he made a statement that this place should be developed, because with an excuse for religious tourism, the place is developed, Chairman sir. So I request the government to pay attention to Patri and make it a development model. And I would also request the government that if Patri, Nanded, Aurangabad, Mahur, Ellora, Ajanta, Aundha Nagnath and Parli Vaijnath, Daulatabad is covered as a tourism hub, and if we can start a luxury train, so Marathwada can receive a lot of upliftment through this, Chairman. Thank you very much. Thank you, Ma. Shri Mahesh Poddar. धन्यवाद महोदय। महोदय, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान और मजदूरों के कुछ नेता धरना दे रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि उनके लिए वहाँ पक्के मकान भी बन रहे हैं, बोरवेल भी बन रहे हैं और शायद पंखे कूलर भी लगने वाले हैं। महोदय, दुखद है कि
हमारा ध्यान कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनके साइट पे उनके लिविंग कंडीशंस की ओर नहीं जाता है और वो टीना के शेड में अपनी पूरी ज़िंदगी साइट टू साइट माइग्रेट करते हुए बिता देते हैं। उनके बच्चों का बचपन भी वहीं पे उसी माहौल में बीतता है, ना कोई पढ़ाई की सुविधा, ना मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की सुविधा। महोदय, हो सकता है कि उसके लिए कुछ कानून भी होंगे, लेकिन ये कानून पालन नहीं हो रहे हैं या कानून हैं ही नहीं। महोदय, पिछले कोरोना के दौरान में बहुत सारी कमियां हमारी समाज की उभर के आई थी। उसमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का माइग्रेशन का भी एक मुद्दा सामने आया था। यदि उनके लिविंग कंडीशन अच्छी होती, रहने की व्यवस्था अच्छी होती, तो शायद वो मजबूर नहीं होते माइग्रेट करने के लिए। महोदय, आज टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा दे रखी है कि पोर्टेबल मकान बनते हैं, सस्ते मकान बनते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि जब वो महलों का निर्माण करते हैं तो उनके लिए 2-4 साल के लिए ये छोटी छोटी कुछ व्यवस्थाएं क्यों नहीं हम सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं गरीब और मजदूरों के लिए संवेदनशील सरकार से आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस स्थिति में तुरंत सुधार लाया जाए और अविलंब कुछ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री KTS तुलसी जी। Thank you, sir. Very grateful for giving me an opportunity. I'm wanting to express my concern over deteriorating standards of public discourse. And that's a matter of concern for all of us because the country, particularly the young people, look to us as role models. And whether some of these statements fit the or deserve any support from anybody, what to talk of persons who are representing in the upper house of Parliament. I would not like to name anybody, I would not like to identify anybody, but I place these statements before you to be able to make your own judgment about them. We know that even the most reprehensible crime of rape is sometimes justified by a warped logic. For example, it was said by a very responsible member. So let us not go to individual cases. Tulsi ji, you wanted to raise a general issue, I allowed it. If you start quoting, then they will say, unhone kiya, unhone kiya. You are educated person, highly educated, please. I'm only saying that so far as crimes like rape are concerned, they cannot be justified by one reason or the other. To say boys will be boys is actually adding fuel to fire. And some of these statements it needs reflection by us as to how to prevent them. There are persons who have said in the context of rape that a politician. Don't quote those statements. Very well. House, please. You understand what I am saying? Trying to say. The concern or controversial statement by persons holding public office. That's a larger issue. You raised it, and people who are concerned, they should take note of the same. Sri Vishwambar Prasad Nishad. Sir. माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये धन्यवाद में ही आधा मिनट गया। आपने हमें देश के महान नेता, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भारत रत्न प्रदान करने की हेतु बोलने का मौका दिया है। मानवर डॉक्टर लोहिया पूरे जीवन में जो है देश को आज़ाद कराने के लिए देश के जितने भी हमारे महान नेता थे उनके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ और तमाम नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब उन्होंने लोहिया जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। डॉक्टर लोहिया जी के बारे में जितना भी कहें कम है। मानवर इतने दिन हो गए
इनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगातार शुरू से मांग की है और उन्होंने कहा है कि देश में समाजवाद को लाने के लिए माननीय हमारे डॉक्टर लोहिया जी ने बहुत प्रयास किया, काम किया है। वो 23 मार्च को उनकी 111वीं जयंती है मानवर, तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी 111वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करे। ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री एसोसिएट प्लीज सेंड द नेम्स। श्री सुशील कुमार मोदी। So my topic is government must make Google, Facebook and YouTube to print and news channels for news content they are using freely. Sir, as we all know that the traditional news media like the print media, news channels, news broadcasters are passing through its worst phase in recent history. They are in deep financial crisis. Earlier it was because of pandemic, and now it is because of tech giants like YouTube, Facebook, and Google. Sir, we all know that these traditional news media, they make heavy investments, employing anchors, journalists, reporters. They gather the news, they verify the news, and they deliver credible information. And advertisement is the main source of revenue for the news industry. Sir, but in the past few years, with the advent of tech giants like Google, Facebook, YouTube, the largest share of advertisement is taken away by these tech giants. श्रीमान, हाल के वर्षों के अंदर, और जैसा मैंने कहा कि ये जो एडवर्टीजमेंट से जो आमदनी होती है उसका बड़ा हिस्सा इन टेक जायंट्स के पास चला जा रहा है, और इसके कारण जो प्रिंट मीडिया और जो न्यूज़ चैनल्स है, they are passing through a financial crisis. And I would urge that we should follow a country like Australia, because we all know that Australia has taken the lead by enacting a law, News Media Bargaining Code. So last week, the Australian Parliament has passed a law, and by which they have compelled Google to share advertisement revenue with the news media. In Australia, the Google threatened, and for 1 week they black out the news on their portal. But ultimately it was enacted, and ultimately they has to surrender. Sir, Australia has set precedents, and now France and other European countries are making laws for advertisement revenue sharing. Sir, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि the way they have notified intermediary guidelines and Digital Media Ethics Code 2011 to regulate social media and OTT platforms, in the same way they should enact a law on the pattern of Australian code so that we can compel Google to share its revenue with traditional media. So India should take a lead on making Google and Facebook pay a fair share of earnings they make from domestically produced news content on the internet. Right. Dhanyawad ji, this is a suggestion worth considering. Time ho gaya. Shri Vivek Thanka. थैंक यू चेयरमैन। जो मैं आज बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग। इस देश में देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड मस्कुलर डिजीज़, स्पाइनल मस्कुलर डिजीज़, जिसमें जो बच्चे होते हैं फ्रॉम टाइम दे आर बॉर्न अप टू 2 years, दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स। बात बहुत लंबी है, बट शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि उसका एक ही ड्रग है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन US, and that drug costs 16 crores. And वही एक ड्रग है उस बच्चों को बचा सकता है, और 2,500 बच्चे इस देश में हर साल पैदा होते हैं who have some degree of disorder. But प्रॉब्लम दूसरी भी है इसमें,
that on that 16 crores, 7 crores is also tax. So it is 23 crores. And mostly these genetic disorders come to very poor children. Prime Minister was very kind. In one case recently, from Pune, Meera or Tira, the name of the little child, unka tax unhone maaf kiya, and the rest of the money was collected through fundraising, crowdfunding. Now my problem is, there is a little girl called Shishti, garib family ki hai Bhilai mein. She is on ventilator. She has a timeline. She can't even be sent to a bigger hospital. Drug ki to dur ki baat hai. There's Ayansh Gupta, who's from Bhilai. His parents have taken him to Hyderabad, and they came to meet me in Jabalpur. The desperation of these parents is so high कि किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों को बचाया कैसे जाए. I have some suggestions for that. Novartis does an annual lot of 100 children world over. उसमें एक बच्ची फातिमा को मिला इंडिया में chance to live. Now we can't depend on these lots to let our children live, sir. So मेरा क्या suggestion है? There are 4 suggestions. One is that government may bargain and get us a better price for these drugs collectively, because बच्चों की संख्या बहुत है, and government bargaining से ये drug की price कम हो सकती है. Number 2, tax waiver should be compulsory in all these cases because have no tax on it, please. Third, states and centers must have a revolving fund to help these children. And fourth is, if CSR can also be encouraged to save these children. And there are 2,500 children who get impacted every year by this disease, sir. We have to just save those little children. Thank you. Please send your names, associate. A lot of people want to associate. Sri Vijay Paul Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सदन में आए करीब 3रा वर्ष है. पहले वर्ष में मैंने एक विषय उठाया था जिसको मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ. करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि 22 जिले हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं. अब से 2 वर्ष पहले एक प्रतिनिधिमंडल माननीय विधि और न्याय मंत्री जी से मिला था. उन्होंने सर्किट बेंच के लिए एक विचार करने को कहा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ. और कोरोना के टाइम में 750 किलोमीटर सहारनपुर पड़ता है हाईकोर्ट बेंच से, 620 किलोमीटर मेरठ पड़ता है. हमारे राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और प्रदेशों की राजधानी हाईकोर्ट नज़दीक हैं उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट से. इस कोरोना के टाइम में गरीब लोगों को बहुत लोग न्याय से वंचित रह गए हैं. इसलिए मुझे मान्यवर दोबारा ये विषय उठाने की आवश्यकता पड़ी. करीब 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है. कई देश इससे कम आबादी के हैं और ये बहुत क्षेत्रफल भी बड़ा है. करीब 9 लाख से अधिक हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें 50% से अधिक इन 22 जिलों के हैं जो आंदोलन कर रहे हैं. मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 4-4 बेंचें हैं. यहाँ उत्तर प्रदेश की आबादी को और क्षेत्रफल को देख के यहाँ यदि 4 बेंच भी बना दी जाए, गोरखपुर और ये आगरा और मेरठ, तब भी कम है. मान्यवर, यहाँ मैं इतना एक निवेदन करना चाहता हूँ सर कि एक विषय आता है कि साहब ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है, लेकिन ये केस अलग है. 2 बार प्रदेश सरकार रिकमेंड कर चुकी है, जसवंत सिंह आयोग बना, उसकी रिकमेंडेशन आई है. और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट एक्ट 1956 बना तो उसमें यूपी और बिहार अलग रखे गए थे. बिहार की रांची जो बेंच बनी थी वो केंद्र के ही संसद से कानून बना के बनी थी. तो मेरा निवेदन ये है सर, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन 22 जिले जो आंदोलनरत हैं, इनमें बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में स्थापित की जाए. धन्यवाद. धन्यवाद जी. डॉक्टर अमर पटनायक. Thank you, sir. So, Article 39 of our Constitution, it promises equal pay for equal work for both men and women. We also have the Equal Remuneration Act 1976. Several judgments of the Supreme Court has emphasized the same point, but gender pay gap still remains a big issue in our country. India has slipped to the 112th spot from its 108th position in 2018 in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index 2020 amongst 153 countries. We rank 149th in economic participation and opportunity
and 117th in wage equality for similar work. So most distressing fact is the fact that the economic gender gap in our country is larger than the political gender gap. Women are paid most unequally in India compared to men when it comes to hourly wages for labor. On an average, women are paid 34% less than men, a report by the International Labour Organization says. So many researchers also said that one of the main issues here is the cultural norms, where the woman is projected as the primary caregiver, the person who raises the family, even if she has attained the position of a doctor or a lawyer or a head of state. The fact that stereotyping remains. Many of the factors causing this pay gap has, of course, declined over the years, but this stereotype remains. And what is popularly called as motherhood penalty, and many studies have said that this motherhood penalty results in loss of about 20% in the income of women. So 2 countries I would like to point out. Rwanda. Now, this is one country where 30% of representatives of all government, at all levels of government, are women. 61% of the seats in parliament, the highest in the world, are women. Female labor force participation is 88%, and gender pay gap is lowest. 86% women get almost same as the men. Similarly in Iceland, and they have done it through legislation. In India, the National Human Rights Commission had made several recommendations. Now, I would like to make these suggestions based on these 2 recommendations. Number 1, more women in positions of decision making. That could be done through the Women Reservation Bill. And number 2, and very important, is the changing the expectation that women should be the ones to raise children, and how it could be done through obligatory paternity leave for fathers. It should be made compulsory for parents, both the parents, to take leave. And I think by doing that, the women and the men would be put in the same position and the gender gap would decrease. Thank you so much. Thank you, Patnaik ji. Sri Ram Kumar Verma. सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी बात एटीएम से संबंधित ट्रांजैक्शन के संबंधित में कहना चाहूँगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि डिजिटल इंडिया की क्रांति ने अप्रत्याशित रिजल्ट लाए, और मैं अपनी तरफ से और करोड़ों करोड़ों लोगों की वो खुशी जो दशकों से बिचौलियों से जिनको छुटकारा मिला और लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आज हो रहा है। लेकिन अन्य मोड के वेरियस मोड हैं जिसमें यूपीआई या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, लेकिन एटीएम से संबंधित बहुत सारी सेफ्टी पॉइंट रखने के बावजूद भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी समय समय पर स्टेप्स लिए हैं, लेकिन फ्रॉड करने वाले और भी चालाक होते जा रहे हैं। तो आज वो पिन नंबर या क्लोनिंग करते हुए नंबरों को अभी भी फ्रॉड कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई उससे लगता है कि एटीएम के केस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, जो डिजिटल इंडिया ने लाभ दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन एटीएम में मामले कम हो, इसके लिए मैं मंत्री महोदया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पिन की जगह पिन बाद में, लेकिन ओटीपी अगर सारा मैंडेटरी, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं, ट्रांजैक्शन करती हैं, उन पर अगर लागू हो जाता है तो उससे रुकावट काफ़ी होगी। ये मेरा अनुरोध है, आग्रह है, इसको जरूर संज्ञान में लाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। शिव प्रताप शुक्ला जी। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी कॉल सेंटर, कई बैंकों और उपभोक्ता संस्थानों के फर्जी डोमेन का उपयोग करके कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गंभीर धोखाधड़ी के संदर्भ में यह मामला उठाना चाहता हूं। ये साइबर अपराधी बिना सोचे समझे उपभोक्ताओं को कॉल करते हैं और कॉल करके उनसे केवाईसी नंबर की बात करते हैं, मानदंडों को सत्यापित भी कर देते हैं। अगर नहीं किया गया तो बैंक खाते को निष्क्रिय होने तक की बात मोबाइल पर लिख करके भेज देते हैं। आदमी घबरा करके स्वाभाविक रूप से उनके ओटीपी को ले करके उस पर कर देता है। परिणाम ये होता है कि अचानक उपभोक्ता को अपने खाते से न जाने कितने पैसे निकल जाते हैं। मुझे इसी तरह के कई मामले पता चले हैं। इसमें पीएनबी का एक ताज़ा मामला भी शामिल है,
जहां संबंधित बैंक से लेन देन की चेतावनी और पुष्टिकरण का संदेश भी नहीं मिला था और पैसा वापस ले लिया गया था। कुछ मामलों में क्रेडिट सीमा से अधिक भी पैसा निकाल दिया जाता है कि जितनी क्रेडिट है उससे भी अधिक निकाल लिया गया। और सामान्य परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट सीमा से अधिक पैसा निकालता है तो वह लेन देन बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुमोदित हो जा रहा है। यह काफी हैरान करने वाला विषय है कि कैसे संबंधित बैंक ऐसे साइबर अपराधियों धोखाधड़ी को निकासी की अनुमति दे रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं, माननीय मंत्री जी भी हैं, कि त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा चेतावनी किए बिना ऐसे निकासी को तुरंत बहाल किया जाना है। उनको पैसा उनका मिलना चाहिए जो उनका पैसा चला गया है, लेकिन इतने कहने के बावजूद भी बैंक वाले देने को तैयार नहीं होते हैं। वो बार बार उनसे लिखते हैं। अभी भी हम अपने मोबाइल को बता दें, हमारे मोबाइल में भी कई इस प्रकार के संदेश आए हैं। अगर उसको डिलीट न किया जाए तो उसी आधार पर हम लोग भी फंस सकते हैं। इस नाते आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद जी। सबको आते हैं ऐसा मैसेज, आपको 5 लाख लॉटरी मिला, आपको केवल 5 रुपए देने से 5 लाख लॉटरी आपको मिलेगी। Special mention, Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Please. Thank you, sir, for giving this opportunity to make a mention, special mention, in respect of to recognize the PG diploma in clinical cardiology. PG diploma in clinical cardiology doctors after MBBS have done 2 years full-time course from IGNO, applied for recognition 2010 and 2012, which were rejected. PG diploma doctors appealed to the High Court, Delhi High Court, and got decided in their favor on 17/9/2019, stated that IGNO did not require prior MCI permission and quashing the Section 10A of MCI should not rely on the post-graduation medical education regulations. Court directed Government of India, in consultation with MCI, to reconsider recognition of PGDCC under Section 11(2) of MCI Act on merits. IGNO again applied to MCI for PGDC recognition. MCI on 18/12/2019 did not recommend PGDCC recognition by relying upon PGMER 2000 rules, though it is prohibited by the Honorable Court. IGNO submitted response to the MCI rejection to Ministry of Health and Family Welfare, and in turn, the Minister of Family Welfare directed MCI to recognize the PGDCC course. The Honorable Health Minister is good enough, held 2 meetings on 6/8/2020, 19/1/2021, wherein all stakeholders unanimously agreed and PGDCC are worthy of being recognized as clinical cardiologists. Thereafter, Ministry sent repeated reminders to NMCI. Meanwhile, similar 2 years post-MBBS diploma cardiology by GVSM Medical College, Kanpur, and diploma in non-invasive cardiology from AIMS, Rishikeshi were recognized in 2019-21. Why the PGDCC recognition as clinical cardiologist delayed after 18 months, despite of the orders of the Delhi High Court on 17/9/2019. Again, MCI and BOG also again relied upon PGMER rules, which was prohibited by the Delhi High Court. So, however, in view of the Delhi High Court judgment, I urge the Honorable Ministry to look into the affairs immediately and request to pursue the matter with BOG and to implement the orders of the Delhi High Court in order to recognize the PG diploma clinical cardiology. Thank you, sir. Thank you. Sri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मेरा स्पेशल मेंशन राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में है। श्रेष्ठ साहित्यकार अपनी कालजयी रचनाओं से समाज को प्रगतिशील बनाता है, वर्तमान ही नहीं पीढ़ियों को प्रभावित एवं प्रेरित करता है। चाहे ब्रिटेन के शेक्सपियर हों या रूस के एलेक्जेंडर पुश्किन, लैटिन अमेरिका के गैब्रियल गार्सिया मार्केज, फ्रांस के पॉल इलियार या भारत के रामधारी सिंह दिनकर, वे सभी अपनी प्रभावी रचनाओं के कारण
काल और भूगोल की सीमाओं को लांघ गए हैं। दिनकर की रचनाओं में व्यापक मानवीय मूल्यों को संबोधित किया गया है। उनकी लेखनी ने न सिर्फ साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि सामाजिक चेतना और सार्वभौमिक नैतिकता के भाव को जागृत करने का कार्य किया है। उनकी कृतियां रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति का 4 अध्याय राष्ट्रीय साहित्य के साथ साथ विश्व साहित्य का हिस्सा है। 1959 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनका व्यक्तित्व समानता, समरसता और जन पक्षधरता का प्रतीक है। मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में अभिव्यक्त विचार इसे पुष्ट करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति को सहेज कर रखना सरकार और समाज दोनों का स्वाभाविक दायित्व होता है। उनका जन्म बिहार में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। सैकड़ों लोग उनके जन्म स्थान को देखने जाते हैं। उनके घर और उनसे जुड़ी चीज़ों को परिवार और गांव के लोगों ने संभाल कर रखा है। संस्कृति मंत्रालय से अपेक्षा है कि उनके घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। राष्ट्रकवि दिनकर का सम्मान साहित्य, साहित्यकार, समाज तीनों के प्रति सम्मान ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों को साहवर्धन करने वाला साबित होगा। यह साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति सरोकार और संवेदनशीलता का भी परिचायक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, sir. Sir, my special mention is regarding the need to take up National River Rejuvenation Mechanism for the monitoring of pollution mitigation efforts and rejuvenation of all polluted river stretches in the country. Despite the government's efforts to curb water pollution, the state of our country's rivers continues to deteriorate. In 2018, the Central Pollution Control Board identified 351 river stretches on 323 rivers as being polluted. Maharashtra has the highest number of polluted river stretches at 53. Our rivers continue to be polluted due to mismanagement of wastewater treatment and disposal. For instance, urban India produces nearly 62,000 million liters of sewage, and the capacity to treat sewage is at 62%, but only 44% of that capacity is utilized, as per the National Green Tribunal. This would result in nearly 28,000 million liters of wastewater flow directly into our water bodies. Another contribution to river pollution is industrial effluent. The NGT observed that 1,831 industries were working without effluent treatment plants, effectively allowing the disposal of untreated effluent into rivers. In light of the continued pollution of rivers, the NGT directed the Ministry of Jal Shakti to take steps to control and monitor water pollution in rivers, as well as take up the rejuvenation of all polluted stretches of rivers, which may be named as the National River Rejuvenation Mechanism. With the increasing need for unpolluted and clean water, the Jal Shakti Ministry must follow the direction of the NGT and set up the National River Rejuvenation Mechanism at the earliest. Thank you. Thank you. Sri Ramnath Thakur. सभापति जी, देश में 2015-16 में कृषि गणना हुई थी, जिसके अंतर्गत 14.5 करोड़ कृषक परिवारों की पहचान की गई। इसमें से 79% परिवार छोटे तथा मझौले स्तर के थे तथा 14% परिवार ऐसे थे जिनके पास जोत के लिए अपनी भूमि नहीं थी। लेकिन पीएम किसान योजना के तहत केवल 9 करोड़ परिवार ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मसलन इस गणना के अनुसार बिहार में कुल 1.64 करोड़ किसान परिवार हैं, लेकिन उनमें से केवल 52 लाख परिवार ही इस योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक प्राप्त कर रहे हैं। यदि किसानों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाली अल्पावधिक कर्ज की बात करें तो केवल 6.5 करोड़ किसान के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके माध्यम से वे खाद, बीज आदि के लिए ज़रूरत के समय कर्ज ले पाते हैं। महोदय, बैंकों के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बैंक इस मामले में उदासीन रहते हैं तथा कोताही बरतते हैं। उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट
दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि उन्हें सभी किसानों, बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को अनिवार्यतः किसान क्रेडिट कार्ड देना है, ताकि किसान निजी सूदखोरों के जाल में न फंसे। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि देश में नए सिरे से कृषक परिवारों की गणना कराई जाए, ताकि लाभार्थियों की यह सही जानकारी मिले। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि बैंकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वे सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। धन्यवाद। जी रामनाथ जी। श्रीमती एसोसिएट वाले नाम में श्रीमती कांता करदम। धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं अत्यंत लोक महत्व के विषय के अंतर्गत आपके माध्यम से मेरठ महानगर रामायण काल व महाभारत काल की विभिन्न प्राचीनतम व ऐतिहासिक धरोहर में से एक धरोहर जो मुगल काल में भी संघर्ष कर चुकी है, धरोहर माँ चंडी देवी मंदिर परिसर की प्रतिष्ठान उसके अनुसार कराए जाने की ओर है। इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महोदय, उक्त ऐतिहासिक मंदिर का संबंध रामायण काल वह पतिव्रता मंदोदरी के बाल्यकाल से पूजन स्थल में से एक है। महाभारत काल में पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर क्षेत्र का एक भाग होने के कारण इसकी पवित्रता, ऐतिहासिकता व धार्मिक निष्ठा संपूर्ण समाज में तब से लेकर आज तक चली आ रही है। सरकारी रिकॉर्ड में भी मंदिर चंडी देवी के नाम से यह धार्मिक आस्था का केंद्र है दर्ज है। अंग्रेजों द्वारा मेरठ के विषय में प्रकाशित गजट में इस धार्मिक स्थल पर होने वाले प्रतिवर्ष के विभिन्न उत्सव में ऐतिहासिक मेला स्थल वास्तव में उल्लेख है। महोदय, इस धार्मिक स्थल की अपेक्षा लगातार समाज को प्रताड़ित करने के लिए ही की जाती रही है। इस मंदिर परिसर की चारों ओर की भूमि को कुछ अतिक्रमणकारियों ने द्वारा कब्जा किया है। अतः आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु एक सर्वे सरकारी स्तर पर पुरातत्व विभाग द्वारा कराकर इसकी वास्तव में रिपोर्ट मांगी जाए तथा तहसील मेरठ के समस्त पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इसकी जांच कराई जाए। कराकर परिसर की बची संपत्ति को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अतिक्रमणों के वहां से हटाकर अन्य जगह स्थापित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद कांता जी। श्री सुजीत कुमार। Thank you, sir. Sir, my special mention is with regards to severe inadequacy of banking facilities in the tribal and rural pockets of India. Sir, the rural and tribal people across our country are facing immense economic hardships due to severe lack of access to bank. They are not able to take full advantages of DBT schemes like Mamta Yojana, MGNRJ, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, etc. Despite an RBI order in 2014 and numerous government circulars to open bank branches in unbanked rural areas, no significant progress has happened so far, sir. Sir, I'll cite the example of Thamul Rampur block in Kalahandi district of Odisha to illustrate this issue. This block comprises of 24 GPs and has a population of 77,840 as per 2011 census. Today it would be above 1 lakh. And 95% of the population is SC/ST. There is only one commercial bank branch of SBI to cater to this population of tribal population of about 1 lakh. The sole bank branch is unable to meet the demands of the people and has inadequate staff, infrastructure and facilities. So such situations are not unique to one particular district, but is common across our country. Honorable Finance Minister Ma'am is here in the house, so may I request through you, sir, to take appropriate steps to solve this crisis and open at least one bank branch in every GP of the country. In each village? Bank branch. Gram Panchayat. अच्छा जी। श्री महाराजा सेनाजोबा Reshamba. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. And my special mention is regarding
establishing Indian Institutes of Science Education and Research IISCR in Manipur. Sir, the Indian Institute of Science Education and Research IISCR are a group of institutions of national importance which promotes high quality education in science and research activities in the country to meet and exceed the current global standards of science and technology advancement, focusing to groom our young, brilliant minds, nurturing the scientific creativities and the research aptitude to compete the global scenario of research domain. Sir, the establishment of IISCR was highly envisaged by many scientists as the road to broaden the scopes of education in basic science to the young, brilliant minds of the country. So, sir, this is a well-known fact that the development in all aspects in the entire northeastern state is comparatively far lagging behind. So, sir, so far, 7 IISCRs have been established in the entire country, with an exception of northeastern regions, India. So the people of Manipur wish to embrace the new culture of education for training our future human resources in basic sciences and fundamental research is strategies and a solid platform. I honestly appeal to the Government of India to support to our cause in science, technology, engineering and mathematics, STEM, education and basic research. Till today, Manipur has no institute of national importance in the level of IIT, IIM, etc. But considerable numbers of scientists from these regions are performing well at the national and international level with commendable contribution in their respective fields. Therefore, sir, I request the Government of India to establish IISCR in Manipur as a special case. Thank you, sir. Thank you, Raja. श्री ब्रिजलाल जी, मेरा विषय है सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का सफल प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो 75 ज़िले हमारे हैं, उसमें हर ज़िलों में कुछ ना कुछ विशेषता है, जैसे बनारस की सिल्क की साड़ियाँ हैं, अलीगढ़ का ताला है, आगरा का जूता है। इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया और उन ज़िलों में उसको विकसित करने के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। महोदय, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। वहाँ एक काला नमक चावल है, वो बौद्ध काल का है, उसको योगी जी की कृपा से बड़ा महत्व मिला है। अभी काला नमक महोत्सव 4 दिन पहले वहाँ पर हुआ और आज जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उस चावल के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, क्या इसको देश के हर राज्यों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रूप में लागू किया जा सकता है? थैंक यू सर। धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, demand to fill vacancies. Sir, I'm sorry, sir, I'm unaware of this. I'm allowing it in special mention, demand to fill faculty posts. Oh, okay, that was for 0. Yes, sir. Yes, sir. 0 वाला इसमें allow कर रहा हूँ ना. She knows. Time है इसलिए. It is matter of concern that according to recent report of the HRD Ministry, approximately 38% faculty posts are lying vacant at India's premier institutions like IITs, NITs, IIMs and IISERs. As a consequence of such shortage of faculty, quality of education in these premier institutes is gradually degrading, which is against the national interest. Therefore, through this August House, I urge that urgent and suitable directions may please be issued to the Government of India to take necessary and appropriate steps to initiate the process of filing these vacancies at the earliest. Thank you. Thank you, sir. Members should note, if they have given notice, I have already admitted one in this week. The priority will go to the members who have not got even one chance in this week. If I find time, then I call them also. But prima facie, every member should get an opportunity depending on the importance of the issue that's being raised. This has to be kept in mind. And Thank now, you so much, sir. Right. कब का नोटिस था? बैठ जाइए. Nothing So, notice. if they are admitted,
it will be informed. If they are not admitted, that also will be informed to honorable members. I am going through each and every notice and examining whether there is a possibility to discuss the same issue in this session during the bill or during the discussion on demand for grant. They are not being given priority. Question number Dr. L. Hanmantaya 226. Sir, question number 2. सैनिटाइज सभापति महोदय, प्रश्नोत्तर सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री Sir, there is a elaborate schemes as the government follows is given. My question is, sir, even after so many programs, the SC population in the country are not uplifted. They are still homeless, jobless, and socially backward. They have not come to the mainstream. So, any specific programs that government going to have in the next coming year? Thank you. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने मंत्रालय के माध्यम से पिछले वर्ष दलित समाज के उत्थान के लिए 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और इस वर्ष के बजट में भी 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भारत सरकार के 41 मंत्रालयों के माध्यम से ये राशि वितरित की जाती है और इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी है और समय समय के ऊपर इसके बारे में बैठकें करके वो सारा संज्ञान लेता रहता है कि जो राशि अलॉटेड है उसमें से कितना खर्च हुआ है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान की प्रियम्बल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान के अन्य निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की थी कि जो हमारा ये समाज है इसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए हम हर कदम जो है उठाएंगे, उन कदमों को प्राप्त करने के लिए आग्रह होगा ब्रीफली आंसर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों का सवाल पूछें। मैंने महोदय को बताया है कि उसके लिए हमने आने वाले समय में एक श्रेष्ठता योजना शुरू की है जिसमें हम दलित छात्रों के लिए सारा खर्चा उठाकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। एक हमने 3 स्कीम्स को मिलाकर अभ्युदय योजना शुरू की है और इसी तरह से हमने पीएम दक्ष योजना शुरू की है जिसमें हम दलित वर्ग के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई चरणों में ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। Sir, my second supplementary, both state government and central governments are implementing these schemes. Is there any survey that how many people have been uplifted and how many people are still not reached these programs? If there is no survey in the government, why don't you have a survey and find out how many people, how many families please in question. the country? This is your suggestion. Please question. There's a question, sir. It is a question. How many families in the country have been uplifted? That survey, whether it is available or not. Thank you. माननीय वर सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, भारत की जो जनगणना होती है उसमें इन सब बातों का जिक्र किया जाता है और अलग से कोई इस प्रकार का सर्वे जो है वो नहीं होता है और लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं कितने उसके लाभार्थी हैं और अगर इसके बारे में माननीय सदस्य जी कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं इनको प्रदान करा दूंगा। धन्यवाद। माननीय शमशेर सिंह जी, प्लीज सवाल स्पेसिफिक। मंत्री जी ने अपने जवाब में रखा है कि हमने 1,26,000 करोड़ के लगभग पैसा एलोकेट किया है। स्कीमें बहुत हैं,
75 साल से SC SC और गरीब BPL की स्कीमें बड़ी बनती है, कागजों में है, पर सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने स्कॉलरशिप की बात की है। हिंदुस्तान में तकरीबन मेजॉरिटी स्टेट्स में स्कॉलरशिप के स्कैम हुए हैं और करोड़ों बच्चे आपके सवाल मैं मंत्री से जब पूछ रहे, इन्होंने जवाब में है, इन्होंने स्कॉलरशिप की भी बात की है, एजुकेशन की बात आप उस पे सवाल पूछे, की बात की है। सर, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। एक तो सरकारें यहाँ से फंड एलोकेट होता है, ये टिप्पणी के लिए इजाजत नहीं है, मैं आगे एक तो बढ़ूंगा। फंड जो जाता है ऐसी स्कीमों का वो रबट होता है, और दूसरा जो स्कैम हुए हैं स्कॉलरशिप जिनकी वजह से करोड़ों बच्चे वंचित हुए एजुकेशन, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गया, आपका सवाल रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। माननीय मंत्री, कृपया माननीय सदस्यों से, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि अपने सवाल और जवाब में संक्षिप्त हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो हम शेड्यूल कास्ट बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते थे, उसमें हम केवल 1000 करोड़ रुपया ही एक साल में हम दे पाते थे, क्योंकि कमिटेड लायबिलिटी का एक ऐसा फार्मूला बीच में बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से केंद्र की ओर से राज्यों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं दी जा सकती थी। अब उस जो कमिटेड लायबिलिटी के फार्मूले को हटाकर एक 60-40 का नॉट अलाउड, मैं दे रहा हूं, नॉट अलाउड, मैं दे रहा हूं अपनी बात अब हमारे डिपार्टमेंट ने 60-40 का फार्मूला बनाया है, और मैं इस महान सदन को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये राशि अब 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपया जो है 4 करोड़ दलित छात्रों को इसका बेनिफिट धन्यवाद, धन्यवाद। 5 साल में हो गया, जवाब हो गया। प्लीज माननीय रामचंद्र सिंगरा जी, आप अनऑथराइज बोल रहे हैं, आपको अनुमति नहीं बोलने की। बैठिए, कोई रिकॉर्ड पे चीज नहीं, कोई रिकॉर्ड पे चीज नहीं जा रही। प्लीज आप बैठे। माननीय रामचंद्र सिंगरा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, प्लीज आप बैठकर टिप्पणी न करें सीट पर, प्लीज। वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज प्लीज आप जवाब दे। सवाल पूरक प्रश्न के तौर पर मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि पहले इसमें SC कॉरपोरेशन में डायरेक्ट लोनिंग की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें जो जवाब दिया है कि जनरेटिंग स्कीम फाइनेंस बाय वेरियस बैंक्स, और हमारा ये अनुभव है कि बैंक कोई इसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, बैंकों में फार्म पड़े रहते हैं और वो चक्कर कटाते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से, क्या कोई दोबारा डायरेक्ट लोनिंग की व्यवस्था हो जाए नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से? ऐसी व्यवस्था सरकार करना चाहेगी? इसी में मेरा दूसरा पूरक एक ही आपका पूरा प्रश्न इसी में आपको नहीं मिल सकता अवसर, जो सवाल पूछता है उसको 2 मिलता है। थांगड़ा जी प्लीज बैठ जाए। उत्तर। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो वित्त विभाग की जो शेड्यूल कास्ट की जो कॉरपोरेशन है, उसकी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को उसके अंतर्गत लोन का प्रावधान हो, और इसी दृष्टि से जो हमने प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना जो शुरू की है, उसके अंतर्गत हम सभी शेड्यूल कास्ट जिनकी इनकम 4 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को हम 2 लाख रुपए तक का लोन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको 4 लाख रुपए तक का लोन की व्यवस्था हम उसके अंतर्गत करते हैं। और हमारे जो बैंक हैं वो भी 5% तक की ब्याज में छूट देकर हमारे दलित समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। वो HRD मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दिखा रही है कि जो कोटा का रिजर्वेशन का रूल है 16 IIMs में से 9 में अंडर 10% है जो फैकल्टी को हायर किया गया है। तो क्या आपके मंत्रालय ने, माननीय मंत्री के मंत्रालय ने इस मुद्दे को
HRD से उठाया है और जो वैकेंसीज हैं उसको भरने का काम हुआ है। धन्यवाद प्रियंका जी। बात संज्ञान में आई, देखेंगे। आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है, हम इसको देखेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 227 श्री सुरेंद्र कुमार जी। 227 एब्सेंट। माननीय मंत्री उत्तर सभा पटल पर रखें। धन्यवाद। माननीय राम कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से जो उत्तर भी दिया है और स्टेट वाइज उनका ब्यौरा दिया है। सवाल ही पूछ रहा हूँ सर। बस 1 मिनट में कर लूँगा मैं ये। और एट्रोसिटीज एक्ट को जिस तरह से 2015 में और भी इश्यूज उसमें लिए गए, उसको स्ट्रेंथन दी गई और फिर कोर्ट के द्वारा जो हुआ उसको भी बदला। मकसद ये था कि स्टेट का ये क्षेत्र है, इसमें दोहराए नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। चूँकि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि राजस्थान स्टेट से मैं आता हूँ, राजस्थान स्टेट की वाइज की बात है, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। आज जो अत्याचार SC ST पर हो रहे हैं वहाँ पर इतने हो रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि भारत में नंबर 1 है। सवाल पूछो। तो मैं सवाल मंत्री महोदया से और भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे राज्य जो एक्शन नहीं लेते हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं क्या? दूसरा एक सवाल। धन्यवाद। एक मिनट। धन्यवाद। नहीं, आपको एक ही सवाल पूछने का मौका है। सवाल ये दूसरा सर एक जो महत्वपूर्ण है सर, आपको फाइनेंशियल एड है उनका। एक सवाल ही पूछ सकते हैं आप। माननीय मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष जी, जो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट की सब्जेक्ट है, स्टेट के गवर्नमेंट्स के तरफ से ही इसका कार्रवाई होते हैं। जो डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट हर साल आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है NCRB की, उसका रिपोर्ट हम संसद के सामने, देश के सामने रखते हैं। धन्यवाद। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी। Tougher and an offensive offender committing sexual crimes against women and children, the state of Andhra Pradesh has passed the Disha Bill 2019. The bill provides for awarding death sentence for offences of rape and gang rape and expediting trials of such cases to within 21 days. I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to give assent to the Disha Bill. Thank you. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद ये अलग अलग शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो रेप केसेस होते हैं उसमें और क्राइम्स होते हैं, इसमें रोकने के लिए अलग अलग कदम भारत सरकार ने उठाए। 215 में इसका प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट के बारे में 89 का केस था, उसका भी हम मॉडिफिकेशन किया है। न्यू ऑफेंसेस भी इसमें जोड़े हैं और पोस्को एक्ट भी लाए। उसके अंतर्गत 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना चाहिए, इसमें भी प्रावधान किया है। ये रेवोल्यूशन एक एक्ट है, भारत सरकार ने देश के सामने महिलाओं को प्रोटेक्शन करने के लिए लाए हैं। उसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट का है, न्यू ऑफेंसेस भी जो SC ST एक्ट में जो 215 का इंश्योर बेटर जस्टिस सिस्टम के लिए लाए गए, एडिशनल ऑफेंसेस भी इसमें जोड़े गए। स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी देश भर में भारत सरकार के आदेश पर अलग अलग प्रांतों में 190 स्पेशल कोर्ट्स भी इस SC ST वुमेन्स के बारे में जो अत्याचार होते हैं उसके विषय पर भी अलग कोर्ट्स बनाए। और उसके साथ साथ राइट्स ऑफ विक्टिम ऑफ विटनेसेस, ये इसके बारे में भी हम अलग अलग कदम उठाएं। भारत सरकार ये पूरे कटिबद्ध है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन के बारे में जितने भी सरकार के द्वारा हो सकता है पूरा हम करने वाले हैं। थैंक यू। माननीय GC चंद्रशेखर जी। 9 states accounted for 84% of all crimes against Dalits in India in 2019, though they accounted for the only 54% of the country's SC's population according to the data by NCRB. Sir, there were nearly 46,000 crimes against SCs in 2019, up about 7% from the previous year. So, total of 8,257 rape cases were registered,
for committing crime against STs. Question, Chandrasekhar ji. An increase in 26% over 2018. 6,528 cases were registered. Sir, how the government is planning to curb? That's what, sir, I'm asking question. Don't give explanation, Yes, briefly sir. question. Sir, how is the government is planning to curb the atrocity against Dalits, mainly in 9 states, and what are the reason for increasing the crime in these states? Thank you. Thank you, sir. माननीय सदस्य, अगर आप ब्रीफली पूछेंगे तो दूसरे सदस्यों को मौका मिलेगा जो बार बार कहते हैं कि हमें भी मौका मिले, इसलिए आप समझें प्लीज। और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि सवाल का उत्तर संक्षेप में दें। जी, अभी मैं बता चुका हूं, भारत सरकार ने SC/ST के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जनरल वुमेन्स के ऊपर भी जो अत्याचार है, हम अलग अलग एक्ट में बदलाव लाकर देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये लैंड ऑर्डर स्टेट के सब्जेक्ट है। हम प्रांत सरकारों को एडवाइजरीज देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, पुलिस जुडिशरी को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें अवेयरनेस लाते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हम डिटेल्स आपके द्वारा मैं संसद को डिटेल देता हूं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 228 श्रीमती छाया वर्मा जी। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। पहला सप्लीमेंट्री श्रीमती छाया जी। सर, 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ ये नियम है और लोगों को शोषण करने के लिए नियम बनाया गया। 8 वर्ष पहले की सरकार ने एक संशोधन सुझाव मांगा था, न्याय मंत्रालय को आवेदन दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं, क्या इस नियम में संशोधन करेंगे? बहुत धन्यवाद। बहुत जी, जो IPC का इस एक्ट है, ये लगातार ये अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ये एक्ट भारत सरकार ने जो कांग्रेस के ज़माने में 1948 में अमेंड किया है, 1950 में अमेंड किया है, 1951 में अमेंड किया है, 1955 में अमेंड किया है। ये नया एक्ट नहीं है, पुराना एक्ट है। हम भारत सरकार के द्वारा इस विषय पर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। कमिटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक नया कमिटी गठन किया है। इस दृष्टिकोण से आदरणीय होम मंत्री अमित शाह जी सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी देश के यूटी के LGs को, गवर्नर्स को और यूनियन टेरिटरीज को, वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट्स को, NGOs को, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को, सबके द्वारा हम इसके इनपुट्स मांग रहे। वो आने के बाद जरूर जो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, इस विषय पर भारत सरकार सोचेंगे। थैंक यू। ऑनरेबल KTS तुलसी जी। सॉरी दूसरा सप्लीमेंट छाया जी, सॉरी। सर, इसके जवाब में, उत्तर के जवाब में आया है कि ये लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है। पिछले दिनों इस मामले में 165% वृद्धि हुई, अधिक मामले दर्ज हुए और केवल 2% ही आरोप सिद्ध हुए हैं। तो क्या सिद्ध होने का प्रतिशत इतना कम क्यों है? क्या फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? महोदय, पिछले 5 वर्षों में कितने मामले धारा 124 क के तहत पंजीकृत हुए और कितने में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो ये सेडेशन एक्ट के बारे में भारत सरकार अलग डाटा NCRB नहीं करती थी। मोदी जी सरकार आने के बाद पहली बार कांग्रेस के जमाने में उसको छुपाते थे, सेडेशन के एक्ट में जितने भी थे छुपाते थे। हमारा सरकार आने के बाद सेडेशन एक्ट के अंदर अलग डाटा हम देश के सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, देश में 130 करोड़ पॉपुलेशन है। आज देश में सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग अपना टिप्पणी देश के बारे में, देश के इंटीग्रिटी के बारे में, देश के सिक्योरिटी के बारे में कर रहे हैं। अभी कोई नया संख्या नहीं है, जो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 2 डिजिट्स के अंदर ही केसेस है। और आदरणीय संसद महानुभाव पूछे हैं वो कन्विक्शन के बारे में। कन्विक्शन सरकार तय नहीं करती है, पुलिस तय नहीं करती है, ये न्यायस्थान कोर्ट तय करती है। इस विषय पर कोर्ट ने ये प्लीज बैक कर प्लीज।
ऑनरेबल KTS तुलसी जी। Honorable KTS Tulsi ji, please. Mic is not working. No, Please, it's working now. आप बोलो. Sir, according to the statistics that have been given in answer to this question, there is 160% increase in the sedition cases under 124A in 2019. Now the question is, my learned friends ask that क्या फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं? तो ये साबित इस बात से होता है 96 suspects were arrested under 124 capital A in 2019. Only two were convicted. All others, according to the court judgment, were false cases. Thank you. I would like to ask the honorable member, how are they going to stop using 124 to muzzle freedom of press and muzzle freedom of speech and expression? Thank you, KTS Tulsi ji. माननीय मंत्री जी। केंद्र सरकार कोई स्टेट को इस एक्ट में किसको अरेस्ट करने के लिए आदेश नहीं देती है। ये एक्ट कांग्रेस पार्टी सरकार के समय पे ही है, हम कोई इसमें बदलाव नहीं है। दूसरा, ये कांग्रेस के जमाने में से एक्ट है, उसको अमेंडमेंट किया है। नंबर 2, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं अवगत करना चाहता हूं, जो कन्विक्शन के बारे में, कन्विक्शन भी ये डाटा अभी 2019 का बताए गए। अभी ये केस में कुछ जो केसेस आप बताए 96, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें चार्जशीट के लेवल पे है, पूरा जजमेंट नहीं आया, आने वाला है। इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी सरकार जो राजस्थान में है, वो सरकार भी तो 2015 में 9 केसेस। इसलिए ये कोई पार्टी राजनीतिक संबंध नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस केसेस को रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस केस को प्रोसिक्यूट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इस केसेस को न्यायस्थान के सामने ले जाते हैं। केंद्र सरकार कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। धन्यवाद। माननीय मनोज कुमार झा जी, आपको इजाजत नहीं। माननीय मनोज कुमार झा, ये खड़ा हो रहे हैं बार-बार। डिप्टी चेयरमैन सर, mic is not on. Honorable Deputy Chairman sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise a supplementary. Honorable Minister sir, a straight question to you. Look, let's agree that large number of people, if they are acquitted, the fact is there is a tendency of late to look at critiquing the government and critiquing the nation as one and the same, which is not fundamentally the same. Democracy survives. Do you plan to train your investigative agencies, police personnel, that they should make a distinction between a critique of the nation and critique of the government? अध्यक्ष जी, भारत सरकार कभी कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई संस्था के ऊपर ऐसा फॉल्स केस नहीं लगाया। भारत सरकार के खिलाफ अलग-अलग मतभेद रहने के बाद भी आप बताना चाहता हूं, सीए के विषय पर इसी संसद ने आपके सामने पास होने के बाद जो आंदोलन किया है, हम पूरा छूट देते हैं। जितने अभी किसान का आंदोलन चल रहे, अभी 100 डेज से ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम सरकार माननीय सदस्य कोई चीज हाथ अध्यक्ष पर नहीं कर रहे। इसलिए भारत सरकार डेमोक्रेसी के ऊपर, प्रजातंत्र के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कभी हम रुकावट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, मिस्टर बी लिंगैया यादव, एब्सेंट। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन की पटल पे है। माननीय सुभाष चंद्र बोस पिल्लई। Deputy Chairman sir, thank you sir. Sir, the Honorable Minister already knows that fire accidents are being occurred frequently due to leakages of the existing pipes in the Konaseema of Andhra Pradesh. I would like to know from the Honorable Minister,
Is there any proposal to change the entire pipeline network in Konasamaya region of Andhra Pradesh, especially in East Godavari district? If yes, what is the action plan? Please, Thank you. Thank you, Subhash Chandra ji. Thank you. Deputy Chairman, sir, this honorable member pertinent issues, but this is not related to question asked by today. It's a separate question. This is nothing related to today's question. Honorable Sri Vijay Kumar ji. As a public interest, I want to ask one question regarding the ministry. Is there any proposal to give the petrol bill, petrol tanks, but we are given the bill to the public? We are mentioning the cost in the round cost only. My specific question is, we are putting in the cost of the petrol and cost of the tax for the central, cost of the tax for the state. We are mentioning in the bills. Is it possible, sir? Thank you. Deputy Chairman, sir, my learned friend is a very smart MP. So he has put some unrelated question to this main question today. But there are some settled practice. All marketing companies are always advised to go by that practice. There is one bill for all the component of the price. Thank you. माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी. सभापति महोदय, इसको तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल के एथनॉल को मिलाने की बात आई है और मैं बधाई भी देना चाहता हूं, बढ़ा रहे हैं एथनॉल का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं बहुत से देशों में 40% तक एथनॉल पेट्रोल में मिल रहा है. इसको अधिक से अधिक एथनॉल का मैन्युफैक्चरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छी प्रश्न पूछा है. माननीय उपाध्यक्ष जी, विश्व में अनेक सारे देशों में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की इनिशिएटिव लिया गया है. जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तब भारत में पहली बार एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लाया गया. उस समय में कुछ ब्लेंडिंग हुई, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 से 14 तक इसी कालखंड में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को अनदेखी की गई, जिसके कारण 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवारी संभाले, तब देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा 0.67, पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी 0.67% ब्लेंडिंग होती थी, जिसकी मूल्य 500 करोड़ रुपया के नीचे था. जो इसी साल मैं आज इस पवित्र गृह में आपके माध्यम से देश के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं. इसी साल 2020-21 की एथेनॉल ईयर में ये जो 0.67% 500 करोड़ रुपया की नीचे के मूल्य की 14 में था, ये बढ़ के इसी बार 325 करोड़ लीटर, 8.5% और 18,000 करोड़ रुपया के मूल्य की ये बढ़ोतरी हुई है. हम इतने में अटके नहीं हैं. प्रधानमंत्री जी की जो स्पष्टता है ऊर्जा खेती की, हम अपने ही किसानों से आखिर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कैसे होगी? एमएसपी से ही नहीं होगी. सिर्फ एमएसपी एक उपाय है, अनेक उपाय को लाना पड़ेगा. एथेनॉल सिर्फ शुगर केन मोलासेस से बनता था, अभी भी बनता है. उसकी कई सारे पॉलिसी रिफॉर्म किया गया. बी है बी, शुगर केन जूस और शुगर को भी आवश्यक पड़ने से एथेनॉल बनाने की नीति हमने बनाई पहली बार. इतने केवल नहीं है, चावल और मक्काई ये देश में सरप्लस प्रोडक्शन आज है, इसको भी हम पॉलिसी बनाए. पहले टूटी हुई चावल, ब्रोकन राइस की पॉलिसी थी. पिछले साल हम लोगों ने पॉलिसी लाया सरप्लस राइस और मक्काई. पूरा भारत की आदिवासी इलाका में, जंगल इलाका में मक्काई होती है. आप जिस प्रदेश से उपाध्यक्ष जी आते हैं, मक्काई विशेष करके कोसी की बेल्ट में खूब होती है. वो समस्या होती थी. आपके राज्य की मुख्यमंत्री, आप जिस राज्य से, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है पब्लिकली कि हमें उसको प्रायोरिटी देना है. कई राज्यों ने भारत सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में साथ दे रहे हैं. आने वाले दिनों में हमारी लक्ष्य है
हम 2025 आते आते एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, लगभग 1 लाख करोड़ की नई एथेनॉल अर्थनीति भारत में हम लाने के लिए उसके कारखाने, उसकी मूल्य, ये आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी कदम होगी। इसी दिशा में भारत सरकार प्रतिबद्ध है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 230 माननीय संजय सेठ जी। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया है। पहला सप्लीमेंट्री। जो भी पूछिए आप, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी बताओ। आपकी बात। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बुजुर्ग व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति सुधारने व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वैसे सीनियर सिटीजन को पोषण के संबंध में का ये प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो वृद्धजन है तो उनकी आर्थिक प्रगति करने के लिए सरकार क्या करने वाली है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि एक एम्प्लॉयमेंट हम शुरू करेंगे। जो रिटायर लोग हैं, वृद्धजन लोग हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे और उनको काम देने के संबंध में हमारा मंत्रालय प्रयत्न करने वाला है। धन्यवाद। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, दूसरा सप्लीमेंट्री। आज वृद्धजनों के रहने के लिए ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को मेडिकल, इंटरटेनमेंट, खान पान, सेफ्टी, सिक्योरिटी की सुविधा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के ओल्ड एज होम्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कोई स्कीम बनाने जा रही है? हाँ उपाध्यक्ष महोदय, ये स्कीम है ही, मतलब ओल्ड एज होम की स्कीम है और आज तक मतलब पूरे भारतवर्ष में 613 ओल्ड एज होम है और उसमें 30,000 से ज़्यादा ओल्ड एज के लोगों को सुविधा उपलब्ध है। वह उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, खाना मिलता है, रहने के लिए मिलता है और उसके लिए मतलब दूसरे भी जो डे केयर होम भी है उसमें भी दिन भर मतलब वहाँ जो ओल्ड एज के लोग जाते हैं और शाम को अपने घर पे आते हैं, तो इसीलिए मतलब उनके लिए भी मतलब ये योजना है। थैंक यू। ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। Sir, this Poshan Abhiyan scheme, which is extended to the elderly people, focuses on 55,000 senior citizens through 2,000 gram panchayats and 200 urban municipalities. Sir, approximately 20 from every place. Sir, just calculate the number of senior citizens who have no support and no way of living, and the amount approved is only 39.6 crore. Sir, it is from the union government, it extends the whole of India. And whereas it is only covering only 2,000 gram, 200 urban municipalities, 55,000 means, I think it's a very paltry amount and it would not serve the purpose. Already the Poshan Abhiyan scheme, 3,700 crore was allotted, only 600 was spent. During the COVID pandemic period, when everyone was looking at the government for the requirement, please, the money was, so I would like to ask, when you are focusing on a new scheme, it should serve the purpose. And do you have any plans to extend it to reach more senior citizens? Then only it would serve the purpose. Other it will be on paper. Thank you. हाँ डिप्टी चेयरमैन सर, जो शिवाजी ने पूछा है कि मतलब ये जो योजना है इस वर्ष में मतलब 2000 लोगों के लिए 21-22 के लिए 2000 जो ग्राम पंचायत है और 200 नगर पालिका है, उसमें 55,000 लोगों का फायदा है। उसमें 39.6 करोड़ का प्रावधान है। 2022-23 में 5,000 ग्राम पंचायत है, 500 नगर पालिका है और मतलब कुल संख्या वहाँ मतलब तो या 99 करोड़ की जो प्रावधान करने का तो संकल्प है। दूसरे 23-24 में कम से कम 8,000 गाँव, 24-25 में 10,000 गाँव, 25-26 में 10,000 गाँव और उसमें कम से कम 693 करोड़ का प्रावधान करने का निर्णय ले लिया है और ये गाँव बढ़ती जाएंगे और जितने भी मतलब गरीब वृद्धजन हैं उनको पोषण देने के संबंध में सरकार ने निर्णय ले लिया है। मोदी सरकार मतलब ऐसे जो लोग हैं ऐसे लोगों को मदद करती है और वो मदद करती रहेगी।
धन्यवाद। माननीय नीरज डांगी जी। सर, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कि क्या सरकार ने कोई अध्ययन या विश्लेषण कराया है जिससे यह पता चले कि वृद्धजनों में से कितने वृद्ध पोषण विहीन हैं जिन्हें पोषण अभियान में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है? धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें 2011 के जनगणना के मुताबिक 10,38,00,000 वृद्धजन की संख्या है और टेंटेटिवली अभी 2021 तक 14 करोड़ की संख्या हो सकती है। लेकिन उसमें जो सर्वे है कि कितने लोगों को मतलब गरीब लोग हैं, ये सर्वे अभी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, वो आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 231 डॉक्टर विकास महात्मे। डॉक्टर विकास महात्मे एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। सभा पटल पर रखा है। डॉक्टर अमर पटनायक। So we, while passing the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, we had, the entire House had expressed concern that it had not been aligned with the IPC. For example, the rape laws were not in alignment. The IPC required inclusion of transgenders also under Section 376. So when would the government, or is the government thinking of bringing any changes in the IPC to include transgenders in its ambit? Thank you, sir. कोई विचार नहीं है। मान्यवर सभामुख महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या इसकी इंडियन पेनल कोड के अंदर जो कानून हमने जो है पास किया है 2019 में, इसकी व्यवस्था की गई है। अभी तक इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं हुई है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो अन्य प्रश्न पूछा है कि ट्रांसजेंडर के मान सम्मान के लिए और उनकी लाइवलीहुड को बरकरार रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला अवसर है कि जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक ट्रांसजेंडर मजमा जोगती को जो है वो हमने पद्म श्री से सम्मानित किया है। और इससे पहले भी एक ट्रांसजेंडर नटराज को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और सरकार जो है हमारे ट्रांसजेंडर के जो है शिक्षा के मामले में, कौशल विकास के मामले में, सामाजिक सुरक्षा के मामले में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके पुनर्वास के बारे में और उनके रोजगार से संबंधित बहुत से ऐसे कदम उठा रही है जिससे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है आने वाले समय में इन ट्रांसजेंडर्स को बहुत सहायता मिलने वाली है। धन्यवाद। श्री राकेश सिन्हा जी। सभापति महोदय, भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर को पहली बार रिकॉग्नाइज करके उनको सम्मान देकर एक बड़ा काम किया, इसलिए सरकार को बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर के जो लोग जेल जाते हैं किसी क्राइम के कारण या एक्यूज होने के कारण, तो उनको किस रूप में रखा जाता है? क्या जेलों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग व्यवस्था है या नहीं? क्योंकि ये जो भ्रम होता है उसके कारण ट्रांसजेंडर को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, न वो महिला कैदी में आते हैं न पुरुष कैदी में आते हैं। तो मुझे लगता है जब सरकार ने कानून पारित किया है तो इसकी भी व्यवस्था जेलों में करने के लिए मंत्रालय पहल करे। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। अभी तक तो जो इंडियन पेनल कोड है वो देश के सभी नागरिकों पर समान दृष्टि से लागू होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में जो विशेष ध्यान देने की बात माननीय सदस्य ने कही है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय मोहम्मद नदीमुल हक जी एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष जी, उत्तर सदन की पटल पर रखा जाए। माननीय श्री अनिल देसाई जी। Minister, while replying to some earlier question, has said that ethanol mixing
will be increased from 10% to 20% till 2025. So my question to the Honorable Minister through you, sir, that when the fuel prices of private petrol and diesel have gone through the sky, which has really impacted the budget of every household in India, why ministry is thinking of increasing the percentage of ethanol mixing in the fuel from 10% to 25% for such a long period, 2025? Instead of that, why not immediate steps be taken where some relief would come to the, when central government is not decreasing the taxes, which is really the need of the hour. But if not that, why not? Question, please. It's a suggestion also, please. No, I'm asking the question. मिस्टर देसाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने एक विषय उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों टैक्स घटाती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वित्त मंत्री जी ने उस विषय पे कहा है, लेकिन रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए माननीय देसाई जी सरकार के एक प्रमुख पिलर है, वो मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करे, महाराष्ट्र देश की सबसे, विशेषकर मुंबई जहां के वो पॉलिटिक्स करते हैं, उस प्रदेश में, उस राज्य की अंदर, उस शहर के अंदर, देश के अंदर राज्य सरकार की ओर से सबसे ज्यादा टैक्स उनकी सरकार की मुंबई में है। अगर वो टैक्स घटाएंगे निश्चित रूप में मुंबई की जनता को राहत होगी। मेरे भाभी को प्लीज श्वेता जी, आप क्या अनिल देसाई से अलग हो क्या? प्लीज देसाई जी, मैं आप उत्तर दे रहा हूँ। देसाई जी को मैं, देसाई जी के घर में अच्छा चिकन बनता है, प्लीज वो मैं देसाई जी की भाभी जी मेरे अत्यंत शुभेच्छु हैं, उनकी बजट को भी मेरे चिंता है, लेकिन वो राजनीति, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 2025 क्यों, उसके पहले क्यों नहीं। मैं देसाई जी को यह कहना चाहता हूं, ये क्या हालत में 2014 में हमको मिली, अटल जी ने शुरू किया था, बाद में उसको साइड में रखा गया, अभी उसको हमने प्रायोरिटी में लाए, उसी में अभी 20% की ब्लेंडिंग टारगेट पहले 2030 का था, उसको फिर अभी घटा के 2025 किया गया है। इसके लिए अलग डिस्टिलरी बनना पड़ता है, इसके लिए अलग स्टोरेज फैसिलिटी करना पड़ता है, उसी के काम पे अभी हम युद्ध स्तर पे लगे हैं, इसीलिए 2030 की टारगेट को हमने 2025 किया। आपके सुझाव हमारे लिए अच्छा सुझाव है, इसको और कैसे जल्दी पूरा करके 2025 तक हम 20 से और आगे बढ़ जाएं, इसकी भी हम चिंता करेंगे। आपकी सुझाव अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र वाला ध्यान दीजिए। धन्यवाद। श्रीमती फौजिया खान जी। Chairman, sir, I would like to ask the Minister, with your permission, that a policy was launched in 2018 called SATAT, Sustainable Alternatives Towards Affordable Transportation. What is the status of this? It is learnt that 106 letters of intent were given, but not a single project has commenced. So any plans to revisit this policy? Any alternative schemes to reduce the dependence on fossil fuels? सदस्य जी का शायद जानकारी सही नहीं है, मैं उनको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा कि उन्होंने जैसे कहा कि सतत पॉलिसी को रिविजिट करने की आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं। सतत अभी 2018 में हमने बनाया। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, खेतों की कचरा और जंगलों की कचरे से कंप्रेस बायोगैस की इतनी बड़ी एम्बिशियस टारगेट और स्ट्रैटेजी, बैंकों की ऋण देने की सहूलियत, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये सारी हमारी सरकार की पिछले 2-2.5 साल की इनिशिएटिव है। इसके कारण लगभग 1000 एंटिटी को हम लोगों ने LOI दिया है, उसमें से डिफरेंट स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में कई प्रोजेक्ट्स है, उसमें से 10-12 प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। इसकी पूरा सटीक तथ्य मैं आदरणीय सदस्य जी को उपलब्ध कराऊंगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प होगी, जिसके कारण हम 15 मिलियन मेट्रिक टन की CBG कंप्रेस बायोगैस आने वाले दिनों में भारत की आत्मनिर्भर तरीके से निकालेंगे। माननीय अनिल जैन जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का आंशिक जवाब पहले से दिया हुआ है। 2018 से 2023 तक के इस बायोफ्यूल नीति में
20% तक एथेनॉल का मिश्रण होना था पेट्रोल में और 5% जैव डीजल का मिश्रण करके आयात निर्भरता कम करना, रोजगार सृजित करना, किसानों की अपेक्षाकृत पारिश्रमिक ज़्यादा देना, ऐसे बेहतर अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाया दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को और माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर को इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अब तक इस नीति के तहत ईंधनों की वजह, इस जैव ईंधन की वजह से रोजगार के कितने सृजन हुए, किसानों के आय में क्या परिवर्तन आया है, और तेल विपणन कंपनियों का भंडारण किए गए एथेनॉल का ब्यौरा क्या है? और आपने 3 सवाल पूछ लिए, अब तक एक ही सवाल का एक ही सवाल मानने वाली है। दूसरा सवाल तो मेरा चावल और मकई से कितना एथेनॉल बनाया गया है, इसका भी विवरण मिल सके तो अच्छा रहेगा। ये कई सारे तथ्यात्मक चीज माननीय सदस्य जी ने पूछा है। कई सारा पॉलिसी अभी अभी जैसे उन्होंने कहा कि चावल और मकई से कितना बना, सर अभी इसी साल 2020 नवंबर दिसंबर में उसकी हमने अनुमति दिया है। उसकी डिस्टिलरी लगना अभी शुरू हुआ है, उसकी बैंक की टाइप अभी होना शुरू हुआ है। कुछ विषय पे उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां कितने में खरीदा है, कुछ तथ्य हमने पहले वाले प्रश्न में दिया भी है। ये सारे उनकी सविशेष विवरण हम उनसे अवगत उनको करवा देंगे। धन्यवाद माननीय जी। क्वेश्चन नंबर 233 माननीय कैलाश सोनी जी। पहला सप्लीमेंट्री। ये माननीय मंत्री जी ये बताने की कि विधवा के पुनर्विवाह के लिए क्या कोई प्रोत्साहन राशि की योजना है और क्या केंद्र के कोलैबोरेशन से मध्य प्रदेश में यह राशि प्रदान की जाती है? प्रणाली प्रचलित नहीं है। दूसरा सवाल। माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि महिला हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये से बढ़ाकर पेंशन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है क्या? धन्यवाद। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। समय समय वो इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श करते हैं। रोमिला, श्रीमती रोमिला जी प्लीज। सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय विधवा जो स्कीम योजना है उसमें विधवाओं को शामिल किया गया है, लेकिन मैं एक महिला हूँ। मैं जानती हूँ कि समाज में एक परित्यक्त और अविवाहित महिलाओं की परिस्थिति कितनी दयनीय होती है। तो माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन फ्यूचर ये पेंशन स्कीम योजना उन दोनों महिलाओं के लिए लागू करना चाहते हैं कि नहीं? मैंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पेंशन संबंधी निर्णय करने का अधिकार प्राप्त रखती है। वो समय समय पर इस प्रकार के विषयों पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 श्री ए विजय कुमार जी। Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Supplement is there. The government has any proposal to provide existing parliament building to Archaeological Survey of India for maintenance and made the public property, sir? Sir, if I may be given a minute to just provide a perspective, so far the decisions that have been taken are that we are going to, rather we are in the process of constructing a new parliament building, and for which the tender has been given and work is in progress, and we hope to complete that so that the winter session of the next year, on the 75th year of independence, can be celebrated in the new parliament building. Also the Central Vista Avenue redesign and that work has been granted. Once the new parliament is ready and we are able to relocate the work of parliament to the new building, then this existing building will have to be
repaired, re-gutted, and made available for alternate uses. At this point of time, sir, there has been no comprehensive thought given to what precise use the old parliament will be put to. Several suggestions keep coming, including that there should be an institute for democratic or parliamentary studies. These are merely suggestions. No decisions have been taken, and therefore the question that the honourable member has asked in terms of specific usage, I think is a little premature, sir. Second supplementary. Sir, in the second supplementary, throughout India, the government offices in metro cities are scattered and functioning in rental buildings. Whether the government has any proposal to construct integrated government office complex as the extension part of the Central Visa project, sir. Sir, I'm very happy that the honourable member has asked this supplementary, and there's a trace of it in the question itself. The question is whether the Central Vista project, which is an ambitious project, which was long overdue, it was hinted at when the late Shri Rajiv Gandhi was Prime Minister, when Shrimati Meera Kumar was the presiding officer of the Lok Sabha, whether there is a plan to replicate and do that at the level of the states. Well, considering that this will be a very successful project, I'm sure some state governments will draw inspiration and take the steps necessary to recommend and make sure that all government buildings, different state departments, other subsidiary offices, rather than be scattered all over a state capital, they may wish to consider. But at this stage, sir, that is hypothetical. Also, given the federal structure of our constitution, surely this recommendation would have to come from the state government. But it's an inspirational question, and all I can say for the record, and with a sense of responsibility, there is so far no demand has come from any state government on this specific suggestion. But I'm sure as we proceed and as the Central Vista project begins to take shape, a lot of us will, in different parts of the country, draw inspiration from that and make suggestions to that effect. And those actions which fall within the domain of the central government, we will provide an adequate response, but the proposal will have to come from the state government. Thank you. Srimati Ami Agnik ji. Sir, for giving me this opportunity. Sir, the question asked by the Honourable MP is in 7 lines. The answer given by the Minister is in 6 lines. I just want to know that the question which was asked was that the number of existing buildings to be remodeled and demolished under the Central Vista project in Delhi, to which the answer is that that has not been, the number of existing buildings to be demolished under this project have not been finalized. Sir, I would like to ask the Minister that the matter has traversed to the apex court. A counter affidavit in detail has been filed. The Honorable Court's judgment mentions that in the counter affidavit, a plan, original master plan, zonal development plan, and a modified plan has been given. So, sir, whether this is as vague as it is in the affidavit or the affidavit is vague. So an answer is required because the people of this country would like to know what is happening in the Central Vista project. Thank you. Please. Sir, the arithmetic of 6 lines and 7 lines emanates from thinking which first produces a narrative and then wants to allow me to answer. Please. Allow me to answer the question. Please. For all your excitement, there are some decisions taken. Please. Well, Nothing. I am giving you a. Please have the patience to listen. You might actually get a few facts which might come in handy for your other purposes. So far, the decisions taken, the specific question the honourable member has asked is which buildings have been earmarked for demolition. On that, I say with a sense of responsibility that the only decisions which have been taken and announced so far are the following: that there are 90 acres of hutments which are of the 1942 variety. Those 90 acres of hutments are being removed
and the offices there are being relocated to Kasturba Gandhi Marg and Africa Avenue. So all those people who were in those substandard office spaces in 90 acres since 1947, and those who should have been addressed, they are moving. Now comes additional. As I mentioned in my first response, we have taken a decision. Who filed the affidavit in the Supreme Court? What is the affidavit with? It each has a context. If you like, I'm very happy to share that context with you. So far, we have obtained the necessary approvals for a new parliament building to be completed by 2022, for a new Central Vista Avenue. When we come to the next step, third step is 90 acres of hutments are being relocated. When we come to the next step, which is the Central Secretariat buildings, the new Central Secretariat complex, at that stage, some of the building, but let me now help you a little, not a single historical building, not a single iconic building which is part of our history, culture will be removed. The entire narrative was built on that this block will come down, that block will come down, that the, traditional buildings which are part of our history and which are iconic, not a single of those buildings will go down, if at all. And for that it becomes necessary. No, I'm not referring to any building named after any individual, because I'm talking to a category. Please गिराने का काम तो किया, हम बनाने का काम कर रहे हैं. देखिए ऐसा है, जो दो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी 90 एकड़ हटमेंट्स को रिमूव करने से, उसके बाद हमें कुछ बिल्डिंग्स गिरानी होंगी, पर वो तभी गिराई जाएंगी जब ऑल्टरनेट ऑफिसेस तैयार हो जाएंगे. आप जो समझ रहे थे कि बहुत डिसरप्शन होने जा रहा है, सारा शहर जो है रुक जाएगा वहां पे काम, none of that is going to happen in a very पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट चलेगा और नए तरीके. Madam, why are you getting so excited? Let me tell you, madam, if buildings like Krishi Bhavan, buildings like Shastri Bhavan, buildings like Nirman Bhavan have to come down, will you be sorry? Because you built those buildings and they were substandard buildings and they are not fit for a capital city. You built those buildings, we are going to now relocate you. Madam, we will relocate you into a new parliament building also, where you will have enough place to sit. Please address the chair, please. Thank you. माननीय रेवती रमन सिंह जी, माननीय रेवती रमन सिंह जी. या मैं आपके माध्यम से प्लीज माननीय रेवती रमन सिंह जी, प्लीज माननीय रेवती रमन सिंह जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यू विस्टा प्लान में पार्लियामेंट हाउस के अलावा, न्यू पार्लियामेंट हाउस के अलावा और कौन कौन से बिल्डिंग और मकानात बनेंगे और किसके मकानात बनेंगे, ये बताने का कष्ट करेंगे. मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने बड़ा एक प्रिसाइज सवाल पूछा है कि जो प्लान है सर, ये एक इवॉल्विंग प्लान है. इसके अभी जो थिंकिंग है, हम नया पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और जो इस समय हमारे भारत सरकार के बाकी सारे ऑफिसेज हैं, इसमें कुछ मंत्रालय हैं जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स में है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में है, कुछ है बिल्डिंग्स जो सारे शहर में दे आर स्प्रेड आउट. द आइडिया इज टू ब्रिंग ऑल दोज ऑफिसेज in the Central Vista Secretariat complex, जिसमें all offices will be together, and this Central Vista Secretariat will have space for 50,000 people working. It will be connected through an underground shuttle tunnel so that transportation is very easy. On these, sir, as I said, we have still to take the final decision. We have a plan, we have a master plan, but as we are going ahead, पहले सर हवा फैलाई गई, 27,000 करोड़ होगा, ये सारा बंद हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगी. Sir, nothing like that is going to happen. Each step will be taken with a timeline, with cost estimates, etc.
and the next steps in a few days when we take the final decision, they will be put in the public domain and tendering will be done. But जो माननीय सदस्य ने पूछा, मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि along the Central Vista Avenue, these 9 buildings will come, Central Secretariat office complexes, और उपराष्ट्रपति जी का जो the residence and a new Prime Minister's residence and complexes. One will move on this side of the North Block, जहाँ पे 90 acres में जो hutments थी, उनकी वहाँ पे, और दूसरा on the South Block. All these decisions are being taken in an orderly manner. Construction will be completed within time-bound period, etc. धन्यवाद. House stands adjourned till 2 p.m. And history. We have never seen a contradiction between this internationalism and the nationalism that was the driver of our independence struggle and subsequent endeavors at nation building. Indeed, this experience of the freedom movement has even further reinforced our internationalism by creating a strong solidarity with other nations who similarly struggle for their freedom. In recent years, as democracy struck deeper roots, we have found our own cultural expressions and identities that define us in a diverse world. In fact, drawing from our heritage, we have become even stronger voices for international cooperation and solidarity. That, of course, is most in demand at times of global stress, such as the COVID pandemic. Chairman, sir, many of us may share these sentiments and beliefs. The challenge of policy making is to give that a practical shape. In the case of our government, Prime Minister Modi's vision has provided an overarching framework to make our goodwill meaningful in terms of practical initiatives and activities. We already saw that in our humanitarian assistance and disaster responses, whether in Yemen and Nepal or Mozambique and Fiji. As a result, in the last few years, India has developed a reputation of being the first and reliable responder in the region. We saw that too in critical negotiations of global importance, like the Paris Agreement, where we had a key bridging role, or indeed in the International Solar Alliance or the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, two notable initiatives envisioned by the Prime Minister. When it came to Africa, we raised the level of our cooperation very substantially at the IFS 3 summit in 2015. Our projects, training and presence has today spread widely across that continent. From the Caribbean to the Pacific Islands, the message has been clear that the Prime Minister of India not only has the willingness to engage them personally, but to back that up with concrete development programs. It is this outlook of human-centric global cooperation that is the driving force of Vaccine Maitri. So, even as the COVID pandemic was in full fury, there were already demands of our pharmaceutical and medical capabilities. If we could meet them, it was largely due to the extraordinary ramp-up of our COVID-related capabilities with which the House is already familiar. We are all cognizant of the low fatality rates and the high recovery rates that resulted from the Prime Minister's leadership and the government's focused efforts. But there was an external beneficial impact of our capabilities as well. India could meet the spiking requirements of hydroxychloroquine, paracetamol, and other relevant drugs across the world. In fact, we supplied 150 nations with medicines, 82 of them as grants by India. As our own production of masks, PPEs, and diagnostic kits grew, we made them available to other nations as well. This generous approach, so characteristic of our culture, was also extended to the Vande Bharat mission. Starting from Wuhan,
we brought back nationals of other countries by looking after our own. The House would therefore appreciate that as we contemplated the prospect of vaccination against COVID-19, a similar approach was natural. Our domestic vaccination program started in January 2021, and within a few days, we also started assisting our immediate neighbors. Chairman, sir, the basis for doing so was the assurance that the Prime Minister gave in his virtual address to the UN General Assembly in September 2020. On that occasion, he declared that India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis. We also offer to enhance cold chain and storage capacities for the delivery of vaccines. This approach is not only in keeping with our age-old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam, as I have noted earlier, it is also the contemporary outlook of this government to utilize India's growing capacities for the benefit of humankind. As a prominent nation in an increasingly multipolar world, the international community has great expectations of us, and we in turn are prepared to demonstrate our willingness to shoulder greater responsibilities. From the very beginning, India has always believed that the pandemic threatens the entire humanity and that the rightful response would be a collective one. Accordingly, as early as 15th March 2020, Prime Minister took the initiative to hold a meeting of SAARC heads of governments to fashion a regional response. An important outcome was the creation of the SAARC COVID-19 Fund that supported the early exchanges on this issue within the region. We then held workshops and training courses to strengthen capacities for handling vaccines and other aspects of public health and COVID-19 management. Most recently, that was followed up by a meeting of our senior health officials of the region on 18 February 2021. They shared the outcome of the deliberations with Prime Minister, who urged a special visa scheme for doctors and nurses, coordinating a regional air ambulance agreement, a platform for studying data on the effectiveness of vaccines, and a network for technology-assisted epidemiology for preventing future pandemics. Chairman, sir, our efforts, of course, went well beyond the neighborhood when it came to online training and capability building. The Ministry of External Affairs conducted 14 e-ITech courses in partnership with premier institutions like AIIMS and PGI Chandigarh. There was even an exclusive one conducted in Bangla for Bangladeshi professionals, and one by Armed Forces Medical Service for the military doctors in Southeast Asia. These 14 courses had a total of 1131 professional participants from 47 countries. In planning and executing Vaccine Maitri, we are naturally guided by a determination to make a difference at a difficult moment for global society. Our reputation as the pharmacy of the world has been reinforced in that process. So indeed has the faith in Make in India. But more than the vaccines themselves, our policies and conduct have emerged as a source of strength for the stressed and vulnerable nations of the world. They can see that there is at least one major nation that truly believes in making vaccines accessible and affordable to others in dire need. The House should be aware that the supply of vaccines abroad is based on the assessment of adequate availability at home. This is continuously monitored and takes into account the requirements of our domestic vaccination program as it unfolds in different phases. An empowered committee oversees this entire process. Quite appropriately, Vaccine Maitri began in the immediate neighborhood, starting with the Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar, as also Mauritius and Seychelles. The extended neighborhood followed thereafter, especially the Gulf. Supplying smaller and more vulnerable nations was then the logic of reaching out to regions from Africa to the CARICOM. There was also contracts that our producers have entered into with other nations, either bilaterally or through the COVAX initiative. To date, we have supplied made-in-India vaccines to 72 nations across geographies. Sir, the House should recognize the enormous feeling for India that our initiative has generated. Those sentiments have naturally been expressed by leaders and prominent personalities of many nations. But more than that, our ambassadors feel every day
the warmth of ordinary people across the world for India. In the truest sense, this has been people-centric diplomacy at work. The world sees not just the selfless outlook of India, but also the quality of our products and our capabilities. The COVID pandemic has been a test of fire for all of us, but I can confidently state that even in the midst of a global crisis, the Prime Minister's initiative of such deep friendship has raised India's standing and generated great international goodwill for us. Thank you. Thank you. Manager Ram Ramesh. I refer to para 10 in the minister's statement, and I am sure that the Honorable Minister, who is amongst the most learned and most erudite ministers of this government, recognizes the roots of the post-2014 success in the foundations that were laid before 2014. And I want to mention only 3 aspects to it. We became pharmacy of the world. How? We had a Patents Act of 1970 that recognized only process patents and not product patents. And that led to an upsurge of Indian entrepreneurship in the pharmaceutical industry. Then we had the FERA, the Foreign Exchange Regulation Act in 1973, which diluted the equity stakeholdings of multinational companies and allowed Indian pharmaceutical companies to emerge. And third, we had huge investments in science and technology made in research laboratories across the country, publicly funded, public institutions, which created enormous successes. In the Covaxine, which has been developed by Bharat Biotech, people do not recognize that the crucial element of Covaxine, which is the adjuvant, was developed at the Indian Institute of Chemical Technology in Hyderabad, which is a 60-year-old organization, publicly funded. And Bharat Biotech itself owes its origin to the Department of Biotechnology that was established in 1986 and the Technology Development Board that was established in 1996. So while we pat ourselves on the back for being pharmacy of the world and being a major vaccine manufacturer, let us recognize that there has been a lot of continuity in these policies, and the foundations that have been laid over the past few decades has led to a situation where we can take legitimate pride in our achievements. Thank you. And I wish that the Honorable Minister, who knows this history very well as I do, will at some point of time recognize the continuity in this achievement. Thank you, sir. Shri Vinay Vishwamji. Shri Vinay Vishwamji. Please. I rise to support and congratulate the statements made by the minister. It's natural that this country of ours, this great country, has helped to the world by supplying the vaccines to 72 countries across the geographies. We appreciate that. And as my colleagues, Jaran Tamir said here, pharmacy of India, we became not in a matter of a second or a small time. It's a great effort, and that effort has a political idea behind that. I would like to remember Indira Gandhi and the role she played in making India as the pharmacy of the world. And that tradition, that ideology, that politics of India's greatness has to be upheld. I hope the government and the minister will take care of that point also. Sir, by concluding one more point, sir, charity has to begin from home. We helped everybody outside the country, that's true. What about the poor in India, the migrant laborers, the rural poor? For them, when we can ensure that this vaccine will reach them, I request the government to see that those sections of the country, the downtrodden, the migrant laborers, the poor people, rural Indian people, they should be taken care of. Thank you. Thank you. Mani Anand Sharma. Sir, while appreciating the initiative that India has taken and what is expected of our country by our partner nations, that in time of distress and a global pandemic, India would rise to the occasion. And therefore we take note of the countries that have been reached and the bridges of friendship built and the trust generated because of this initiative. At the same time, we also know, sir, as the Honorable Minister has said, that we are taking care
of adequate availability, as the health minister has also mentioned yesterday, in our own country. But I would like, John, the sentiments expressed in the House, it would be in order that we not only acknowledge and appreciate, but place on record the contribution of our institutions built over decades after independence, including the ICMR, including the Indian Institute of Integrative Biology, including the IIM Jammu and the IICT Hyderabad, as Shri Jairam Ramesh has mentioned, and the fact, sir, that India became the pharmacy of the world in the 90s, to be acknowledged as the largest producer of generic medicines, but also the office of the world. Not only that, we are by far the largest vaccine manufacturer. It's not only Bharat Biotech, I won't repeat what has been said, but also the Serum Institute at Pune. When you look at the year of establishment, that was in the 60s. So we must, this House must appreciate the contribution of the institutions, the Indian scientists, the Indian epidemiologists, and the Indian vaccinologists. Thank you, Anandji. Thank you. Manya Mantri. Sir, you will recall the saying that success has many fathers. So I am delighted to see today so many fathers claiming success. And I take it as actually... please, no, not allowed. Jairam Ramesh, please. I take it as a statement that they really want to praise the Vaccine Maitri initiative, except they are going about it in a very roundabout way. So it is done in good spirit. So I take it once again as a very generous compliment of the government's efforts from the other side. I also take it, sir, as a great affirmation of the Make in India program, which this government has pursued so strongly and with such great focus. Regarding, sir, the honorable members, Binay Vishwamji's point about the downtrodden, I think all of us know the enormous efforts that the government has made in actually getting vaccine prices. We have by far the lowest vaccine prices in the world. And the fact that for a lot of people, this vaccine is available. So, and finally, I also note the deep appreciation of Bharat Biotech and the Serum Institute, of course. And I faintly recall questions which were raised when actually Covaxin came into the market. I think many people perhaps don't wish to remember it now. But I am proud to say I got vaccinated with Covaxin. So I think I made my statement that day. Thank you, sir. Thank you. Discussion on the working of the Ministry of Railways. Shri Sujit Kumar to raise a discussion on the working of Ministry of Railways. Shri Sujit Kumar ji, कोई आप please Sujit Kumar ji, please. नहीं, please Sujit Kumar ji वही रिकॉर्ड पे जाएगा. आपसे आग्रह है please अपने बेल पर न जाए, आप पीछे जाएं. माननीय सुजीत कुमार जी वही रिकॉर्ड पर जाएगा. प्लीज अपनी सीट पर जाएं. कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. आप बोले कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. वेल में जो खड़े हैं उनसे आग्रह अपनी सीट पर जाएं. प्लीज आप बोले आप कंटिन्यू करें. आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है. सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर. कोई नारे वगैरह के कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. प्लीज. Immensely proud of our Indian Railways, which is the fourth largest railway network in the world, connecting over 23 million citizens every day, which is over 8 billion passengers annually. And the total network of the Indian Railways is over 68,000. So this gives us immense pride, sir. Sir, this year's Union budget has made the highest ever allocation on capital expenditure, which is 2.1 lakh crores, which is 29% more over last year's capex and 33% more over last year's revised estimate on capital expenditure. So hopefully, bulk of this will be spent on new initiatives, on completion of vital ongoing projects, and on improving passenger amenities. Sir, I welcome this increased allocation to capital expenditure. Sir, rail accident is an issue
which we are all concerned about. Subsequent standing committees on railways have been noting कोई चीज आपकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कोई चीज यहाँ कहने की इजाजत नहीं है, प्लीज. Resulting in more railway accidents. Sir, in this year's budget, capex towards safety-related work is estimated to increase by 18.4% over FY 19-20. This increased capital expenditure on safety will hopefully lead to better maintenance of railway infrastructure and lead to better safety, sir. Sir, I must mention here that the number of accidents on the rail network has sharply declined from 325 in 2003-04 to 54 in 19-20. Indian Railways has recorded best ever safety performance, 0 fatalities due to consequential accidents since April 2019, which is the first time in Indian Railway, and on behalf of my party, I appreciate these improved safety records. Sir, 74% of rail accidents in the country are caused due to derailments. The Standing Committee on Railway way back in 2016 had noted that one of the main reasons for derailment is a defect in the track or rolling stock. It had suggested that 4,500 kilometers of track length should be renewed annually. However, it's a matter of concern, sir, that except for FY 19-20, in none of the years have we met this target of 4,500 kilometers of track review. So, my request to Honourable Minister through you, sir, that there should not be and cannot be any compromise on safety, and hence the Minister will look into this safety, the track review with the seriousness it deserves. So my second point is regarding the share of railways in the total freight traffic, which has been steadily declining from 89% in 1950-51 to 30% today. 30% in 2011-12 and 27% today. So Niti Aayog in 2018 had highlighted shortfall in carrying capacity and lack of price competitiveness as some of the reasons for the decline in freight share. So freight traffic should be optimized or rationalized to make it competitive, because otherwise the higher cost of freight segment is eventually passed on to the common public in the form of increased costs of electricity, cement, steel, etc. I know it's a tricky balance, sir, between the passenger fare and the freight traffic, freight fare, but I think without increasing the passenger fares, Honourable Minister will find a way of improving and increasing the freight traffic in our country. The National Rail Plan of 2030 has been developed with a view to develop infrastructure by 2030 to cater to the increased traffic requirements by 2050. The NRP vision document aims to enhance the share of railways in freight transportation to more than 40% by 2030. I hope we meet this target. This will help decongest our roads, lead to better logistics management, and boost the revenues of the Indian Railways. This links to my third point, sir, which is about the green initiatives by the Indian Railways. The Indian Railways has fixed itself a stiff target of being a net zero emitter of carbon by 2030. This would mean eliminating emissions of 7.5 million tons of CO2 equivalent each year, about the same as 2 coal power plants. This includes an ambitious target of complete electrification of Indian Railway by 2023 and an equally ambitious target for generation of renewable energy using the railway's assets. Sir, India's transport sector contributes to 12% of our greenhouse gas emissions, with railways accounting to 4%. To reduce overall emissions from transportation, Indian Railways has committed to increase the freight moved by the railways to over 40% by 2030. On behalf of my party, which has always pioneered green initiatives in our state of Odisha, I applaud the ministry and Honourable Minister and hope it sets an example worldwide of being a very green transport mode. Sir, my next point is regarding the network expansion and modernization of the Indian Railways. Railways has not been able to meet some of the key targets for expansion and modernization in recent years. It has missed its budget targets in all the 3 years between 2017-18 until 19-20 for construction of new lines, gauge conversion, and electrification of the railway lines. As per the revised estimate, for 2021, the achievement will be less than the budget target on almost all these 3 indicators. Sir, there is a need to rework the priorities and to reschedule the activities which are contributing to the tardy progress in the network expansion and modernization. Also, Railways should relook at its engagement in the
peripheral or non-core activities that are non-remunerative, such as running of schools, hospitals, real estate business, catering, etc. The Committee on Restructuring Railways has noted that several of these activities are non-remunerative and impose a huge financial burden on the railways. It has recommended that these non-remunerative activities should be separated from the railways' core business and can be outsourced to private entities. Sir, my next point is about the increased focus and attention paid to improve connectivity in the Northeast and J&K. Extremely essential, sir, from a strategic point of view, particularly when we stare at a hostile nation like China. As a regional party, Biju Janata Dal has always supported national interest, and we welcome the focus of the government to improve connectivity in our frontier and border areas. But, sir, I would also like to highlight the gross neglect of the state of Odisha by the railways over the years. And I do not wish to single out this government. It has been done by successive governments. If anything, this government has been more generous to us than the previous ones. I had spoken about some of these issues during my budget speech as well, and even at the cost of repeating myself, I would like to reiterate them here. Sir, there are 6 districts in Odisha without any railway connectivity. In the last 7 years, only one additional district of Odisha has got railway connectivity. And sir, Odisha is not even a hilly terrain or a difficult terrain to connect through railways. In the last 7 years, Indian Railway has given only one new railway line to Odisha. We had requested 7,200 crores in this year's budget for railways with a detailed breakup and justification why we need those. Please conclude now. Sir, just 2-3 more minutes. So I was told I'll get some more time. No, but we have already given you have more. Sir, just one more speaker. Just 2 more. We have already taken your time. Sir, 2 more minutes. Please. But unfortunately, we got only 5,528 crores. Sir, we have a railway density of only 15 in Odisha, where the national average is 19, and our neighboring states, West Bengal has 44, Jharkhand has 24.3. I had said it before as well, we do not grumble our neighbors. In fact, we are happy for them, but we should also get equitable and fair treatment. Sir, Government of Odisha is committed to extend all help to Railway Ministry for implementation of railway projects, including filling the viability gap, formation of JVs, SPVs, directly financing constructions, beside offering free land. Sir, I would like to make a very quick mention of KBK region of Odisha, sir, which is a cluster of 8 districts in southern and western Odisha, 7 of which are part of the aspirational district program of Honorable PM. Sir, the railway density in KBK is 6. Shocking, it's truly shocking. The railway density of the country is 19. Railway density of KBK is 6. Honorable Jagan Rameshji is here. Thank you. He was Please. Minister of Rural Development. He understands the discussion. And since BJD has limited time, they had requested that they may be given so 4-5 minutes extra. We are ready to. Already 5 minutes extra dene ke baad, he has already taken his more time. If you give some more time from your party, I have no problem. Sir, give me 2-3 more minutes, sir. Please. Please. Sir. Jaram Rameshji, please take your seat. Please Sir, take sir. your seat. Sir. Please take. Please. Nothing is going on record. You both are taking his time. Sir, Honorable Member Jaram Rameshji knows. Sir, Honorable Member Jaram Rameshji knows that KBK is largely tribal, largely infested with LLWE. So he was MORD. He knows the ground realities of KBK region, sir. Sir, we have taken several initiatives to improve connectivity in KBK. As we know that connectivity is one of the key factors for socio-economic and all-round development of a region or a nation. It's in fact the lifeblood of economy. Sir, I'll give an example which the House should be aware of. Please remember the date of 26th of July 2018. It's a historic and memorable day because on this day, Odisha and the nation took a decisive step in its fight against the Maoists. A bridge called the Gurupriya Setu was inaugurated on this day right in the Maoist heartland of KBK, connecting over 30,000 people of 151 villages who were completely cut off from the nation until then. This area was previously known as Bichinanchal, meaning the region of disconnected. And today, the same area is called Swabhiman Anchal, the region of self-respect. This is the power of connectivity, sir. If Odisha government with its limited resources can achieve this, we can all imagine what can we do with greater connectivity, what we can all achieve with greater connectivity. However, sir, we are severely lacked by adequate rail connectivity in the KBK region. As I mentioned, our rail density is only 6. Sir, Honorable Prime Minister has been talking about Purvodaya, and he has been giving lot of thrust to the
development of Eastern region, which we all applaud and compliment. Sir, but how his vision of Purba Thank you, Sujit ji. Thank will you. be achieved unless we have proper rail connectivity Thank in you. KBK, sir. Sir. Thank you. Sir, so my last sentence, sir. I hope, Honorable Please, Minister, please, Binay Vishwamji, don't. sir, I hope that, sir, in the interest of internal security of the country, in the interest of regional balance, Honorable Minister will give a special thrust and focus to the Thank you. KBK region of Odisha. Thank you. And Thank you. improve rail connectivity Sujit ji, in this thank region. you. Thank you. Shri Ram Vichar Netam ji. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अनुमति दिया, इसके लिए आपका आभारी। सबसे पहले मैं इस देश के यशस्वी रेल मंत्री जी को, जो बहुत ही संवेदनशील के साथ साथ इतने जो क्रांतिकारी परिवर्तन करने का जो मादा रखने वाले ऐसे मंत्री हैं, जिसमें हम सब पूरा देशवासी को गर्व होता है कि देश को एक ऐसा रेल मंत्री मिला है जो हर क्षेत्र में, खास करके माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की दिशा में, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश में जो रेलवे है वो विश्व स्तरीय कैसे इसमें सुविधा दी जा सके और वो स्टेटस कैसे यहाँ मेंटेन कर सकें, ऐसा सोच को लेकर के हमारे देश के यशस्वी माननीय रेल मंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो रेलवे के इतिहास में जो मील का पत्थर जो रखा है, मैं समझता हूँ कि शायद ही इस कल्पना को साकार करने में कोई कामयाब हो पाएगा। इसके लिए महोदय, जो हमारे देश के जो आर्थिक विकास और प्रगति में भारतीय रेल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो कृषि उत्पाद को दूर दराज के स्थानों तक ले जाने की बात हो या औद्योगिक विकास में सहायता देनी हो या प्रमुख बंदरगाह को परस्पर जोड़ना हो, भारतीय रेल हमारे देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाटने में सदैव सहायक रही है। यातायात का अपेक्षाकृत सस्ता साधन होने के साथ साथ हर लोगों को 3 से 4 तक सबसे पहली प्राथमिकता रेलवे का यातायात को ही लोग पसंद करते हैं और यही कारण है कि आज 67,580 किलोमीटर जो लंबे रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क को संचालन करना, उसकी पूरी व्यवस्था देखना, इतना एक जोखिम भरा काम है। इसके बावजूद हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी बिना टेंशन लिए और टेंशन फ्री होकर के जिस प्रकार से इस काम को कर रहे हैं और उसका सीधा असर जो है रेलवे मंत्रालय के साथ साथ जो यात्रीगण हैं, पैसेंजर हैं, उन तक भी मिल रहा है। और यही कारण है कि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें या माल ढुलाई के दृष्टि से अगर बात करें तो उसमें भी साफ जो है दृष्टिगोचर होता है महोदय। रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार ये तो समय समय पर कई उपाय किए हैं। अक्सर परिचालन अनुपात को रेलवे में हो रहे घाटे के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। यह कारक रेलवे के लगभग सभी जोनों में व्याप्त है। हम सब ने देखा है कि देश में कोविड-19 के दौरान किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। लोग जहाँ हैं वहीं पड़े हैं,
करोड़ों लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में कहीं श्रमिक फंसे हुए हैं, कहीं छात्र फंसे हैं, कहीं यात्रीगण फंसे हुए हैं। एक तरफ से जो अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे माहौल में भी रेलवे ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने, खास करके रेलवे मंत्रालय ने जो हम सब के लिए जो अभूतपूर्व काम किया, हम सब के लिए और खास करके करोड़ों श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए जिस प्रकार से उनकी मदद की, घर तक पहुंचाने के लिए जो सेवा दी, सुविधा के साथ जो सेवा दी, ये बहुत ही अभिनंदनीय काम किया है और इसको कभी भुला नहीं सकता देश का इतिहास। महोदय, ऐसे समय में स्वाभाविक है कि रेलवे के बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है और यही कारण है कि पिछले कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगभग सभी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में रेलवे के सभी जोनों से संचालन संबंधी घाटे में करीब 37,000 करोड़ रुपए की कमी आई थी। ये स्वाभाविक था महोदय, लेकिन हमारे सामने चुनौती थी कि देश के जो गरीब मजदूर, जो बहुत सारे जो लाखों की संख्या में छात्र और भी प्रवासी जो फंसे हैं, उनको हम कैसे गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचा सकें, उनकी मदद कैसे की जा सके, इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया। महोदय, हम लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों और छात्रों को ले जाने के लिए चलाई गई श्रमिक जो स्पेशल गाड़ियां हैं, उन्हें मिशन मोड में चलाया गया और यही कारण है कि राज्य के सरकारों के मांग के अनुरूप 1 मई से 31 अगस्त तक 4,621 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गई। ये छोटी मोटी बात नहीं है महोदय, इतनी बड़ी हिम्मत का काम और इतने बड़ा साहसिक काम के साथ साथ एक मानवीय संवेदना को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन सब के प्रति, देशवासियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और उस सपना को, उनकी बात को साकार करने के लिए उतने ही संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे देश के रेल मंत्री जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। महोदय, जहां तक यात्री गाड़ियों के सेवाएं बहाल कर दिए जाने के बाद भी टाइम टेबल वर्ल्ड पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवाएं जो जारी रखी गई, इसके साथ ही साथ 7,267 विशेष पार्सल गाड़ियां चलाई गई, जिसमें 7,014 गाड़ियां टाइम टेबल सेवाओं के अधीन चलाई गई। लगभग 6.6 लाख टन माल इन सेवाओं के माध्यम से भेजा गया। महोदय, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है हमारी सरकार। दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न उपाय अपनाती है और यही कारण है कि 2016-17 में हुई 104 दुर्घटनाओं की तुलना में 2019-20 में हुई दुर्घटनाओं की संख्या 55 थी, जबकि इस अवधि के दौरान भारतीय रेल के यातायात परिमाण में अधिक वृद्धि हुई है। रेल दुर्घटना की जहां तक बात करें महोदय, तो लगातार हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस अवधि में कोई ऐसी बड़ी रेल दुर्घटना कम से कम देश के समाचार पत्रों में या फिर हम सब के सामने ये देखने को नहीं मिली और हम लोगों ने सुना भी नहीं। महोदय, इन सब के बावजूद इसमें जो बेहतर तरीके से जो काम करने का निर्णय लिया है, माननीय मंत्री जी के सूझबूझ से निश्चित ही मैं उन्हें बधाई देता हूं। महोदय, जहां तक बजट की बात है, तो पहली बार देश के इतिहास में ऐतिहासिक बजट आया है महोदय।
रेल को जिस प्रकार से जो काम करने का एक अवसर मिला है, उसमें निश्चित हम कह सकते हैं इसमें रेल का जहां विकास होगा, वहीं यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं रेल की जो स्पीड जो औसत होती थी, उसे भी बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना बना करके काम किया जा रहा है। महोदय, अगर 2020-21 और 21-22 का हम अगर रेलवे का बजट की बात करें तो सकल बजटीय सहायता 2020-21 में जहां 70,250 करोड़ था, वहीं बजट अनुमान 2021-22 में 1,07,300 इसमें दिया गया है। महोदय, आंतरिक संसाधन से जहां की 7,500 करोड़ दिया गया है, इसके साथ ही साथ अतिरिक्त बजटीय संसाधन 83,292 जहां 20-21 में था, वहीं 2021-22 में 1,02,58 करोड़ का अनुमान देकर के कुल पूंजीगत व्यय 2,15,058 करोड़ का इतना भारी भरकम जो बजट दिया गया है। महोदय, इससे रेलवे को काम करने में, खास करके जो बहुत सारे स्कीमें जो ऑनलाइन हैं, इन सब को पूरा करने के लिए और आगामी जो योजनाएं जो हैं फ्यूचर प्लान की दृष्टि से उसे भी पूरा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। महोदय, जहां तक माल भाड़ा से प्राप्त राजस्व की बात है, जहां 2017-18 में 1159 जहां मिलियन टन का माल का ढुलाई किया, 19-20 में 1208 मिलियन टन का ढुलाई किया, वहीं हम 2021-22 में महोदय 2019-20 की बात करें तो 1,13,487 करोड़ का राजस्व प्राप्त रेलवे को हुआ। महोदय, इस तरह से तुलनात्मक अगर हम बजट की बात करें महोदय, तो जिस प्रकार से योजना बना करके रेलवे ने काम करना शुरू किया है, उसके जो नई रेल लाइन की बात करते हैं, बहुत सारे माननीय सांसदगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, राज्यों की ओर से भी बहुत सारे डिमांड आते हैं। बहुत सारे जो रेलवे लाइन जो अधूरे पड़े हैं, उनको कैसे पूरा करना है, इसके लिए नई रेल लाइन बिछाने के लिए 26 जहां 2020-21 में 26,971 करोड़ का इतना का बजट का अनुमान रखा गया था, वहीं इस बार बढ़ा करके 40,932 करोड़ का इसमें बजट का आवंटन दिया गया है। महोदय, जो पिछले साल के अपेक्षा 52% अधिक है। महोदय, इसी प्रकार से दोहरीकरण का 21,545 के एवज में 26,116 करोड़ का इतना आवंटन दिया गया है। महोदय, जहां तक इसमें 21% की वृद्धि है। इसी प्रकार से यातायात सुविधाओं के लिए हम देखते हैं तो 156% की वृद्धि के साथ वहीं पर रेलवे ऊपरी ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए भी माननीय नेताम जी कंक्लूड करिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। इसमें दिया गया है। महोदय, मैं अभी ये तो बजट की बात कर रहा था, मैंने अभी अपने बस आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में जितनी बातें कहनी हो कह ले। मुझे बताकर 20 मिनट का समय दिया गया है। महोदय, मैं समझता हूं कि मैं अपने समय में पूरा कर दूंगा प्लीज। तो इसलिए महोदय, मैं खास करके जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जहां तक जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर जो रेलवे डिपार्टमेंट से जो हमें आवंटन प्राप्त हो रहा है, ये पहली बार इतिहास में महोदय कि छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक बजट इस बार जो है हमें प्राप्त हुआ है, जो
3,650 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये अकेले छत्तीसगढ़ के लिए महोदय, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे स्कीम जो चल रहा है महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि कृपया इधर न देखा जाए। नहीं, आप उधर देखिए तो अच्छा रहेगा। आप इधर देखेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। माननीय नेताम जी, इसलिए माननीय नेताम जी, यह देखने का काम जो पार्टी ने समय दिया उसके तहत मैं कर रहा हूँ। प्लीज माननीय मंत्री जी प्लीज कंक्लूड करें। अब मैं महोदय एक हमारा अपने अब मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र का एक है जो चिरमिरी बरवाडीह के जो लाइन है महोदय, इस बारे में माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसदों ने, झारखंड के सांसदगण ने कई बार और विधान हम लोगों ने पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपने कलीग्स का समय ले रहे हैं। कृपा करके उस लाइन की स्वीकृति दे दिया जाए जिससे कि बने। इसके साथ ही साथ महोदय, धन्यवाद, मैं 1 मिनट चाहूंगा महोदय। नहीं, अपने सहयोगियों का, साथियों का समय ले रहे हैं। अंबिकापुर में रेलवे टर्मिनल एक दे दिया जाए, रेलवे टर्मिनल की स्वीकृति कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ यात्रियों की बढ़ती जो संख्या उसको देखते हुए रायपुर से जोड़ने के लिए अंबिकापुर से रायपुर तक एक इंटरसिटी ट्रेन अगर चला दिया जाए तो बहुत अच्छा होता महोदय। धन्यवाद। ये निवेदन के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर। माननीय नारायण भाई जे राठवा। उप सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु बोलने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2021 की केंद्रीय बजट में 2020-21 के साथ रेल बजट पेश किया था। रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे का एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। रेलवे बोर्ड के जरिए नीतियों का निर्माण करता है और भारतीय रेलवे सरकार की एक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है। 2020-21-22 के लिए रेलवे का राजस्व 2,17,460 करोड़ रुपयों का अनुमानित किया गया था, जिसमें 2019-20 की तुलना में 12% की आर्थिक वृद्धि है। भारतीय रेल हमारे राष्ट्र की संरचनात्मक क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 2020-21 के राजकोष में रेलवे की अपेक्षित कमाइयों को बाधित किया है, लेकिन खराब वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने महामारी से पहले से ही एनडीए सरकार में चली आ रही है। रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु समय समय पर कई उपाय किए गए हैं। अफसर परिचालन अनुपात को रेलवे में हो रहे घाटे के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। यह कारक रेलवे के लगभग सभी जोनों में व्याप्त है। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगभग सभी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में रेलवे के सभी जोनों में संचालन संबंधी घाटों में 36,000 करोड़ रुपयों की कमी हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि पहले जब रेलवे बजट पेश होता था, दोनों सदनों में सभी सांसदों को एक रुचि रहती थी कि रेल मंत्री जब रेल बजट पेश करता है तो रेलवे के संदर्भ में सांसदों को भी ऐसा लगता था कि हमारे चुनाव क्षेत्र में, हमारे स्टेट में कहीं नई गाड़ी आएगी, कोई नई गाड़ी चलाई जाएगी,
कोई नया रेलवे प्रोजेक्ट आ जाएगा, पिछली गवर्नमेंटों में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उसके अंदर कुछ बजट के अंदर ज़्यादा पैसा आवंटित किया होगा, ऐसी बहुत सी ख्वाहिश माननीय सांसदगणों को रहती थी। लेकिन मेरे को अभी लगता है, मैं भी एक पूर्व रेल राज्य मंत्री रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री की जो चार्म था, रेलवे मिनिस्ट्री की जो इज्जत थी, वो आज मैं देख नहीं रहा हूँ। और जो भी सांसदों की डिमांड है, वो डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि हमारे देश की आर्थिक विकास और प्रगति में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका तो रही है, चाहे कृषि उत्पादक को दूर दराज के स्थानों तक ले जाना हो, औद्योगिक विकास में सहायता देनी हो, या प्रमुख बंदरगाहों को अरस परस जोड़ना हो। भारतीय रेल हमारे देश की एक देश की विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच दूरी कम करने के सदैव मददरूप रहा है। यातायात का अपेक्षाकृत सस्ता साधन होने के कारण तथा देश की एकता और अखंडता और सुदृढ़ करने में भी एक सहायक रहा है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ और अकाल, भूकंप आदि के समय लोगों के दुखों को कम करने में भी भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। महोदय, कोयला, पेट्रोलियम और आयरन जैसे भारी सामानों की ढुलाई हेतु रेलवे विशेष रूप से उपयोगी रही है। पिछले वर्षों में स्टीम इंजन से चलने वाले रेल इंजन अभी डीजल इंजन में और अब मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक इंजनों में परिवर्तित हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ियां पहले के मुकाबले तेजी से चलने लगी और माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन में भी तेजी आई है। आज भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस कार्य के लिए इसके पास तकरीबन 1.3 मिलियन कर्मचारी लोग हैं। महोदय, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड के अधीन है और भारतीय रेल सेवाओं ऊपर उसका पूरा अधिकार है। परंतु पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का विषय चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सेवाओं देने हेतु प्रशंसा का एक हकदार रहा है। वर्ष 1947 में आज़ादी के पश्चात भारत को एक पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई थी कुछ लाइनें की मरम्मत की जाए, कुछ लाइनों को बिछाई जाए ताकि देश के दूर दराज क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क को जोन में बदलने का निर्णय लिया गया था और उस वर्ष के दौरान 6 जोन अस्तित्व में आए थे। महोदय, इससे पूर्व रेलवे संबंधी उत्पादन देश के अंदर काफ़ी कम होता था, परंतु देश ने जैसे जैसे विकास किया, रेल संबंधी उत्पादन भी देश के अंदर बढ़ने लगे। सितंबर 2003 में रेलवे प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में और माननीय सांसदों की मांगों को लेकर रेलवे जोन की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिसके बाद कई अन्य मौक़ों पर भी रेलवे जोन को बढ़ाने की जब बात आई तो उसके अंदर संख्या बढ़ाया गया और वर्तमान में देश के अंदर 17 जोन मौजूद है। मुझे आज सदन में यह उल्लेख करते हुए एक दुख भी हो रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे की उपलब्धियों की जगह उन्हें अभी बेचने का कार्य कर रही है और रेलवे में रोजगार के अवसर बंद कर रहे हैं। महोदय, केंद्र की सरकार दक्षिण पूर्व जोन के 4 डिवीजन में 3000 से अधिक पद और रेलवे के 16 जोन में 11,000 से अधिक पद समाप्त करने जा रही है। रेलवे में आधी नियुक्तियां समाप्त करने जा रही है तथा हबीबगंज के बाद अभी जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी 75,000 करोड़ में ठेके पर देने की तैयारी हो रही है, जबकि देश की आज़ादी के पश्चात से ही
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी तथा यूपीए 1 और यूपीए 2 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने विश्वव्यापी मंदी के दौरान भी देश को आर्थिक संकट से बचाया था, ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और उससे मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी। मैं महोदय सदन में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई और तभी रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुझे भी रेलवे में राज्य मंत्री के तौर पे काम करने का अवसर मिला था और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी केंद्र में रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे को मुनाफा में आगे ले जाने के लिए सहयोग दिया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 2007-8 में दाहोद इंदौर, वर्ष 2007-8 में छोटाउदेपुर धार और 1990-91 में दिल्ली विरमगाम सामग्री, वर्ष 2011-12 में मियागाम करजन डभोई और 2011-12 में विरमगाम सामख्याली और विरमगाम सामख्याली, 2013-14 में वटवा अहमदाबाद, वर्ष 2008-9 में अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर राजस्थान, 2012-13 में ढसा जैतलसर और 2012-13 में अहमदाबाद बोटाद। और इसी तरह से देश के अन्य जोनों में भी 7 साल पहले रेलवे प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया और इनके लिए तत्कालीन केंद्रीय सरकारों ने धन का आवंटित करने का पूरा कोशिश किया था। इसी स्थिति में केंद्र सरकार ने माननीय रेल मंत्री का लोकसभा में, इसी संदर्भ में इसलिए मैं बता रहा हूं कि मंत्री जी का लोकसभा में तारीख 10 मार्च प्रश्न संख्या 224 के दौरान यह वक्तव्य देना कि इस बात को सदन को बताते हुए बड़ा खेद मेरे को हो रहा है, दुख लगता है कि पिछली सरकारों ने 2014 से पहले अनाप शनाप योजनाओं की घोषणाएं की थी। योजनाओं के बारे में लोगों को भ्रमित किया, बिना कोई आवंटन, बिना कोई पैसा की उपलब्धता, बिना निवेश होने के कारण सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट किया था। ये जो बात मंत्री जी अभी 10 तारीख को लोकसभा के प्रश्नकाल के दरमियान बताया, ये मेरे को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि इतनी सरकारें गई और इतने प्रोजेक्ट बनाए, तब अपनी रेलवे चली और आप लोग इसमें अभी सभी स्टेट के अंदर सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों को ये बताते हैं कि भाई भारत सरकार ने रेलवे का काम इतना नेटवर्क बिछाया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 7 वर्ष पहले रेलवे ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इन 7 वर्षों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि रेलवे ने सारी उपलब्धियां केवल 7 वर्षों के अंदर ही प्राप्त किया है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध भी है कि यह इस तरह के भ्रमित करने वाले व्यक्तियों देकर सदन को गुमराह न करे और तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं तथा जिनके कार्य आज बीच में रुके पड़े हैं और इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है, तो इन सभी रेलवे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर धन का आवंटित करे और उन्हें पूरा करने में सहयोग दे। महोदय, मुझे यह कहना भी जरा भी संकोच नहीं है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर इसके प्राइवेटाइजेशन ऊपर जोर दिया जा रहा है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को संचालन करने के लिए निजीकरण का सुझाव दिया है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार नेतृत्व में नीति आयोग अब ऐसी व्यापक योजनाओं पर कार्य कर रहा है जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के
नहीं बल्कि कारपोरेट सेक्टर को रेलवे की प्रॉपर्टी बेचकर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे इन्हें निजी लाभ पहुंचाया जा सके। महोदय, 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट तेजस ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरुआत हुई थी, जिसमें रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम बताया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि यदि रेलवे पूरी तरह से सरकार के पास ही रहती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह प्रॉफिट की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, परंतु रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है और उन्हें जिस क्षेत्र में प्रॉफिट नहीं होता है वे वहाँ कार्य बंद करके छोड़ देते हैं। दूसरे, रेलवे में प्रॉफिट कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि करो, और यदि ऐसा है तो उसका सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों के ऊपर और मध्यम गरीब यात्रियों के ऊपर पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल हमने पिछले 15 दिन के अंदर सुना था कि रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट जो 5 रुपया था उसका सीधा 10 रुपया 30 रुपया कर दिया एक पैसेंजर का, खाली प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, छोड़ने के लिए, लेने के लिए। तो ये आम आदमी को बहुत परेशानी करता है। महोदय, प्राइवेट सेक्टर अपने व्यवहार में कुछ अलग ही होते हैं तथा उनकी नागरिकों के प्रति जवाबदेही में कमी पाई जाती है। इसलिए यह सोचने की बात है कि जहां पर आज की तारीख में रेलवे का एक पूरा नेटवर्क मंडल, जोन से लेकर मंत्रालय स्तर तक काम कर रहा है और सभी की एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित है, ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में भी क्या यह नेटवर्क कायम रहेगा और देश के नागरिकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकेगा? महोदय, यह देश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दे दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित किया गया है। रेलवे के मुताबिक उसका मकसद भारतीय रेलवे में नई तकनीकी विकास करना है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके अलावा रेलवे का दावा है कि इससे नई नौकरियां के अवसर भी पैदा होंगे। महोदय, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर में एक नया नारा काफी जोरों शोरों से प्रचलित है कि सबका साथ सबका विकास। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी संपत्ति को बेचकर या उसे प्राइवेट सेक्टर में देकर सबका साथ सबका विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सरकारी संपत्ति को आने पौने दोने में बेचकर सबका साथ सबका विकास न करके देश के गरीबों का विनाश जैसा लग रहा है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अधिक भ्रष्टाचार, अधिक कानून, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं पैदा करेगा और मूल रूप से ये गरीब यात्री अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए केंद्र सरकार को प्राइवेटाइजेशन से दूर रहना चाहिए, ऐसा ये मेरा सुझाव है। लेकिन यह चिंता का विषय भी है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन पर झुकी है, उसने न केवल देश का आम नागरिक को परेशान होगा, बल्कि गरीब, दलित, आदिवासी समुदाय के लोग और जिन्हें नौकरियों में आरक्षण, जो उसमें से आरक्षण और रिजर्वेशन जो मिलता था वो भी चला जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा, जिससे उनके परिवार बेकार होंगे और उसकी हालत भी खराब हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन होने पर इन परिवारों की नौकरी बरकरार रखने हेतु कोई कदम उठाएंगे तथा कारपोरेट कंपनियों के एग्रीमेंट के साथ क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान किया गया है कि उनकी सेवाएं संतोषजनक न होने पर आगे चलकर जब केंद्र में गैर भाजपा सरकार बने तो वह उनके साथ किए गए एग्रीमेंट को आसानी से उन्हें दी गई रेलवे सेवाओं प्रॉपर्टी को वापस ली सकेगी? महोदय, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है
कि पिछले वर्षों में रेल दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हुई। यही सही है कि अभी माननीय सदस्य ने बोल रहा था कि दुर्घटना बहुत कम हुई। लॉकडाउन के कारण से एक साल से सभी गाड़ियां बंद कर दिया था, तो एक्सीडेंट होने का मतलब ही नहीं है। गाड़ियां ही नहीं चली तो एक्सीडेंट कहां से होगा? तो ये सही है कि दुर्घटनाओं के अधिकतम दुर्घटना मानवीय भूल से होता है। उसका कारण है रेलवे में हजारों चालकों की, टेक्नीशियनों की, कर्मचारियों की कमी है और ये जिससे यात्री एवं कर्मचारियों की सेफ्टी का प्रश्न उठता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के कारण जो रेलगाड़ियाँ बंद की गई है उन्हें कब तक चालू करेंगे और चालू करने का विचार है क्या, तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC और हाई स्पीड कॉरिडोर, पैसेंजर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम देश के अंदर किन किन स्थानों पर चल रहा है और वहाँ कार्य प्रोजेक्ट पर कब तक पूरा होगा और कितना बजट का आवंटित उसमें किया है वो बताने की कृपा करें। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए और मंत्रालय के चालकों सहित अन्य रिक्तों की पदों जो खाली है वो तुरंत भरने के हेतु आवश्यक कदम उठाए और यह भी सुनिश्चित करें कि रेल चालकों के अन्य कामों में न लगाकर केवल उनके लिए निर्धारित चालक के कार्य में ही लगाया जाए। और इसी तरह जो भी रेलवे के अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जो ट्रेन बंद हो गई है वो ट्रेनों की दोबारा चालू करने के लिए, जहां कोरोना नहीं है, ये बहुत गरीब क्षेत्र से जो ट्रेनें चलती थी वो ट्रेन नौकरियात लोगों के लिए, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए, कोई कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, सभी ये रूट बंद कर दिया है। तो उसको खोलने के लिए 2 मिनट उसको खोलने के लिए हम आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थानों पर ट्रेनों को चालू किया जाए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैडम सर, ये बजट को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60 साल का जतन, यानी 60 वर्ष 60 साल का जतन और 7 साल में पतन, इसे कहते हैं शीघ्र ही पतन। GST से उद्योग धंधा खत्म, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खत्म, बेरोजगारी से युवा का भविष्य खत्म, कर्ज से डूबे खेडूतों खत्म, सरकारी खजाना खत्म, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म, लोकतंत्र खत्म, SC ST OBC नौकरियां खत्म, अनप्लैन्ड लॉकडाउन से ये पूरा देश खत्म हो रहा है, पूरी रेल मिनिस्ट्री खत्म हो रही है। इतने शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद ऑनरेबल मेंबर। After this, we have P. Wilson ji to make his intervention. You have 6 minutes. Thank you, madam. Sir, Okay, please let the members speak. Thank you very much, madam. With over 67,580 route kilometers, Indian Railways is the third largest network in the world. Please let him speak. Congress government mooted out nationalization. Please maintain discipline. Let the honourable members speak and let's all listen. Madam, to I should have the full 6 minutes. Yes, you will. Yes. With over 67,580 route kilometers, Indian Railways is the third largest network in the world. Congress government mooted out nationalization of some sectors with a view that the men and women equally have the right to an adequate means of livelihood and that the material resources of the community are so distributed to subserve the common good. This was done so that the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. This was in furtherance to achieve the directive principles of state policy. In fact, DMK party also strives for the same. Now, you are promoting few crony capitalists in India and the entire material resources are left at the disposal, including the railways. The centralization of wealth of this nation and natural resources only with them is very dangerous and working against the citizens of this country. Madam, why I said this is, the privatization of trains on some routes, even as the infrastructure like tracks and stations belonging to Indian Railways,
would result in an undue burden on the common man in the form of increased ticket fares. Private trains are decided by railways to be operated by private players in 12 clusters on 109 routes by bringing in 150 trains. These routes are prime routes and prime time has been given to private players with the freedom to decide the class of composition, that is 1AC, 2AC and 3AC, the stoppages and even the fares. Railways get a revenue share of 36% out of 2.2 of upper class passengers travelled during 2018-2019. If the private players decide to carry only upper class passengers, then railway will lose its revenue to a great extent. ICF, everyone knows, has manufactured train sets which meets all qualifications and is successful running in 2 routes as Vande Bharat for last 2 years, which is costing 97 crores. If this is purchased from the Western countries, it would cost more than 200 crores. The railways are building dedicated freight corridors by taking loan from World Bank and Asian Development Bank. In the recent budget, the Honorable Finance Minister has announced about monetizing these corridors, which will result in private players running freight trains and would make huge profit. If these routes are put into use, 52% railway freight share will be handled by the private players. Already, 2 train services between New Delhi to Lucknow and Mumbai to Ahmedabad are privatized through IRCTC. While railways were running New Delhi-Lucknow Tejas Express, the fare for New Delhi-Lucknow in AC chair car was only rupees 1,165 and in the executive chair car it was 1,855. Whereas after privatization and run by IRCTC, the AC chair fare is rupees 1,755, which means 600 rupees excess, and the executive chair car fare is increased to 2,450, which means 595 rupees excess. Also, 152 different concessions which are allowed by railways are not allowed by IRCTC. Now, during the height of COVID-19 pandemic, the Indian Railways invited expression of interest from multinational privates and subsequently released tenders to finalize running of 224 express train in 109 routes, that is from 11 corridors, and intended to introduce private express train in busy trunk routes from 2023 onwards. Yes. Already, railways have made plans to privatize 3 loco wagon manufacturing production units like Modern Coach Factory, Raebareli, RCF, ICF, Perambur. Railways intend to privatize 5,500 kilometers of railway track this year. When the assets of railways such as train services, loco maintenance activities are privatized, Indian Railways will lose income. Although the minister claims that the Indian Railways will not be privatized, when the activities of the railways are privatized, the income of Indian Railways will deplete, resulting in financial crisis for Indian Railways, which eventually will become like Air India and Indian Airlines. Catering activities were privatized nearly 2 to 3 decades back, yet there are complaints from passengers regarding catering services. So privatization doesn't mean improvement in services or efficiency. Honourable Member, you'll have to wind up. Yes. The budget, however, does not offer much scope to expand the railway network in the state of Tamil Nadu. The total allocation of the budget for infrastructure and safety for 2021 and 22 in Tamil Nadu is only 2,972 crores, is just to keep the projects alive. In fact, if the amount that has been sanctioned by way of grant is utilized in Tamil Nadu, all the projects will take about 15 to 20 years to be completed. Therefore, I would request that ample amount may be granted, grants may be sanctioned for the projects in Tamil Nadu. Greatly. Thank you. Now we have Dr. Banda Prakash ji.
You have 6 minutes. Thank you, Madam. Madam, this is a new railway budget. The general budget, they have initiated proposals for the railways. The National Railway plan to create future-ready railway system by 2030. Indian Railways to construct additional dedicated freight corridors. 100% electrification for broad gauge railways lines by December 23. Highest ever total plan of rupees 2,15,058 crores this year. Out of that, 1,07,100 crores coming from capital expenditure. Madam, the Indian Railways, which over 67,500 route kilometers, is the third largest network in the world under single management. During the financial year 2019-20, Indian Railways carried 1.2 billion tons of freight and 8.1 billion passengers, making it the world's largest passenger carrier and fourth largest freight corridor. Madam, because of the shortage of the time, I wanted to confine my talk about the South Central Railway particularly. Sir, South Central Railway always contributing much for the Indian Railways. In 2017-18, our contribution is 13,770 crores. In 18-19, 15,880 crores. Railway revenues after the East Coast zone, the South Central Railway is the second in the country. They stood second in the country. Out of the money, we are having 5 divisions. 3 divisions gone to the Andhra area and 2 divisions came for Telangana, only 1 division for Nanded, that is Maharashtra. But out of the 7,024 crores in 21-22, that is allotted, out of that 4,660 crores that is gone to Andhra area. The present year budget also 7,220 crores. For this year budget, the 5,812 crores is going to Andhra area divisions, that is 3 divisions. I request our Honorable Minister, sir, if you wanted to create a separate zone for Andhra area, you create. But allotting to South Central Railway and distributing money to Andhra area, it is a lot of injustice to Telangana, sir. Because Telangana is contributing almost all 60% of your railway revenues for the South Central Railway. Particularly Secunderabad division, lot of coal and cement factories are there. From freight charges, you are getting more money from Telangana, sir. Sir, another request I wanted to make, in the AP Reorganization Act, the assurance given under the 13th schedule, number 10, the Indian Railways shall within 6 months from the appointed day examine the feasibility of establishment of a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve rail connectivity in the state and make an expedite decision thereon. Even there is a 11th clause also, it is for improving the line connectivity in Telangana and Andhra area, sir. To our surprise, number of times we have requested Honorable Minister also. Last time we had a discussions in the House on 24/7/2018, July. On the day after AP reorganization discussions, Honorable Home Minister of and Rajnath Singh ji has answered that it will be implemented. The government is committed for implement the obligations and statutes in the letter and spirit, true spirit of that organization, sir. But surprisingly, recently in one Information Act activist, they applied for the, what is the status of this one? They answered that no more coach factories required by Indian Railways for the present and the foreseeable future. Sir, this is, we strongly feel that the reply of the government amounts misleading the, dishonoring the statutory provisions of the law of the land. All these years, for the public representatives on national level and people of Telangana state are hopeful of establishment various statutory assured obligations. Honourable Member, 2 on minutes part of only. 2 minutes more. Madam, yes. After 6 minutes you can remind me.
Then you will say you want 2 more railway minutes. coach factory in our state. Sir, our coach factory is first assured by the Honorable P.V. Narasimha Rao, the then Central Minister, in 1980, sir. To our surprise, after 1984, it is gone to the Punjab state under the some accord. They have established in Kapurthala. After that, again, it is gone to the Raebareli. After this, some time, this is gone to, one factory is gone to Bihar when railway minister was there. After it is gone to Bengal, some railway ministry is there. Sir, there is no South India never getting any factory after independence. Before that, we had a Perambudur railway coach factory is there, sir, that is improving a lot. But I request the Honorable Minister to please sanction the coach factory to Telangana, sir. Kindly, it is the assurance given under the AP Reorganization Act. Kindly conclude. One minute. Madam, another project, POH workshop. You will have to conclude. Just a minute. Madam, Telangana, it is backward state. It's okay, but newly here formed there is state. I request you limitation to of give time, some more honourable time. member. New state, no voice. That is why I want you 2 minutes before. Kindly wind up. Sir, earlier it was the wagon factory they have sanctioned in 2010. Later it is changed to POH workshop, sir. You are requested for 160 acres of the land. Recently we handed over 150 by paying double compensation. Farmers also we have paid and endowment department also we paid. Thank you. I request only 2 crores are allotted in this budget. Honourable member. I request, sir, madam, one minute, I am concluding. I request the Honourable Minister, please allot not only 2 crores, sir, whatever the budget you have allotted for that POH workshop, please give us. Sir, I request you to kindly take up that Kajip, you sanction a division for Vizag, and I request you to sanction a division for Thank you, Dr. Kajipet Banda also. Prakash Thank you very much. Subhash Chandra Bose ji. Respected panel chairman, ma'am. You have 6 minutes. Thank you very much for giving the opportunity to speak on demands for grant to railways for this current financial year. Ma'am, I would like to utilize this short time to mention the long pending projects in our home state of Andhra Pradesh. Ma'am, I request the Honourable Minister, so many long pending projects are pending in Andhra Pradesh. I request the Honourable Minister to allocate sufficient funds for early and speedy progress of the pending projects. Ma'am, there are about 11 long pending projects, which are: 1, new line Macharla to Vinikonda project of length 65 kilometers, which is pending since 2011. Tenali Repalle double line project of 37 kilometers length, and Pakala Tirupati double line 41.94 kilometers, and Mahbubnagar Gutti double line of length 240 km, Dharmavaram Pakala double line of km 227.70 kilometers, Singaraikonda Kanigiri new line of 66.53 kilometers, Narsapur Machilipatnam new line of 85 km, Darsi Narsapat of new line of 65 km. These are all pending projects in the state of Andhra Pradesh. The Kakinada Narsapur via Kotipalli new line project, the construction is of the bridge on the river Godavari at Kotipalli has already been started, but the work is completely slowed down. I don't know what is the reason. I request the Honourable Minister, please review once the progress of this bridge, construction of the bridge, and issue suitable orders to the concerned authorities for speedy completion of the work. Like another important pending project is to link up the Kakinada town to Samanalkota Petapuram main line. This is also a long pending project. From 2 decades, it is pending with the government.
with the railway department for 2 decades. The project is the long-pending desire and demand of people of East Godavari of Andhra Pradesh. Long-pending desire and demand. All the paperwork has already been completed. The railway department has also in token agreed for this proposal. The only pending is the allocation of funds is the only pending for this project. I request the Honorable Minister, please look into the matter and sanction the funds, required funds at the earliest possible convenience. Atlage, I would like to draw the attention of the Honorable Railway Minister towards the pending provisions of the AP Reorganization Act 2014. Under AP Reorganization Act 2014, the Government of India had assured the people of AP a new railway zone comprising of 3 divisions, one Guntakal, Guntur and Vijayawada with its headquarters at Visakhapatnam. The decision announced the formation of South Coast Railway is a testimony to the resilience of the people of Andhra Pradesh. More than 4 years of struggle inside and outside the parliament lay behind our Honourable Member, 2 minutes. Rightful demand for this declaration, but no positive reply from the Ministry of Railways till today. In the end, I would like to thank the Indian Railways for providing services during COVID-19 pandemic. Like the railways manufacturing are being used to manufacturing items like PPE kits, beds, medical trolleys, etc. Railways also provided bulk cooked food to the nearby places where IRCTC base kitchens are located. The coaches were converted to isolation wards, and railways are also opened the hospitals for COVID patients. I congratulate the railways for such a service rendering to our nation. Honourable Member, please conclude. I also, finally, on behalf of our YSR Congress Party, support the demand for this current financial year proposed by Honourable Minister. Thank you very much. Thank you. Honourable Finance Minister. Thank you. Vishwambar Prasad Nishad ji, 4 minutes. कितने? 4. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मुझे रेल मंत्रालय के बजट पर चर्चा के लिए हमारी पार्टी ने मौका दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, रेलवे का बजट पहले अलग से होता था, पूरे देश की निगाहें रहती थी कि आज रेलवे का बजट होने वाला है। टीवी पे लोग बैठे रहते थे, कितना किराया कम हो रहा है, कौन सी नई ट्रेन किस एरिया में चलाई जा रही है, उसके लिए बड़ी बेसब्री के साथ लोग इंतजार करते थे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई और मेन बजट के साथ मर्ज कर दिया तो लोगों में हताशा और निराशा हुई है। रेलवे सबसे ज़्यादा लोगों को करीब 2.5 करोड़ लोग जो है प्रतिदिन जो है इससे यात्रा करते हैं और सुलभ और सस्ता यात्रा का साधन है, जिससे लोगों को जो है अपने गंतव्य स्थान पहुंचते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मांग आ रही है कि रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ किया जा रहा है, सारे सेक्टर प्राइवेट की तरफ सफाई से लगाकर पटरी की मरम्मत से लगाकर जितने भी काम होते हैं सारे प्राइवेट की देने की बात चल रही है। तो एक तरफ तो बेरोजगार हताश हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आरक्षण का नुकसान होगा। जो रेलवे बोर्ड भर्ती करता था उसमें आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी थे, SC ST OBC के लोग थे, उनका नुकसान किया जा रहा है। और कुछ चंद्र उद्योगपतियों को जो है ये रेलवे की सारी बेशकीमती ज़मीन देने का काम किया जा रहा है। महोदय, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड के लिए कोई विशेष इस बजट में, रेलवे बजट में ट्रेनों के लिए उसके लिए नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास नहीं है। और
इसमें जो लॉकडाउन के समय जो कुली हमारा भार लेके दौड़ते हैं, माननीय रेल मंत्री जी, कुलियों के लिए कोई 1 रुपया भी आपने नहीं दिया। बेचारे बहुत से लोग अपने घर चले गए, वापस चले गए। मैंने पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था। मंत्री को ध्यान नहीं। कोरोना काल में रेलवे वेंडर और जो रेलवे वेंडर थे, रेलवे छोटे छोटे स्टेशनों में छोटी छोटी दुकान लगा करके पानी से लगा खाने पीने के सामान देते थे, उनका बहुत बुरा हाल रहा और वो हताश और निराश रहे। जो प्लेटफार्म का टिकट 10 रुपये मिला करता था, आज 30 रुपया कर दिया गया है। आज तो ऐसी इमरजेंसी लगा दी गई कि कोई रेलवे स्टेशन में घुस नहीं सकता है। आरपीएफ के जवान और टीटी सब खड़े रहते हैं, कोई एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता अंदर। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। पहले लोग गांव से चलते थे, दोपहर में वही रेलवे स्टेशन में बैठते थे, इंतजार करते थे, खाना खाते थे और जब ट्रेन आती चलते थे। और अब निश्चित कर दिया गया है कि 10 मिनट ट्रेन के आने के पहले ही स्टेशन में प्रवेश होगा। बहुत से लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं। इतनी ये स्थिति है। हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछली बार जो है रेलवे फूड पार्क की बड़ी जोर शोर से चर्चा हुई थी, खूब स्वागत हुए थे। हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं वहाँ, लेकिन माननीय मंत्री जी अभी रेलवे फूड पार्क का कोई अता पता नहीं है जो घोषणा हुई थी। मैं कुछ मांग अपने क्षेत्र की करना चाहता हूँ, जैसे झांसी खैरार और खैरार मानिकपुर खैरार भीमसेन, वहाँ रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है धीमी गति से चल रहा है कुछ क्षेत्र में, उसको तेज़ किया जाए। फतेहपुर रेलवे स्टेशन में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव की मांग करता हूँ। कानपुर से फतेहपुर होकर मुंबई जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसको रेगुलर किया जाए। निशाद जी कंक्लूड करना पड़ेगा। बस 2-3 मांगे, वही मांगे और कोई खास वो नहीं है। पहले हम सुना करते थे कि लोग रास्ता अनजान रास्ते में जाते थे, लोग रास्ता भटक जाते थे। माननीय मंत्री जी के ज़माने में ट्रेनें रास्ता भटक गई, पता नहीं जाना दिल्ली था कहाँ चली गई। ये ऐतिहासिक घटना हुई है। माननीय मंत्री जी इसको सुधारना पड़ेगा अपने विभाग को। और मेरे क्षेत्र की जो मांगे हैं मैं वो बता दूं। गतिमान और ताज एक्सप्रेस को चित्रकूट मानिकपुर तक चलाया जाए। बेतवा एक्सप्रेस मानिकपुर से दुर्ग प्रतिदिन चलाया जाए। रिवांचल एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर से बांदा होते हुए रीवा तक चलाई जाए। तुलसी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाए। चित्रकूट कानपुर एक्सप्रेस को बढ़ाकर दरगाह शरीफ बाराबंकी तक चलाया जाए। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में सेकेंड एसी और थर्ड एसी के ज़्यादा डिब्बे लगे हैं, उनकी जगह जो है स्लीपर के कोच लगाए जाएँ उनको। ये मेरी खासतौर पर मांगे हैं। और मैं मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट की तरफ ये जा रहा है विभाग, और विकलांगों के लिए या आपने जो सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो कोटा होता था वो समाप्त कर दिया गया है। और जो मासिक जो टिकट में जो लोग यात्रा करते थे, अप डाउन करते थे, चाहे दिल्ली से गाजियाबाद हो, छोटे छोटे और पैसेंजर ट्रेनें चालू की जाएँ। और रेलवे स्टेशन तमाम वाटर बेंडिंग मशीनें खराब पड़ी हुई, मानो उसमें करोड़ रुपया रेलवे को चला गया, उसको उनको तत्काल चालू कराया जाए। यही थैंक यू निशाद जी। बहुत धन्यवाद। इसके बाद रामनाथ ठाकुर जी 4 मिनट। 4 मिनट। महोदया जी, आपने 2021-22 आम बजट पर रेलवे के ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट पर बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन इस अर्थ में कि आप रिजर्वेशन देते हैं और 1 बरस हो गए, आपने जो सुविधाएं दी रिजर्वेशन में तो उतने ही पैसे आप देते हैं, लेते हैं, लेकिन सुविधा नहीं देते। और गरीब लोगों का ये ट्रेन है, गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। मैंने कई बार बिहार के लिए आपको पत्र दिया, आपसे निवेदन किया, आपसे आरजू किया कि बिहार के लंबित रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने की क्या योजना है। जो लंबित योजना है, बिहार की आबादी का एक हिस्सा देश के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
बिहार के लिए विभिन्न जगहों से नए ट्रेन चलाने की आपकी क्या योजना है? रेलवे में निजीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में रेलवे के जो कर्मचारी को उनकी सेवा की स्थिरता प्रदान करने की क्या योजना है? दोहरीकरण जो समस्तीपुर से दरभंगा के है, 5 वर्ष में सुन रहा हूं कि दोहरीकरण हो रहे हैं, लेकिन वहां की काम की स्थिति को मैं जो देख रहा हूं उसमें लगता है कि 10 वर्षों से अधिक समय लगेगा। इसको पूर्ण करने में आपका क्या टाइम बाउंड है, इसको भी बताने का आप जवाब जब देंगे तो बताने की कृपा करेंगे। समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए मैं हजारों पत्र आपको दिया, आपसे निवेदन किया, सोनपुर डिवीजन के जनरल मैनेजर से निवेदन किया, लेकिन एक नई ट्रेन 7 वर्ष से मैं निवेदन कर रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप कृपया करके बताएंगे कि समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए या अन्य राजधानियों के लिए कब से शुरू करने जा रहे हैं? रेलवे की जो 66 लाख हेक्टेयर जमीन है आपकी, उसका सही उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। यह निवेदन है कि उस जमीन का सही उपयोग करें। पहले के ज़माने में उसकी नीलामी होती थी और रेलवे को आय होता था, लेकिन वो अब दूसरे लोग उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, आपका उस पर ध्यान नहीं रहा है। तो रेलवे में जो घाटा हो रहा है उसकी तो पूर्ति होगी, घाटे की पूर्ति होगी। कंक्लूड करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, बस एक मिनट। हाजीपुर, भगवानपुर, कर्पूरी ग्राम में नई रेल के लिए सर्वे हो चुका है। इस बजट में, इस वित्तीय वर्ष में उसको आप काम कब स्टार्ट करेंगे, यह आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। सोनपुर डिवीजन में कर्पूरी ग्राम स्टेशन का सौंदर्यीकरण कब तक करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस पूसा रोड स्टेशन से मुजफ्फरपुर जाकर जज पर बम फेंके थे। वो स्टेशन के लिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं, आग्रह कर चुका हूं, पत्र लिख चुका हूं, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। उस पूसा रोड रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कब तक करेंगे, यह आपसे निवेदन है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, 2 काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। धन्यवाद, धन्यवाद ऑनरेबल मेंबर। इसके बाद झरना दास वैद्य, आई थिंक शी इज नॉट इन द हाउस। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, शुक्रिया। 4 मिनट्स। ऑनरेबल डिप्टी चेयरपर्सन मैम, माननीय मंत्री जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं और इनकी साफ गोई का मैं क्या कहूँ। कल ही परसों कहा है कहीं किसी कीमत पर निजीकरण नहीं होगा, तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं तलवार के बगैर। कोई नहीं सर, ठीक है, बड़ी मेजॉरिटी है। आई जस्ट विश टू स्टार्ट मैम विद द फैक्ट कि जब रेलवे पे बोलने के लिए, रेलवे के साथ माननीय मंत्री जी आप कितना चले हैं पता नहीं, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी रेलवे में ही चली है। अभी भी चॉइस होता है तो हवाई जहाज़ छोड़ के रेलवे में जाते हैं, ट्रेन से। एक नैसर्गिक सा रिश्ता है, सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे देश का। इस पर फिल्में बनी हैं, फिल्मों में सॉन्ग सीक्वेंस है। तो रेल सिर्फ एक ऐसा उद्यम नहीं है जिसको लाभ हानि के ही चश्मे से देखा जाए और उसको एक ह्यूमन रिलेशनशिप के आयाम से ना देखा जाए, ये उचित नहीं मानता हूं मैं। मेरा मानना है कि व्हाट स्टॉप्स यू इन रिज्यूमिंग द नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशंस एट अ प्री कोविड लेवल। बहुत सारी चीजें आपने खोल दी हैं, बार चल रहे हैं, बस रेलवे ऑपरेशंस नहीं हो रहा। और जैसा मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा
कि टिकट उतना ही है, लेकिन गरीब आदमी को जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया है। केटरिंग स्टाफ किस परिस्थिति में सर कभी पता कर लीजिएगा। हालांकि आप जानते होंगे, जानना और महसूस करने में थोड़ा फर्क होता है, वही फर्क है वहाँ। सर दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, आजकल एक शब्द आपने मोनेटाइजेशन बहुत पॉपुलर किया, बहुत पॉपुलर किया, लगता है कि कोई अद्भुत शब्द। अरे ये बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का ये नया आत्मनिर्भर वाला श्लोक है, ये इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मोनेटाइज करिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूंगा कि RLDA आपका काम नहीं कर पा रहा, आपको नई एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ एक मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में जाना होगा। दूसरा, जो भी आप मोनेटाइजेशन के बाद चीजें खड़ी करें वो पैसेंजर एमिनिटीज को समर्पित हो, वो किसी क्या कहूं, किसी क्रोनी समृद्धि के टापू के समक्ष जाकर के कि भैया दूध तुम्हें चाहिए वो ले लो, उससे वो टेम्पटेशन हो रहा है आप लोगों को, लेकिन उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कई इलाकों में अगर आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि अक्सर मैंने सदन में स्पेशल मेंशन में 0 आवर में उठाया है, उस पर कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट सैंक्शन एक्सपेंडिचर, उसमें भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, इट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विथ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग। मैम, चेयरपर्सन मैम, MST मेरा मानना है कि ये हमारे राज्यसभा के भी कई स्टाफ मिले हैं। आपकी ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन जो लोकल चल रही है वो नहीं हो पा रही। कभी पूछ के देखिएगा कितनी दिक्कतें होती हैं कि सदन 6 बजे से आगे चलता है, क्योंकि 6:20 में आखिरी ट्रेन है गाजियाबाद, फरीदाबाद वगैरह के लिए। ये दिल्ली, मुंबई, पटना, क्योंकि अक्सर जैसे दानापुर से चल के लोग आ रहे हैं और उसी तरह दिल्ली, मुंबई और अन्य इलाकों में है, उनकी दिक्कतों को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या कहा जाए सर। और मैं समझता हूं कि ये मंथली MST उसकी बहाली हो शीघ्र से शीघ्र। कल आपके मंत्रालय ने एक बयान दिया, एक मंत्रालय, माननीय मंत्री महोदय, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताऊं। तो थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी नजरें इनायत इधर हो। सर कल एक विज्ञापन आया ट्विटर पे रेलवे मिनिस्ट्री का, विच सेज रेलवेज एक्लिप्सेस प्रीवियस ईयर्स फ्रेट लोडिंग नंबर्स। फिर मैंने चेक किया सर, आपकी 0.06% बढ़ोतरी हुई है, 0.06%। सर ट्विटर चेक कर लीजिएगा, मैं अपने मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूं। अब सर ये शोक और चिंता का विषय हो रहा है, आप उसमें होली, ईद, दिवाली बना रहे हैं, ये उचित नहीं है ना, उसको चेक करिएगा सर। मुझे तो अद्भुत लगा कि रेलवे ये ट्विटर पे क्यों डाल रहा है। You'll have to start concluding. मैम अभी तो 4 मिनट है ना, 2 ही दिखा रहा है वहाँ। 4 मिनट हो गए मैम, वहाँ देखिए ना, बोर्ड में गलत टाइम आ रहा है। अच्छा मैम, मैं तो उसी के भरोसे जा रहा था, 1-1.5 मिनट दे दीजिए। ले लीजिए। Actually, the growth in freight loading has dropped by 6.34% since 2018-19, sir, for your kind information. Now, मैं कुछ मांग करना चाहता हूं सदन में, और कई लोग सदन में आज इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सर हमारा राज्य तो लेबर सप्लाई स्टेट है, मैं कह चुका हूं। अलग अलग राज्यों को हमारे राज्य के लेबर चाहिए, लेकिन वो लेबर कैसे आएंगे इसकी व्यवस्था नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थाएं बहाल करिए, क्योंकि हम तो मजदूर भेजने वाले राज्य हैं, हम तो कभी भी समृद्धि के सरोकार के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं आपसे एक मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय, चूंकि रिकॉर्ड में जाएगा, दिल्ली से समस्तीपुर एक सुपर फास्ट ट्रेन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, कर्पूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से समस्तीपुर, दिल्ली से बलिया होते हुए छपरा तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से एक सुपर फास्ट चंद्रशेखर एक्सप्रेस। तीसरी चीज, आसाम से 2 ट्रेनें चलती है राजधानी। एक मैं चाहूंगा कोसी का पूरा इलाका अछूता रह जाता है, अगर एक को आप वाया सहरसा ले आएंगे तो एक पूरे क्षेत्र को एक संदेश जाएगा। और एक बहुत पुरानी ट्रेन चलती थी सर, GL एक्सप्रेस। ऑनरेबल मेंबर मैम बस 30 सेकंड मैम, कभी कभार तो आप वहां होती हैं, उसी में थोड़ा बहुत उसका GL एक्सप्रेस का महोदय परिचालन बहाल किया जाए। और न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन एंड गेज कन्वर्जन में आपका लगातार डिक्लाइन हुआ है 17-18 से। खैर उसका तो आप जवाब बेहतर दे देंगे। पर आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सर, रेलवे को आप जब कहते हैं ना निजीकरण, सर आपने बहुत जोर से कहा निजीकरण नहीं होगा, वहां इंप्लॉइज काम करते हैं,
वहां जब एक बार आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना तो संविधान की धाराएं, आरक्षण के सरोकार खारिज हो जाएंगे। बताइए कितने कॉर्पोरेट हाउसेस में आप रिजर्वेशन इंश्योर कर पा रहे हैं? तो ये एक तरीका है। मैं बस आखिरी जय हिंद बोल लेने दीजिए। जय हिंद बोलने से पूर्व सर आपसे कहूंगा कि ये तय मानिएगा कि इतिहास सिर्फ तात्कालिक लोगों के ताली बजाने से नहीं चलता है। इतिहास दर्ज करेगा कि आपने जो फैसले लिए उस फैसले से आवाम को कितना फायदा हुआ, ना कि समृद्धि के 5 टापुओं को। जय हिंद मैम। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार। Thank you, Madam, for giving this opportunity. In the Union Budget 21-22, 1,10,055 crores has been allocated for railways. Out of this, 1,07,000 crores is capital expenditure. Sir, the Honorable Finance Minister, while presenting the Union Budget, has mentioned 3 dedicated freight corridors. East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada will be undertaken. This will benefit to the people of my state. I am very thankful to the ministers for these 2 proposals. Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister with regard to the AP Reorganization Act 13th schedule. It says, the central government shall take measures to establish rapid rail and road connectivity from the new capital of Saksar state of Andhra Pradesh to Hyderabad and other important cities of Telangana. So it is a hard fact that in spite of new capital of AP, Amravati, being located close to Vijayawada and Guntur, it is deprived of railway connectivity, and it is precisely the reason why the AP reorganization mentioned in explicit terms central government shall take steps to develop rail and road connectivity. Then come to the another important aspect, South Coastal Railway Zone at Visakhapatnam. A new railway zone has been created with headquarters at Visakhapatnam, but it has not come into full-fledged operation. Till now, territorial jurisdiction for that zone has not been finalized so far. I urge the government to take the steps to make it fully operational very soon. And there are some other projects with regard to the railway. The Honorable Railway Minister about his ministry, which is silent on new Amravati railway line, announced in the year 2016 with an estimated cost of 3,273 crores. It is 106 kilometers. Line from Erupalem, Amravati, Namburu, 57 kilometers. Amravati, Pedakorapadu, 27 kilometers. Sattanapalli, Narsarapeta, 25 kilometers. I've been raising this issue on the floor since long time, but no allocations were made in 2018, 19 and 20, not 21 this year also. You have given just 1,000 crore. This indicates the non-seriousness of the railways towards the new capital of Amravati. If the recent reports in the media are to be believed, then it looks like the center is going to shelve the Amravati line, citing lack of support from the present state government. Then there are several other projects are pending. This is Tenali-Gunturu doubling railway line with electrification has been taken up. It has to be completed within 18 months, but it is still going on. Likewise, the development of Gunturu and new Gunturu stations has become really important after making Tulluru Mandal as the new capital of area. And secondly, Gunturu station needs to be given status of capital station and to be provide all facilities. Along with Mangalagiri station situated between Vijayawada and Gunturu also to be developed. The survey of Pagidipalli-Gunturu railway line was completed long back. In the absence of second line, passengers are facing a lot of problems due to delay due to heavy traffic leading loss of revenue railways. So the Honorable Minister may show some generosity on this sanction of the second line. Then, Madam, with regard to the Honorable Member, you'll have to start winding. Yes, sir. Finally, I am coming. With regard to the projects in the state of Andhra Pradesh, has to be given priority since it is newly a formed state by virtue of the provisions of the AP Reorganization Act. It should not be neglected in any manner. With these observations, I support the demands for grants under the Ministry of Railways. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. We have Shri Neeraj Sekharji. मनोज जी चले गए, मैं पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कई बातों से उनका समर्थन नहीं करता हूं मैं उनका, लेकिन आज जो उन्होंने माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी और पिताजी के लिए जो ट्रेन की मांग की है, तो
मैं उसका सपोर्ट करता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि रेलवे पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं शुरू करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सारे कर्मचारियों का, रेलवे कर्मचारियों का, जो कोविड के इस काल में भी उन्होंने काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। आज हम सब लोग को उनका नमन करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का, जिन्होंने ऐसा बजट दिया, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं, फिर भी पिछले साल से ज़्यादा बजट दिया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी का सारे मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक बात की तारीफ करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी के, हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि नए प्रोजेक्ट, नई ट्रेनें नहीं शुरू हुई, नई प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो रहे हैं, नए काम नहीं हो रहे। जो आप काम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, सबसे ज़रूरी वो काम है जो पिछले काम है, जो 30 साल से नहीं हुए, 40 साल से हुए, जो सरकारों ने नहीं किए, वो आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, नए काम शुरू करने से पहले वो पुराने काम पूरे हो जाएं जो कई सालों से नहीं हो पाए हैं। रेलवे सेफ्टी के बारे में आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में, मैं दोहराता नहीं हूं, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि नज़र ना लगे, कि अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इंजन का लोकोमोटिव प्रोडक्शन पिछले 6-7 सालों में तिगुना हुआ है। डबल लाइनिंग और सारे काम में आंकड़े मेरे पास आए, ये दूंगा तो मेरा समय निकल जाएगा। कितना समय मैम? सॉरी, मैं पूछना भूल गया। 10 मिनट्स। I have 10 मिनट्स। तो मैं, क्योंकि मेरी मांगे भी हैं ज़्यादा, तो मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, जो ट्रेन सब लोग चाहते हैं नहीं बने, लेकिन मैं एक आग्रह आपसे हमेशा करता हूं, और जब भी रेल पे बोलने का मौका मिलता है मैं बात जरूर दोहराता हूं कि हम लोग एसी में और जो एसी फर्स्ट में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं, लेकिन जो हमें ख्याल रखना है, जो इस देश का आम नागरिक चलता है स्लीपर क्लास में, उनकी किस तरह हम लोग सुविधा और बढ़ा सकें, हम लोग को इस पे ध्यान देना होगा। मैं मानता हूं कि पिछले कई सालों में उसमें बहुत सुधार हुआ है, और जो डब्बे हैं और उनमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो जनरल बोगी में लोग चलते हैं, मैं आग्रह मंत्री से बार बार कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा उन बोगियों को बढ़ाने की, और जनरल ट्रेन भी चलें, क्योंकि मैं जो अपने क्षेत्र का मैं बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार का, मैं जब ट्रेन में चलता हूं तो मुझे दिखता है कि उन जनरल बोगियों में बहुत भीड़ होती है। मैं आग्रह करूंगा, और उन ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें जनरल बोगी, क्योंकि मैं पूर्वा में बहुत चलता हूं, हम लोग एसी के बाद ही जनरल बोगी लगी होती है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उसमें लोग चलते हैं। अगर उसमें और बोगियां, जनरल बोगी लग सकें तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का भी आभार करना चाहता हूं कि जो स्वच्छता में काम हुआ है, रेलवे स्टेशन पे जाइए तो अब दिखाई देता है कि रेलवे स्टेशन पहले से कितने परिवर्तित हैं। मैं ये मानता हूं, मैं ये अपने आज इस यहाँ बोलने के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सफाई रखें तो रेलवे स्टेशन का बिल्कुल जो दृश्य होता है वो बदल जाता है, अगर सफाई रहे तब भी। मैं आज अपने स्टेशन बलिया का बता सकता हूँ, पिछले कई सालों में वहाँ के लोग खुद वहाँ को साफ रखते हैं, तो स्टेशन बिल्कुल बदल गया है। दिल्ली का स्टेशन में देखता हूँ, अगर हम लोग सफाई रखेंगे, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहता था कि जो रेलवे के टॉयलेट्स हैं उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा और उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। जो सफाई और बायो टॉयलेट्स जो हुए हैं उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं बलिया के बारे में इसलिए कहना चाहता था, और विशेषकर मैं बलिया पूर्वांचल के लोगों का, बलिया गाजीपुर के लोगों का एक माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जब से कोविड हुआ है और ट्रेनें कुछ कम चल रही हैं, एक लोगों के बीच में एक आशंका फैल गई है कि अब जब ट्रेन फिर से शुरू होंगी, जो रेलवे स्टेशन जहां कम ट्रेनें रुकती हैं उन रेलवे स्टेशन को हॉल स्टेशन कर दिया जाएगा। ये एक भ्रम फैल गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इस भ्रम को जरूर दूर करें। मेरे से लगातार जो स्टेशन, छोटे स्टेशन बलिया और गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ इधर हैं, वो सब लोग मुझसे आग्रह करते हैं कि ट्रेनें भी रुकना बंद हो जाएंगी। अब सब लोगों को पता नहीं कहाँ से कैसे भ्रम हो गया है कि वो हॉल स्टेशन हो जाएंगे, वहाँ पर टिकट नहीं मिलेगा। तो ये रेलवे, मैं बता रहा हूँ कि लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ, सम्मान पे ले लेते हैं लोग
कि हमारे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग का हॉल्ट स्टेशन हो जाएगा, आज़ादी के समय से हम लोग का स्टेशन है। तो मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से, ये जो भ्रम फैल रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है, मैं इसके लिए आग्रह करूंगा। बलिया के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बलिया क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि 1857 से मंगल पांडे जी बलिया के थे। 1942 में बलिया 14 दिन तक आज़ाद था। उन 3 जिलों में से था जहां बलिया आज़ाद रहा। 75 में जो जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन किया वो सबको पता है। और हम लोग के बलिया के लोगों के लिए बार बार ये मांग रही है कि वहाँ बकुल्हा स्टेशन है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे महाराज जी से, आदरणीय योगी जी से बात करके उस स्टेशन का अगर नाम जयप्रकाश जी के नाम पे हो जाए तो ये जो लोग 75 में जेल गए उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होगी। हम लोग और सब लोग बलिया के ये चाहते, बलिया के नहीं लोग, जो लोग 75 की लड़ाई लड़े और जो लोग जेल गए वो सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम पर हो। और मुझे आज भी याद है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे जब 100वां साल मनाया गया था जयप्रकाश जी का, तो उन्होंने ये घोषणा वहाँ पर की थी। मैं ये भी मैं चाहूँगा कि उनकी जो एक घोषणा थी उसको पूरा किया जाए। बलिया स्टेशन के बारे में और एक आग्रह मैं व्यक्तिगत रूप से बार बार रेलवे मंत्री से कह भी चुका हूँ और वो स्वीकार भी करते हैं कि मैं करूँगा। और ये मेरी नहीं, कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि कई ट्रेनें ऐसे हैं जो एक स्टेशन आकर रुक जाती हैं और वहाँ घंटों रुकी रहती हैं। अगर उस ट्रेन को, जैसे गाजीपुर में 2 ट्रेनें, एक गाजीपुर से बांद्रा जाती है और एक गाजीपुर से दिल्ली जाती है, अगर वो ट्रेन वहाँ आकर कई घंटे रुके रहती है, अगर बलिया तक आ जाए, वहाँ से 50 किलोमीटर और दूर है, क्योंकि इतना समय है कि अगर वो बलिया आके फिर जा सकती है। मैं चाहूँगा 2 ट्रेनों को अगर बलिया तक बढ़ा दिया जाए या छपरा तक बढ़ा दिया जाए, बिहार के लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। तो मैं माननीय रेलवे मंत्री से चाहूँगा कि ये बात कुछ गए। और जो बात हमारे साथी कह रहे हैं कि कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं कहता हूँ। अभी फैसला अभी कोविड ख़त्म होगा, मेरे ख्याल से अप्रैल से है कि सारी ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी। हम लोग के क्षेत्र के लोग, ये भी एक है कि स्टॉपेज के बारे में भी मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी अपनी बात बता दें। हम लोग की स्टॉपेज, अगर मैं मानता हूँ इस बात को कि कई पॉलिटिकल स्टॉपेज होते थे कि किसी ने बोला कि हमको यहाँ स्टॉपेज चाहिए, वहाँ स्टॉपेज हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो जाता था वहाँ पर। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्टॉपेजेस कम करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्टॉपेजेस जरूरी थे और उन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जाता है और वहाँ पर अगर स्टॉपेज रुक गया तो एक लोगों के मन में ये भ्रम फैल गया है। इसको भी दूर करने का मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको दूर किया जाए। मैं फिर से, अभी समय है मेरे पास, मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करूंगा कि डबलिंग का काम जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि इस कोविड के टाइम में थोड़ा कम धीरे हुआ है, डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि जो हम लोग का बलिया का क्षेत्र है इससे पूर्वोत्तर राज्य तक जा सकता है। आसाम भी ट्रेन जाती है, हमारे यहाँ से एक राजधानी गुवाहाटी, जो दिल्ली राजधानी चलती है वो बलिया होके जाती है। मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि माननीय रेल मंत्री जी ने उसको हफ्ते में पहले 3 दिन चलती थी, अब 7 दिन कर दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो जैसे डबलिंग का काम है, मैं जानता हूँ कि पिछले कई सालों में डबलिंग का काम बहुत अच्छी तरह और बहुत जोरों में चल रहा है। मैं चाहूँगा कि बलिया की जो डबलिंग का काम है और इलेक्ट्रिफिकेशन काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मैं एक और बलिया की और गाजीपुर की विशेषकर, क्योंकि पहले हमारे रेल मंत्री आदरणीय मनोज जी थे तो गाजीपुर में काम हो जाते थे, लेकिन गाजीपुर के लोगों के भी ये मांग है कि जो वहाँ पे छोटे स्टेशन हैं, जो छोटे स्टेशन हैं वो जो छोटे स्टेशन है माननीय रेल मंत्री जी, वहाँ पर काम, मैं धन्यवाद। अगर कुछ हो जाए, वहाँ पर भी छोटे स्टेशन है, वहाँ काम नहीं हुआ है, कई सालों से वो स्टेशन की हालत थोड़ी ख़राब है। अगर मैं चाहूँगा उन रेलवे स्टेशनों पर भी कुछ काम हो जाए। मैं कृपया कंक्लूड करें। मैं बिल्कुल, मेरा जो अगर समय बच गया तो मेरे साथियों को दे दिया जाए। हमारे बलिया के एक और साथी, उनका समय, मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि फिर से रेल मंत्री जी से आग्रह यही करना चाहूँगा, जो श्रमिक हैं और जो लोग जनरल डब्बों में चलते हैं उनके यात्रा का जरूर ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
श्री राजमणि पटेल जी, वैसे तो आपको 32 मिनट्स थे पार्टी के लिए, लेकिन राठवा जी ने 22 मिनट्स ले लिया, आपको 10 मिनट है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के कथनी और करनी दर्शाते एक शायरी से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सरकार की फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, सरकार के फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी के और जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, आज भी फूटी रकाबी है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। वह कह रहे थे कि सौगंध हमें इस मिट्टी के, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें लगा कि 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधान सेवक जी बोल रहे, लेकिन आगे सुनकर जब सुना, पढ़ा और समझा, तब समझ में आया। जब कह रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, रोजगार धंधा करना नहीं है, इसलिए भारतीय रेल को बेच देंगे, चाय बेचने वाले प्लेटफार्म को बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, टेलीफोन कंपनी बेच देंगे, कोल इंडिया बेच देंगे, इंडियन ऑयल बेच देंगे, बंदरगाह बेच देंगे, सारे PSU पब्लिक सेक्टर बेच देंगे, किसान के जमीन बेच देंगे, गरीबों के हक और अधिकार को बेच देंगे, उनका स्वाभिमान और सम्मान बेच देंगे, फिर भी देश नहीं बिकने देंगे। नहीं सब है, यह तब ऐसा लगा कि ये देश के प्रधान सेवक नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी के वकील साहब बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह रोजाना 2.25 करोड़ से अधिक यात्री और 33 लाख टन से अधिक माल ढुलाई करता है। रेलवे का देश की प्रगति और विकास में एक बड़ा योगदान है। इसके हमारी संस्कृति, भाषा और सभ्यता तथा इतिहास से जोड़ने में भी अहम भूमिका रही है। रेलवे गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला भी सबसे बड़ा उपक्रम है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि भारतीय रेल सार्वजनिक के कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाई जाती है, लाभ कमाने के लिए नहीं। यदि सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो रेलवे के घाटे से उबरने के प्रयास क्यों नहीं किए जाते? संसाधन जुटाने और जनता की समस्याओं के समाधान कर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? सरकार अपने जिम्मेदारी से भागना क्यों चाहती है? इससे प्रतीत होता है कि सरकार के कथनी करनी में अंतर है। माननीय सभापति जी, सरकार की नियत रेलवे के प्रति ठीक नहीं है। एक शायर ने कहा था कि यदि लहर लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी डोली पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। आज माननीय सभापति महोदय, सरकार की नियत रेलवे के प्रति ठीक नहीं है। माननीय सभापति, ऐसा लगता है कि देश के प्रधान सेवक और सरकार की नियत भारतीय रेल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रति ठीक नहीं है। इसलिए रेलवे और सार्वजनिक सेक्टर के सामने इस तरह की परिस्थितियां जानबूझ करके निर्मित की जाती हैं, जिसके कारण वह घाटे में चले जाते हैं, और जब घाटा होता है तो घाटे का बहाना बता करके निजी हाथों में सौंपने की साजिश कार्यवाही की जाती है। इसी व्यवस्था का शिकार आज हमारा भारतीय रेल भी है और जिसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि भारतीय रेल बजट 1,110 लाख करोड़ का है। बजट की विशेषताओं का
उल्लेख करते हुए कहती हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 60 मीट्रिक टन अनाज की अधिक ढुलाई हुई है। यात्रियों की संख्या में भी 8,085.74 लाख के स्थान पर 8,593.93 लाख हुई है। रेलवे कुल प्राप्तियां भी 2,17,460 करोड़ रुपए है। राजस्व व्यय 2,10,093 करोड़ है और शुद्ध राजस्व 6,561 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यात्रियों के हितों को मजबूत किया जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी बजट है। यह बजट देश की सूरत बदलने वाला बजट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट है। तो माननीय सभापति महोदय, यदि इतना विशेषकारी लाभकारी जनता के लिए, देश के लिए बजट है, तो फिर पीबीटी वोट के नाम पर रेलवे का निजीकरण की आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार मानती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले कई वर्षों से रेलवे लगातार घाटे में चल रहा है। रेलवे के सभी अंश, चाहे यात्रियों की सुरक्षा हो, यात्रा से जुड़ी अन्य सेवाएं हो, आधुनिक मशीनें हो, चाहे प्रशिक्षण की कमी हो, रेलवे बेहतर सेवा सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम साबित नहीं हो रहा है। यह कठिनाई लंबे समय से चल रही है, जिससे सरकारी खजाने का भार बढ़ता जा रहा है। यात्री भाड़ा को कम करने की कोशिश में माल भाड़े को बढ़ाना पड़ता है, जिससे अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विकल्प के रूप में निजीकरण के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि निजीकरण से सुविधाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी, प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों का लाभ होगा, माल ढुलाई करने वालों को भी लाभ होगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर माननीय सभापति महोदय 109 चुनिंदा रेल मार्गों की 150 रेलगाड़ियों और 50 रेलवे स्टेशनों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है और इसी माध्यम से 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। ये हकीकत नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से रेलवे के निजीकरण से केवल पूंजीपति माला माल होंगे, गरीब आम जनता कंगाल होगी। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं, वह मुनाफे वाले क्षेत्र में ही निवेश करेंगी, कम मुनाफा वाले क्षेत्र उपेक्षित रह जाएंगे। इसका उदाहरण है हमारे मध्य प्रदेश में गोटे गांव के सड़क रेल मार्ग निजीकरण के हाथों में दी गई थे, लेकिन इसको छोड़ करके कंपनी चली गई और वो कार्यक्रम पीछे वहीं पड़ा हुआ है। ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किराए में मनमानी वृद्धि करेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्बाद होगा। निजी कंपनियां अपनी प्रासंगिक प्रशासनिक संरचना और कार्य प्रणाली को अपने हित के तरीके से चलाएंगे, जिससे अनेक कठिनाइयां पैदा होगी। प्रतिस्पर्धा के बजाय निजी कंपनियों का कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा, तो प्रतिस्पर्धा के बजाय निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। इसका उदाहरण शिक्षा विभाग है। माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है? जब से निजी संस्थाएं आई हैं, हमारे सरकारी संस्थाएं बंद होने की कगार पर हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में किस तरह से गरीबों का, मध्यम वर्ग का शोषण होता है, किस तरह से उनका भविष्य बर्बाद होता है, इसके कल्पना नहीं की जा सकती है। और किस तरह से वहाँ के कर्मचारियों का शोषण होता है, ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। उसी तरह की नसीहत रेलवे की निजीकरण से भी होने वाली है। ऑनरेबल मेंबर कंक्लूड करना पड़ेगा। शासकीय ऑनरेबल मेंबर कंक्लूड करना पड़ेगा, एक ही मिनट। अभी तो माननीय सभापति महोदय, निजीकरण से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रेलवे विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन वही नहीं भरे जा रहे हैं। निजीकरण से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तथा गरीब वर्ग का आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जो गरीबों
और वंचितों का संवैधानिक अधिकार है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। संविधान प्रजातंत्र व्यवस्था और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर वर्ग की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में अपने मध्य प्रदेश के बारे में निवेदन करना चाहते हैं कि रेलवे के इस बजट में मध्य प्रदेश की घोर उपेक्षा हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जबलपुर नई रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। कई वर्ष पहले जबलपुर से दमोह सीधी रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया, उसके लिए मात्र 1000 रुपये। गाड़रवाड़ा बुधनी इंदौर लाइन के लिए भी 1000 रुपये प्राइवेट कंपनी छोड़ करके चली गई। इसी वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने क्षेत्र के रीवा जिला के रेलवे सुविधा के बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो सुविधा बढ़ाया जाना जरूरी है। इलाहाबाद से चाक त्योंथर कटरा होते हुए रीवा तक सीधे नवीन रेल पथ निर्माण किया जाता था। इसके आगे सतना से पन्ना, छतरपुर, सागर, रायसेन होते हुए भोपाल तक नवीन रेल पथ का निर्माण किया जाए और बम्बई, इंदौर, भोपाल, सागर, छतरपुर, सतना, रीवा, चाक, इलाहाबाद, दिल्ली को सीधे मार्ग को राष्ट्रीय रेल मार्ग घोषित किया जाए। दूसरा, मिर्जापुर से चुनार, हनुमाना, मऊ, गंजमनगवा होते हुए रेवा तक रेल पथ का निर्माण किया जाए। मेरा सुझाव है कि बैढ़र रेलवे से कटनी सिंगरौली लाइन को बरगमा से बढ़ाकर होते हुए शक्ति नगर उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाए। माननीय सभापति जी, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहते हैं, दो बात सरकार की आगाह करना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं माननीय सभापति महोदय कि उमंगों की नदी बढ़ते किसी दिन सूख जाती है, कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है। कहो इन हुक्मरानों से कि भूले नहीं सच को, तिलक के अक्षतों में भी लिखा वनवास होता है, लिखा वनवास होता है। और देश की जनता से आगाह करना चाहते हैं कि जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहो, वरना श्रम के पुजारी अगर थक गए तुम, कलम के पुजारी अगर गए तुम, ते धन के पुजारी चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, अगर मर गए तो कफन बेच देंगे, कफन बेच देंगे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद पटेल जी। I request Jharna Das Vaidya ji to make her intervention. 4 minutes. Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the demands for grants of the Ministry of Railways for the year 2021-22. Madam, much was expected from this government regarding infrastructure and development of railways, including laying of new lines, doubling, electrification, freight corridors, etc. In these years, railway budget, there is no new project in the northeastern states. This budget is directionless and pro-corporate. This budget could not fulfill the aspiration of the people of the northeastern region as well as our state, Tripura. The people of our state has expected that there would be announcement for new trains from Agartala, as the city has already come under the broad gauge map of the country. There is an urgent demand of the two localities of South Tripura district to introduce new train services in Santir Bazar subdivision and Sunaichori of the Bilonia subdivision. Both are tribal inhabited area having population near about 15,000 in each area. Cannot avail to the rail services as the rail station from their locality are at far distance. The people, mostly tribals of both the areas, have to travel about 8 to 10 kilometers to reach rail station in either side.
I would be very much helpful for the patients intending to attend Ratanpur PSC if a halting station is set up in Sunaichori. But hike in the passenger and freight charges several times prior to the budget. It was only natural the further hikes in the budget were not announced. The people of India are hoping that the budget will be addressed the issue of expanding railway connectivity and take substantive measure for improving passenger amenities. On both these counts, the budget was very disappointing. Indian Railways is the world's largest passenger carrier and fourth largest freight carrier. It is a safe, efficient and competitive means of transport. Now there are... Honourable Member, you'll have to conclude, please. Technological advance in Indian Railways. The question before us is now to save Indian Railways from the economic crisis. 90% of the total revenue is from the budgetary means only. For 2 years, the employed fund is not there. The common man is affected due to the increase in the rate of platform ticket. It is now 50 rupees. This has been increased too much. I demand that this should be rolled back to the previous level so that the common man is not affected. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a budget to appease the risk accentuating the problems of unemployment and rising inequality. With these regards, this word I conclude. Thank you very much. थैंक यू. माननीय संजय सिंह जी. धन्यवाद माननीय, आपने इस रेल बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया. मान्यवर, सरकार की ओर से मंत्री जी का बयान आया कि निजीकरण रेलवे का नहीं किया जाएगा और उनकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सरकार देश के निजी कंपनियों और पूंजीपतियों के लिए गाने की एक लाइन गाती है कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता. निजीकरण करना भी है और मना भी करना है. आपने कहा निजीकरण नहीं करेंगे. 109 प्राइम रूट्स पर आप 150 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं. देश के 50 रेलवे स्टेशंस को आप निजी हाथों को देने जा रहे हैं. हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपने निजी हाथ को दिया. वहां की हालत जाकर पता कीजिए मान्यवर. वहां पर 50 रुपए मोटरसाइकिल रखने का लगता है. वहां पार्किंग के लिए 150 रुपए कार का देना पड़ता है. आपने प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया. पैसेंजर ट्रेन का 3 गुना किराया बढ़ा दिया. जब आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत हास्यास्पद तर्क देते हैं. कहते कोरोना के समय में पैसेंजर ट्रेन में भीड़ ना हो इसलिए किराया हमने बढ़ा दिया. पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया? बोले कार ना चलाने पाए, मोटरसाइकिल ना चलाने पाए. डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया? माल की ढुलाई ना होने पाए. अरे गैस का दाम क्यों बढ़ा दिया? लोग खाना ना खाने पाए. यह आपका तर्क है. देश में कोई भी चीज महंगाई बढ़ाने के लिए आप एक नया हास्यास्पद तर्क लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता. निजीकरण आप कैसे कर रहे हैं? मेंटेनेंस के क्षेत्र में निजीकरण, सफाई कार्यों के क्षेत्र में निजीकरण, फैक्ट्री और उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण, सिग्नल के क्षेत्र में निजीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में निजीकरण, रेलवे में
मजदूरों की, सरकारी कर्मचारियों की संख्या मानवर 1974 के स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के आंदोलन में, रेल हड़ताल में 17 लाख कर्मचारी होते थे। जब ट्रेनें कम थी, जब यात्री एक जगह से दूसरे जगह कम यात्रा करते थे, आज 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे के माध्यम से जाते हैं और आज आपने कर्मचारियों की संख्या पहुंचा दी 12,26,000। 17 लाख से घटा के 12 लाख। यह निजीकरण के कारण हुआ, हर क्षेत्र में निजीकरण के कारण हुआ। और अब आप तो एक नया तरीका लेके आ गए हैं, लेटरल एंट्री। आईएएस भी आप लेटरल एंट्री के जरिए बना रहे हैं। 39 आईएएस आपने लेटरल एंट्री के जरिए बनाए, और जिसमें आरक्षण के नियमों की, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया आपने। और निजीकरण जो आप रेलवे में लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आपकी सबसे खतरनाक मंशा है एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की आपकी योजना है। यह मूल मंशा आपकी है। मान्यवर, खुद आपने माना है कि 21.6% माल की ढुलाई लॉकडाउन के दौरान रेल के माध्यम से ज्यादा हुई। यानी रेलवे के कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और उस लॉकडाउन में काम करने के कारण, कई लॉकडाउन में काम करने के कारण कई कर्मचारी, जो कोरोना योद्धा जिनको आप कह सकते हैं, उनकी जान भी गई। 50 लाख रुपए मुआवजा कर्मचारी संगठन मांग करते हैं, 20 लाख रुपए मुआवजा आपने दिया, फिर उसको बढ़ा के 35 लाख किया। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। रेल के जो कर्मचारी इस कोरोना काल में जिनका जीवन गया, और कोरोना काल में मान्यवर 2.5 करोड़ की आपकी क्षमता एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाने की प्रतिदिन की है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से रो रो के ट्रेनें चलाई गई, किस तरीके से लोगों को तरसाया गया ट्रेनें चलाने के नाम पर, और 80 ट्रेनें रास्ता भटक 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं, 80 लोगों की जान चली जाती है। मुजफ्फरपुर के स्टेशन का वो दृश्य आज भी हम लोग नहीं भूल पाते। एक मां के ऊपर से उसका छोटा बच्चा आंचल हटा रहा था, उसकी मां की कंक्लूड करिए संजय जी। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर। अंत में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके रेलवे कर्मचारियों को निजी हाथों में मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां से रोजगार भी मिलता है, और जहां गरीब आदमी को एक भरोसा होता है कि हम सस्ते में दामों में यात्रा कर पाएंगे, सस्ते किराए में यात्रा कर पाएंगे। जिस दिन आप इसको निजी हाथों में देंगे, कर्मचारियों का तो आप आरक्षण के तहत उनकी नौकरियां खत्म करेंगे, एक बात है, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफें और उनकी यात्राएं, उनकी दुश्वारियां बढ़ेंगी। अंत में कुलियों की बात यहां पर आई। इस देश के कुलियों के लिए एक योजना बहुत पहले लाई गई थी कि उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। उस पर पुनर्विचार कीजिए, उस पर फिर से एक बार सरकार निर्णय ले। जो दिन भर मेहनत करते हैं स्टेशन पे, अब माल ढुलाई करते हैं, उनके बच्चों को नौकरियों में आरक्षण देने की योजना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय दुष्यंत गौतम जी, माननीय दुष्यंत गौतम जी, प्लीज। अभी मैं सुबह से बैठा हुआ विपक्ष की सारी बातें सुन रहा था, और मुझे बड़ी खुशी है कि विपक्ष ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी बातों को रखा। लेकिन अंत में हमारे लिए ये करना चाहिए, ये अपेक्षा काम करने वाली सरकार से होती है। उनको भी लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी, अभी संजय भाई बोल रहे थे, पार्टी को हमारी को कोस रहे थे कि आपने कोरोना का बहाना लेके किराया डबल कर दिया, कि कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मापदंड तो आपने दिल्ली में भी दारू बेचने में अपनाया था, दारू के रेट 60% ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ये कहकर। इसलिए आप विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन उस मापदंड को अपने ऊपर भी नापना चाहिए। आदरणीय, जब भी कोई मंत्रालय हो या सरकार हो, चाहे घर हो या कुनबा हो, उसकी स्थिति, कार्य करने की स्थिति आपदा के समय पे ही नापी जाती है कि आपदा के समय पे उसने क्या किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सदन को कि मैं ये समझता था कि रेल मंत्रालय का काम, और आम जनता भी ये जानती है कि रेल मंत्रालय का काम होता है सवारियों को ढोना। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री का और आदरणीय रेल मंत्री जी का
जिन्होंने रेल के अनेकों अनेक आयामों को छूते हुए इस कोरोना पीरियड के अंदर जो कार्यशैली दिखाई है, मैं ये कहना चाहूँगा पीयूष भाई को कि आपके रेल मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी थे उनको भी कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए। 1 साल लगातार उन्होंने गरीबों की सेवा का काम किया है। हमने देखा है अभी पूरे साल के अंदर किस प्रकार से 4,450 श्रमिक ट्रेन स्पेशल चलाई गई और उनके अंदर 600 रुपये किराया, जो कि एक जो 4 ट्रेनें होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उनके बराबर था, ना कि स्पेशल ट्रेन के बराबर था। 60 लाख लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया और सिर्फ 15% ही किराया वसूल किया गया और 85% केंद्र सरकार को वहन करना था। लेकिन ये कहते हुए मेरा दुख हो रहा है कि इसके अंदर भी राजनीति बहुत बड़ी की गई। एक सरकार, ऐसी सरकार जो कहती है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, उनका वोट हथियाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, लेकिन जब उनके जान माल की रक्षा की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 15% किराया भी वो नहीं दे सके। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया गौतम जी, मैंने नाम नहीं लिया। माननीय गौतम जी, गाड़ी में तिनका है, मैंने नाम नहीं लिया। 15% किराया भी बिहार से लिया गया। आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट कृपया माननीय सदस्य सीट पर बैठकर एक दूसरे को संबोधित न करें, चेयर को करें और आप ही को बोलो प्लीज। और अगर आप किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो उसको बोलने का अधिकार। नाम नहीं लिया प्लीज, नाम नहीं लिया प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, पीछे न बोले प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने तो चोर की दाढ़ी में तिनका बताया। मैं ये कह रहा हूं कि 15% किराया भी बिहार को जाने वाले कर्मचारियों जो देना था लेबर को, उस पर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, यहां पर एक पार्टी, जो उस पार्टी ने अपने नेता के कहने से कहा था कि 1000 बस हम यहां पर बॉर्डर पे लगा देंगे, यूपी के बॉर्डर पे लगा देंगे, मिर्चें उनको भी लगेंगी। 1000 बस की बजाय 150 ऐसी बसें लाके खड़ी कर दी। और जो कर्मचारी वहां से, उस स्टेट से बिहार को जाने वाले थे, उनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। और सुविधा के नाम पर वहां की पुलिस ने उनको ट्रकों पर बैठा दिया, जो कि बाद में एक्सीडेंट होने के बाद उनकी कुछों की मौत भी हो गई। ऐसा व्यवहार इन्होंने, जो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों को निपटाने के लिए इस कोरोना पीरियड में काम किया। और सबसे बड़ी बात है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टे एट होम। हमारे पार्टी के और हमारी सरकार के सब एक मंत्रालय, एक व्यक्ति इसका पालन करते हुए साथ साथ कोरोना के योद्धाओं के लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में आके खड़े हो गए और उनके मौत से मुंह से बचाने का काम किया है। लेकिन विपक्ष ने स्टे एट होम का पूरा 100% पालन किया है। इसलिए आज देख रहे हैं आप, अन्यथा नहीं लें, स्टे एट होम का कारण ही है कि पांडिचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे नीचे केरल हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल भी देख लेना, सभी जगह जनता ने इनको स्टे एट होम कर दिया है। आदरणीय महोदय जी, प्रवासी कार्यकर्ता, प्रवासी मजदूरों को लाने का जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया है, मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय, इस कोरोना पीरियड के बावजूद भी हमारे मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने एक रिकॉर्ड तोड़ माल ढुलाई का काम किया है। और ये ऐसे ही नहीं किया, हमने उनके शक्तिशाली इंजन लगाकर, अपने आत्मनिर्भर, अपने देश से बने हुए इंजनों को लगाकर ये कार्य किया है। और एक अद्भुत कार्य है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रेल मंत्रालय का काम ही नहीं था, उन्होंने अपने डिब्बों को वेंटिलेटर से सजाकर, हर प्रकार से साज सजा कराकर इस महामारी से मुकाबला करने के लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार करने का काम किया है। और यही नहीं, आदरणीय महोदय जी, हमने इस दौरान के अंदर आधुनिक प्लेटफार्म, आज आप प्लेटफार्म देखते होंगे, पहले एक प्लेटफार्म हुआ करते थे जहाँ गंदगी हुआ करती थी, रेलवे की पटरियों पे शौच हुआ करता था और लोग वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे। आज एक हम बहुत बढ़िया एक पोर्ट की तरह हम प्लेटफार्म देने का काम कर रहे हैं। और ये नहीं, साफ सफाई के मामले में एक स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको सार्थक करने का भी काम हम कर रहे हैं। रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन, आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान, टेक्नोलॉजी अब भारत में अपनी बन रही है। हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं, हम उसको पूरा सार्थक करने में बहुत बढ़िया कामयाब हुए हैं। और यही नहीं है,
आज हमने विश्व में, संसार के अंदर सबसे बढ़िया एयरपोर्ट के समतुल्य हमने अपना रेलवे टर्मिनल बनाया है। 314 करोड़ रुपया खर्च कर एम विश्वरैया नाम से जो वो रेलवे स्टेशन है उसको बनाने का हमने काम किया है। और यही नहीं, AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच बनाए गए हैं। आधुनिक सुविधा, आरामदायक सफर के लिए वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने इस काल के अंदर रेल मदद पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से बिछड़ों को मिलाने का, बीमार यात्रियों को मेडिकल सहायता पहुंचाने का, गुम हुए पार्सलों को मिलाने का और ढूंढने का भी काम हमारे द्वारा हो रहा है। और मानवतापूर्ण एक सबसे बड़ा काम, हृदय से छूता हुआ काम हमारे मंत्रालय ने किया। नेत्रहीन स्मार्ट विंडो सिस्टम गया। हमने वहां पे CSMT स्टेशन पर नेत्रहीन दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं की जानकारी के लिए ब्रेल साइनेज की व्यवस्था की है। आज किसी भी हमारे दिव्यांग को किसी प्रकार की कोई समझने की कोई परेशानी नहीं होने वाली वह है। आधुनिक तकनीकी से हमने हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में स्मार्ट विंडो सिस्टम दिया है। इसके द्वारा सिर्फ एक स्विच की मदद से ही हम विंडो को, शीशों को अपनी सुविधा अनुसार पारदर्शी या अपारदर्शी बना सकते हैं। और यही नहीं, हमारे सामने जब भी कोई भी चुनौती आई है, चाहे देश की कैसी भी चुनौती हो, हमारे रेल मंत्रालय ने आगे बढ़कर उसके अंदर काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल स्पेशल चलाई गई, जिसके अंदर सब्जियों, फलों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी गई। उसका परिणाम ये निकला कि आज हमारे किसान अपनी सब्जियों को लेकर अन्य बाजारों में आसानी से जा सकते हैं। हमने इस दौरान के अंदर आय वृद्धि हेतु किसान रेल में 70 टन अंगूर, 166 टन प्याज नागरसोल महाराष्ट्र से गोड़ मालदा पश्चिम बंगाल भेजा गया है। तेलंगाना की पहली किसान रेल की वारंगल से बरसात तक हल्दी के परिवहन के साथ हमने शुरुआत की है। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटे किसान का माल बिकता नहीं था। आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा है, फल सब्जी बेचने लगा है, इसका लाभ ले रहा है। छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान की आय में वृद्धि करने के लिए हमने उनकी उपज को विदेशी बाजारों में तक भेजने का हम सहायक बने हैं। और यही नहीं, इन प्रयासों से गोरीगंज अमेठी कृषि निर्यात के हब बनाकर हमने 55,000 टन गेहूं बांग्लादेश को भी निर्यात किया है। किसान रेल और किसान उड़ान के माध्यम से बड़े बाजारों तक छोटे किसानों को पहुंचाने में मदद मिली है। किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर के इलाकों किसानों को किसी दूसरे राज्य में दूसरे बाजारों के साथ जोड़ने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी, रेलवे द्वारा चलाई गई किसान रेल महाराष्ट्र के चीकू सहित अन्य फल व सब्जी उत्पादक किसानों को आय वृद्धि के अवसर प्रदान कर रही है। नोटिफाइड फलों व सब्जी परिवहन व 50% की सब्सिडी से रेलवे के किसानों को जीवन में समृद्धि मिल रही है। और यही नहीं, हमने किसान उत्पादक संघ के माध्यम से सब्जियां, फल, डेयरी, मत्स्य उत्पादों को माननीय गौतम जी कंक्लूड करें, आपका समय खत्म होने वाला है। का काम किया है। और यही नहीं, हर क्षेत्र के बावजूद भी हमने महिला सशक्तिकरण भी रेलवे ने प्राथमिकता पे लिया है। हमने नारी शक्ति की मिसाल भारतीय रेल दीनदयाल उपाध्याय यार्ड से चली। ट्रेन की लोको पायलट पूरन कुमारी थी, सह लोको पायलट ज्योति कुमारी थी और गार्ड ज्योति कुमारी देश में महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। और ये नहीं, पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के मामले में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रमिक कल्याण पोर्टल द्वारा पेमेंट करना सुनिश्चित कर किया है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। ये हमारा रेल मंत्रालय लगातार हर परेशानी और तकलीफ में देश के साथ चला है, जनता के साथ चला है, समाज के साथ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय जुगल सिंह माथुर जी, लोखंडवाला। मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं। कई लोगों ने कई सारी बातें बताई, पर मुझे टू द पॉइंट कि 67,580 किलोमीटर के अंदर जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो
या हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट हम रेलवे बजट जो प्रस्तुत किया, इसके साथ माननीय पीयूष गोयल जी ने जिस तरह 7 वर्षों के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है, वो काम मुझे आपको बताना है। आज जिस तरह कोरोना की महामारी जो चल रही है, उसके तहत जहां जहां जिसकी जरूरत, काफी लोग बता रहे थे कि कोरोना की महामारी ने अंदर ट्रेनें नहीं चली थी, पर मैं उनको कहना और बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो श्रमिक थे उनको गांव घर घर पहुंचाने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ कहीं फल पहुंचाना है, कहीं सब्जियां पहुंचानी है, कहीं दूध पहुंचाना है, वो काम ये रेलवे के माध्यम से होता था। इसके साथ साथ करीब करीब 2.5 करोड़ लोग, कई देशों की जनगणना भी इतनी नहीं होती, इतने लोग हमारे देश के अंदर ट्रेन के अंदर मुसाफरी करते हैं। वो लोगों को पहुंचाने का काम कोई करता है तो वो रेल मंत्रालय हमारा करता है। आज मैं बताना चाहूंगा कि 13-14 का जो पिछली सरकार का जो बजट था वो कितना था, 61,000 करोड़ था, और आज उसके बाद का देखिए आप, 14-15 के बाद 18, 19, 20, 21-20 का, और 21 और 22 का 2,15,000 करोड़ रुपया, इतना बजट किसी ने नहीं दिया। और ये बजट किस लिए, कई लोग, मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ एक नागरिक, हमारे सांसद भी थे गुजरात से, वो रेल मंत्री भी स्टेट के रह चुके हैं, काफी सारी रेल गिनाई भी उन्होंने, ये रेल वो रेल, पर मैं उनको, वो यहां से नहीं है, जब उन्होंने वो जब रेल के मंत्री थे, ना कम्युनिकेशन था, ना साथ बैठने का। आज देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम जी, माननीय पीयूष गोयल जी, साथ मिलके किस तरह देश को बड़ा करना है, किस तरह आगे ले जाना है, जिस तरह मैं उसको तथ्य के साथ रखूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह रायबरेली के अंदर जो 2012 के अंदर वहां पे एक भी कोच नहीं बनता था, एक भी कोच नहीं बनता था। 2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद पहला कोच बना रायबरेली के अंदर। वो सरकार की फैक्ट्री थी, सरकार के मान्य से चल रही थी। उसके बाद 15-16 के अंदर वो जो फैक्ट्री जो थी, मैं आज तथ्यों के साथ रखूंगा कि जो 15-16 के अंदर जब चालू किया, तब 140 कोच उस टाइम बने हुए थे। उसके बाद 15-16 के अंदर 285 कोच बने। उसके बाद 16-17 में 576 कोच बने। आप देखिए कि जहां एक भी कोच नहीं बनता था, खाली वहां पे चेन्नई या कहीं और से कोच आते थे, कलर वगैरह होते थे और भेज दिया जाते थे। इसके बाद 17-18 में करीब 711 कोच बने। उसके बाद माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रायबरेली के अंदर गए और वहां पे जो कर्मचारी गण थे जो ये कोच बनाते थे, उनके साथ विचार विमर्श के बाद उनको इतना मोटिवेट किया तो आप मान नहीं सकोगे कि 18-19 के अंदर करीब ऑलमोस्ट 1425 कोच बनाए गए। ये कोच पहले कितने थे? पहले एक भी बनता नहीं था। जो 17-18 में 711 था, ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप देखिए कि इस तरह का जो काम सरकार कर रही है
और सरकार को जो मोटिवेशन करना चाहिए उसके बगैर आप उसकी मानते हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आपको बोलना पड़ता है, पर जो अच्छी बात है वो भी बतानी पड़ती है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जब 2021 का जो था उस टाइम मान्य जिस तरह ये चेन्नई के अंदर भी 1604 कोच थे, उसके बाद जो हुए वो करीब करीब 4238 कोच बनाए गए। तो ये पूरे जो हमारे कर्मचारी गण हैं वो पूरा अपना दिल दे के काम करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी के अंदर हमको आज हम बता रहे हैं, काम करते हैं, ट्रेन चलाते हैं तो बोलते हैं कि सुविधा नहीं है, सुविधा देना चाहते हैं तो बताते हैं कि इसके अंदर कोरोना अभी आ जाएगा। अभी मेरे एक वरिष्ठ बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे आप इतना किराया ले रहे हो, इतना दे रहे हो, फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी के बिना आपको अपनी फैसिलिटी चाहिए, फिर पैसा नहीं देना। उसके साथ साथ मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा कि ये उनका उस जमाने के, मैं आप उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उस टाइम बताया था 2003-4 के अंदर, उस टाइम के जो एक मंत्री थे उन्होंने ये चाहे रेलवे की निजीकरण की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो और रोड का, आज हम जो रोड टैक्स दे रहे हैं वो क्या है? आज हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हमारे माननीय पीयूष जी ने जो बताया उसको फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं। आप लोगों को फैसिलिटी चाहिए तो फैसिलिटी के लिए पैसा देना पड़ता है। हम बाहर जाते हैं तो बाहर की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे ट्रेन अच्छी नहीं है तो शिकायत करते रहते हैं। हमको वहां पे ट्रेन जहां घूमते जाते रहते हैं, आज देखिए पर्यटक का कहीं भी जाना आना जा रहता है तो ट्रेन अच्छी नहीं होती तो आप शिकायत करते रहते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचती तो शिकायत करते रहते हैं। तो हमको साथ मिलके चलना है, साथ लेके देश को आगे निकलना है। इसके साथ साथ आप देखिए कि प्लेटफॉर्म जो था पहले के जमाने में पूरा गंदा, जो नुकसान करा हुआ, नहीं बैठने की जगह, नहीं कहा वहां रुकने की जगह, वो आए तो आए, बाकी चल बैठो ट्रेन में और भागो, उसी तरह का। उसके साथ साथ शौचालय की बात बहुत अच्छी बताई, कोई बता रहा था कि शौचालय का जिस तरह प्लेटफॉर्म के आसपास या उसके आसपास जो गंदा रहता था वो कब क्लीन हुआ, कब स्वच्छ हुआ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया। उसके अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर, मैं किसी पार्टी का या किसी सभा का व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हर एक जगह उसमें सामने हो या इधर हो, सभी ने सहयोग किया। और जहां जहां जिसको जो लगा कि भाई यहाँ पे ये सफाई नहीं है तो सफाई का चाहिए, किसी एक्सीलेटर नहीं थी तो एक्सीलेटर की बात की, किसी जगह लिफ्ट नहीं थी तो लिफ्ट की बात की, सब जगह पे हम सब लोगों ने साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। हमको उसके अंदर न खोमियां निकालनी है, न इसको अंदर हमको पीछे ले जाना है, हमको आगे ले जाना है। किस तरह देश को हम आगे ले जा सके उसके बारे में सोचना है। हाँ, अगर कमियां हो सकती है, जो कोई काम करता है तो कमियां रहती है। कंक्लूड करिए। मैं मेरी एक लास्ट लाइन बात करके खत्म करूंगा सर, कि जिस तरह हमारे जो गुजरात के जो बता रहे थे, मैं उनके लिए कोट करूंगा, क्योंकि जो यहां से जो मैसेज जाता है उनको लगता है कि यहाँ के हमारे वहां के गुजरात के कई लोग देख रहे हैं, देखते भी होंगे, मैं मना भी नहीं करता हूं, पर उनको सच्चाई बोलनी चाहिए। उस जमाने में जब आप मंत्री थे तब आप जा भी नहीं जा पाते थे, आपका कोई बात भी नहीं सुनता था। आज जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, और गरीबों का जो जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं हर हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम। आभार, धन्यवाद माननीय जुगल सिंह जी। श्रीमती ममता जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय रेल, हम ये कह सकते हैं कि देश को एक सूत्र में फिरने वाले धागे के समान है, जो देश की अखंडता और इसका अखिल भारतीय स्वरूप प्रदर्शित करती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल और भारत की परिवहन की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। वही दूसरी ओर देश को विभिन्न भागों को एक साथ जोड़ने की भी काम करती है।
महोदय, मेरा राज्य ओडिशा का मयूरभंज बहुत वर्षों से डिमांड है। बांगरीपोशी से गोरू मैसानी, बादाम पहाड़ से केवंझर, बुढ़ामारा से चकुलिया, ये नेट रेल लाइन है जो कि बुढ़ामारा से चकुलिया मंजूरी दिया गया है, लेकिन इस साल बजट में सिर्फ 1000 रुपया रखा गया है। ये मयूरभंज वासी के लिए दुर्भाग्यजनक है। ये प्रोजेक्ट कब तक संपूर्ण होगा? महोदय, आदिवासी बहुल मयूरभंज जिला में बांगरीपोशी गोरू मैसानी रेलवे लाइन की मांग वर्षों से लंबी है। दक्षिण पूर्व रेलवे एसीआर के तहत चक्रधरपुर डिवीजन गोरू मैसानी टाटा बादामपाड़ लाइन के साथ खड़गपुर डिवीजन के रूपसा बांगरीपोशी रेल लाइन को जोड़ने की आवश्यकता है। प्रस्तावित रेलवे लाइन मयूरभंज जिला का जीवन रेखा के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि ये लाइन दिल्ली मार्ग से बारीपोदा, बांगरीपोशी और रायरंगपुर के माध्यम से जुड़ेगी। पुरी से दिल्ली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। हालांकि पहले भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही और उदासीन के कारण इसे लागू किया नहीं गया। बात यह है कि परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम लगभग 3 साल पहले पूरा हो गया था और 42 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिए 211 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। बाद में अनुमानित लगा है 521.63 करोड़ रुपया हो गया, लेकिन रेलवे बोर्ड का रेल लाइन 10 साल पुराना है। देश की स्वाधीनता पहले हुआ था। इस रेलवे लाइन से करोड़ रुपए का राजस्व कमाया जाता है, परंतु अब तक इस एरिया के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ सिवाय इलेक्ट्रिक का। ये प्रोजेक्ट बांगरीपोशी गोरू मैसानी मंजूरी ना होने से इस एरिया का लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ नहीं सकते, लेकिन बोर्ड द्वारा रिपोर्ट के आधार पर बोलते हैं फायदा नहीं है, बोल के ये बात टाल देते हैं, जबकि जनता का विकास के लिए लाभ क्षति देखा नहीं जाए। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी मयूरभंज गस्त में गए थे और बोले थे मयूरभंज जिला रेलवे सेवा दिल्ली तक जोड़ेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं है। सर, एक मिनट सर, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को अनुरोध करती हूं और प्रधानमंत्री जी को भी अनुरोध करती हूं, ये प्रोजेक्ट बांगरीपोशी गोरू मैसानी लाइन को मंजूरी करके बजट में स्थान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ममता जी। श्रीमती गीता चंद्र प्रभा जी। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि सदन में सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के अवसर प्रदान किया। माननीय, रेल सिर्फ यात्रा या मालवाहक का साधन नहीं है, ये भारत के आम जन की भावना है और इस आम जन की भावना को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रेलवे के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पिछले 6 वर्षों में देश ने रेल के क्षेत्र में विकास के कार्यों को देखा है। 2015 से 2014 से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के उन हिस्सों में जहां आज़ादी के बाद अभी तक रेल की पटरी नहीं पहुंची, वहां पर पहुंचाने का प्रयासरत है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश की हिमाचल जैसी कठिनाइयां हो या उत्तर पूर्वी राज्यों की चुनौतियां हो या झारखंड जैसे पठारी राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने
देश के विभिन्न हिस्सों में पहली बार पटरियों को पहुंचाया है। कुछ वर्ष पूर्व बुलेट ट्रेन का कल्पना एक सपना मात्र लगता था, परंतु सरकार के दृढ़ संकल्प ने आने वाले कुछ वर्षों में देश अहमदाबाद, मुंबई व दिल्ली, बनारस के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा के साथ इस सपने को साकार होते देखेगा। हम जिस नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, किसान व कृषि के विकास के बिना ये कल्पना असंभव है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान रेल इसी दिशा में सरकार के द्वारा एक अनूठा प्रयास है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, आज़ादी के बाद लगभग प्रति वर्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में वित्तीय बजट पेश किया गया है, परंतु महामारी की इस विपरीत परिस्थिति एक दूरदर्शी एक नए भारत के निर्माण के लिए सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विशेषकर रेलवे के लिए बजट में जो प्रावधान किए हैं, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट का पेश किया गया। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई की पात्र हैं। बजट में रेल के विकास के लिए लगभग 1,10,055 करोड़ की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है। साथ ही रेल बजट में रेल के विकास के लिए और भी बहुत से प्रावधान किए गए। दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया। माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए जून 2022 तक फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। माननीय उपसभापति महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर देश के विकास के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है। कोरोना जैसी महामारी में की विषम परिस्थिति में भी भारतीय रेलवे ने अपना मानवीय चेहरा दिखाया है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोरोना समय में विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन संचालन करने का भारतीय रेलवे के द्वारा कार्य किया गया है। कोरोना वायरस के समय जिस प्रकार से सरकार द्वारा निर्णय लिए गए, उसने संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने विश्व को यह दिखा दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के औरैया इटावा जनपद से आती हूँ। आपके माध्यम से औरैया से फफूंद, इटावा, मैनपुरी जैसे क्षेत्रों में व्यापारी हो या विद्यार्थी शिक्षा व व्यापार के लिए अधिकांश लोग कानपुर या आगरा जाते हैं और रेल उनके लिए आवागमन का एक प्रमुख साधन है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कानपुर से फफूंद होते हुए इटावा, आगरा से इटावा के बीच सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इटावा से मैनपुरी के मध्य नई रेल लाइन शुरू की गई है। इस लाइन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सवारी गाड़ी की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करती हूं। रेलवे बोर्ड द्वारा इटावा मैनपुरी रेलवे लाइन को एटा तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस योजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इस लाइन का विस्तार एटा तक कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही कानपुर से चलकर कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी से जाने वाली साप्ताहिक आनंद विहार एक्सप्रेस को दैनिक रूप से चलाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को आने जाने का लाभ मिले। आदरणीय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। बड़ी संख्या में किसान लहसुन, आलू की बड़ी एरिया में उत्पादन करते हैं।
मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से देश के अन्य हिस्सों में किसान रेल चलाई गई है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र के किसानों को हितों को देखते हुए इस क्षेत्र में भी किसान रेल चलाई जाए। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि जिस प्रकार से सरकार के दृढ़ संकल्प द्वारा भारतीय रेल को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय रेल अपने भारत के निर्माण में विशेष योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चंद्रप्रभा जी। समय के तहत खत्म करने के लिए माननीय श्री अनिल देसाई जी। Railways has received a record outlay of 1,10,000 crores, of which 1,07,000 crore is for capital expenditure for the year 21-22. Hence, Indian Railways has now the highest ever total plan of capex of 2,15,000 crores. With the increase in capital expenditure, Indian Railways is expected to be the driver of the economy. It is expected that these funds would be utilized to boost the ambitious Atmanirbhar Bharat mission and towards the completion of vital infrastructure projects, capacity building, passenger amenities, safety enhancement. In the coming year, the government expects its revenues also from the railways that it will increase out of passenger goods and other coaching and sundry other heads to be about 2,17,000 crores, which was 1,46,000 crores in the last year. However, it is seen that measures taken from time to time to improve the financial position of railways have fallen short, as railways operating ratio has often cited losses at the end of the financial year. In the wake of COVID-19, operation of all passenger trains stopped due to lockdown. In this period, operating losses to the railways across all zones amounted to around 36,000 crores, being the difference in the total traffic revenue between the year ending December 19 and December 20. So the government needs to take measures on a continuing basis to improve the financial position and bring the operating ratio at a reasonable level. It should aim at maximizing revenue receipts and minimizing controllable expenses, revenue expenses rather. Revenue and enhancing measures like targeting higher traffic throughput, expansion of commodity basket, effective and innovative marketing strategies to capture more and more traffic, creation of additional capacity and optimum utilization of existing rail infrastructure, periodic rationalization of fare and freight business. These measures should be adopted to bring Indian Railway in a sound financial position. The Government of India has allowed private players to operate in the railway sector through PPP mode under the New India New Railway Initiative. The initiative is expected to bring in investment of about 30,000 crores from the private sector. Ministry of Railways has identified 150 pairs of train services for the introduction of 151 modern train sets or rakes through private participation. This move will amount to privatization of Indian Railways, which has served the nation for decades together. The massive infrastructure and network of thousands of kilometers built up over the years will go in the hands of private players who will utilize the same for their own benefit, and the very purpose of cheap and affordable public transport will be lost. Similarly, monetizing the assets, especially landed assets of railways which are created over the years, will also be an unwelcome step. Instead, a thrust should be given on improving the infrastructure and bettering the passenger service and increasing freight business, which is of importance. Sir, in the entire budgetary provisions of the railways, hardly anything is mentioned for my state of Maharashtra, especially train services in Marathwada region and Mumbai local services, which cater its services to the lakhs of commuters daily. The metro rail project, which are being implemented in Maharashtra, need part funding from the center. This year's budget has provided only for Nasik and Nagpur metro rails. The rest of the metro projects too should have been allotted or should have been provided for proportionately in the budget. The Honorable Railway Minister may please explain in his reply as to why other metro projects in Maharashtra are left out. Sir, the bullet train project of Mumbai-Ahmedabad is certainly not the need of the hour. Instead, people of Maharashtra are looking forward to better services like development of terminal facilities,
augmentation of speed of trains, signaling systems, improvement of passengers and users' amenities, safety works, road overbridges and road underbridges. With this, I hope the Honorable Railway Minister will take cognizance of these suggestions and implement them positively. Thank you. Thank you, Mani Anil Desai ji. Mani Rakesh Sinha ji. सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने रेल मंत्री जी का बधाई और देना चाहता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने उस भ्रम को, उस अफवाह का खंडन किया जो विपक्ष के कुछ लोग बार बार इस देश में फैला रहे थे कि रेल को बेचा जा रहा है, रेल का निजीकरण किया जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब विरासत के रूप में जो हमें रेल मिला और जो आज रेल की स्थिति है उसका थोड़ा जायजा ले लें तो देश को पता चलेगा कि हम कहां थे और कहां पहुंचे हैं। उपसभापति महोदय, 168 साल के रेल का इतिहास है, इसको मैं 3 खंडों में रखना चाहता हूं। ब्रिटिश राज में रेल पोर्ट से पोर्ट तक था, बंदरगाह से बंदरगाह तक कच्चे माल पहुंचाने का रेल का काम था, उनका उद्देश्य भी यही था। कांग्रेस के 65 साल के शासन में ये पॉपुलिज्म और से लेकर पेपर तक का रेल था। पॉपुलिज्म की तो बातें बहुत होती थी, रेल पेपर पे दौड़ती थी, ट्रैक पर नहीं था। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की योजनाएं बनी, नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन बनाने की योजनाएं बनी। 2008 से कश्मीर में रेल लाइन बनाने की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हॉलिस्टिक दृष्टिकोण है, जिसमें उन्होंने रेल को पीपल सेंट्रिक बनाया, पीपल टू पीपल तक का रेल बनाया, उसको मैं 4 भागों में रखना चाहता हूं। पहला, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्या रूप है उसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। मिजोरम में जो 51 किलोमीटर का रेल लाइन बन रहा है, 32 सुरंगों वाला रेल लाइन, वह भैरावी से लेकर सारंग तक का रेल लाइन 32 सुरंगों को होकर पार कर रहा है, तो मणिपुर में 49 सुरंगों को पार करते हुए 141 मीटर के पिलर्स पर जो रेल लाइन बन रहा है, वह दिखाता है कि हमने कैसे एग्रेसिव एक्सपेंशन रेल का किया है। सिक्किम को भारत में मिले हुए 46 ईयर्स हो गए, रेल के मैप पर सिक्किम नहीं था, और आप कहते हैं एक्सपेंशन नहीं हुआ। 2022-23 तक रेल मंत्री जी बताएंगे कि आने वाले वर्षों में सिक्किम हमारे रेल मैप पर होगा। नॉर्थ ईस्ट की जितनी राजधानियां हैं उसको रेल से जोड़ दिया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि चीन को देखकर हमने रेल का एक्सपेंशन किया है। चीन को चाहे जो करना है करते रहे, हम देश में रेल की लाइन बिछा रहे हैं, जनता के लिए बिछा रहे हैं, जनता के हित के लिए बिछा रहे हैं। चीन को देखकर हमारी विकास की नीतियां तय नहीं होती है। दूसरा सवाल है, एक्सपेंशन के बाद इक्विटी। उपसभापति महोदय, हम सब जानते थे जब रेल मंत्री भाषण देते थे तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनका राज्य भारत बन जाता था। चाहे जिस पार्टी की सरकार होती थी, रेल का संकेंद्रीकरण उस राज्य, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती थी। सारा भारत सिर्फ यह देखता था टिकट 2 रुपया ऊपर हुआ या नीचे हुआ। मैं अपने रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि रेल मंत्री राज्य के नहीं, वे पूरे देश के रेल मंत्री हैं। आज देश के हर हिस्से में जहां की भी रेल की मांग होती है वहां रेल पहुंच रही है। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा चाह रहा हूं कि रेल की पटरियां, ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन जब तक आप नहीं कर सकते थे, जब तक एक्सेलेंस नहीं लाएंगे, इक्विटी के बाद एक्सेलेंस नहीं आएगा, तो फिर रेल का विकास नहीं हो सकता था। एक्सेलेंस क्या हुआ? एबीबीवी लोकोमोटिव, बोम्यार इंजन, और जो हमारी बॉगी रेल की होती थी, एलएचपी कोच, हमने उस कोच को बदला। जो कोच एक्सीडेंट का कारण बनता था, असुविधा का कारण होता था। दुनिया की जो सबसे एक्सेलेंट, सबसे वैज्ञानिक, सबसे विकसित तंत्र था वो लाए। उसको लाकर सिर्फ हमने अपने यहां से इंपोर्ट नहीं किया, हमने उसको कस्टमाइज किया।
चाहे चितरंजन हो कि वाराणसी हो या रायबरेली हो, उस जितने भी रेल की फैक्ट्री हैं, चाहे लोकोमोटिव बना रही हो कि इंजन बना रही हो या कोचेज बना रही हो, हमने उस टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज किया, इंडियनाइज किया, और जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आज मॉडर्न कोच का प्रोडक्शन हो रहा है, वह कोच का प्रोडक्शन हाईएस्ट रेट पर हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। कभी हमने सोचा नहीं था। कह रहे हैं कि एक्सपेंशन नहीं हुआ। उसकी एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2009 से लेकर 14 तक राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात यदि करें तो 0 किलोमीटर था। हमारी सरकार बनी 6 वर्षों में 1433 किलोमीटर का हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उपसभापति महोदय, 1978 में जे राज कमेटी का गठन किया गया था जिसने इलेक्ट्रिफिकेशन का रिकमेंड किया था। 78 से लेकर 2014 तक इलेक्ट्रिफिकेशन की गति क्या थी हम सब जानते थे। ना आपके पास बिजली ही नहीं था तो ट्यूबलाइट जलाने के लिए तो बिजली नहीं था, तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक 13-14 में आपने 610 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। 18-19 में हमने 4400 किलोमीटर से अधिक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जो 679% अधिक था। और मुझे उम्मीद है कि 2022-23 तक, जैसा रेल मंत्री जी ने बताया है और रेल मंत्री जी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 22-23 तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया देश में पूरी हो जाएगी। चौथा, एम्पावरमेंट की बात है। एक्सटेंशन, इक्विटी, एक्सेलेंस एंड एम्पावरमेंट। जब तक आप अपने यात्रियों को एम्पावर नहीं करते हैं, उनको आत्मविश्वास नहीं देते हैं, रेल परलोक जाने के लिए नहीं, इस लोक की यात्रा है। मैं इसलिए कहा कि जो क्रॉसिंग होते थे वो मानवीकृत नहीं थे। जब मानवीकृत नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी, और हम दुर्घटनाओं को देखते रहे, सुनते रहे और अफसोस जाहिर करते रहे। 2018-19 में 631 क्रॉसिंग का मानवीकृत किया गया। वो अगले साल लगभग 1500 क्रॉसिंग का मानवीकृत किया गया। तो जिस प्रकार से रेल को एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से विकसित किया गया, आज रेल पूरे भारत को एक भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन के एक मूल साधन के रूप में जो रहा। बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे पास 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं जो हावड़ा, दिल्ली, चेन्नई को कवर करते हैं, मुंबई को कवर करते हैं। उससे 68% ट्रैफिक है। उसको कम करने के लिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, डेडिकेटेड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। वो सिर्फ ना अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा बल्कि यात्रियों को सुविधा देगा। अंत में मैं रेल मंत्री जी से गुजारिश करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। यूँ तो मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान जहाँ है वहाँ एक लखमीनिया स्टेशन है। वहाँ पर 2017-18 में 4 करोड़ 56 लाख का टिकट बिक्री हुआ। 18-19 में 4 करोड़ 32 लाख का हुआ। 19-20 में 4 करोड़ 16 लाख का टिकट बिक्री हुआ। लेकिन वो स्टेशन बहुत ही उपेक्षित है। मैं अपने रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लखमीनिया में कुछ उस स्टेशन को विकसित करते हुए अवध असम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, इन कुछ ट्रेन को रोकने की व्यवस्था की जाए और लखमीनिया से एक दिल्ली की एक जॉर्ज फर्नांडिस एक्सप्रेस शुरू किया जाए। जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत बड़ी भूमिका है रेल को संवारने में, सजाने में, रेल कर्मियों की रक्षा करने में। उनके प्रति एक बड़ा डेडिकेशन होगा। हमें सब मालूम है 74 में यदि वो स्ट्राइक नहीं किए होते तो रेल कर्मियों की क्या देश की स्थिति होती। धन्यवाद माननीय राकेश जी। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय विनय विश्वम जी। सर, द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर Shri Piyush Goyal ji is the Minister for Commerce also. Many times we feel that the interest of the commerce overtake the interest of the Railway Minister. And we can see he's a very good man in talking to us, very friendly, dynamic, no doubts. But the philosophy, the ideas, the way in which you work shows that you are an ardent supporter of private capital, and more clearly I should say of the FDI. And you call it Atmadarparada. Let me say, sir,
If you understand the meaning of the word Atmanirbhar Bharat, what you do now is just the opposite. What will happen to the railway in the future? Can you tell us how long the railways will continue as the Indian Railways? When are you going to sell the railways to the private sector? How much share are you going to offer for the FDI? These questions are very relevant, most pertinent. So I would like to ask you, my dear Minister, kindly let this House and the people of India know your concept of the Indian Railways for the future. I remember in 1853, on 22nd of July, when the first railway was launched by the Britishers, Karl Marx wrote an article titled "The Future Results of British Rule in India," in which he mentioned the launching of the railways. He wrote, "A new worker is born, a new culture is born," and he even imagined it may hit the roots and foundations of the caste system in India. That was the great expectation. If somebody would like to write an article today, they may write the future of British rule in India, and the first casualty, one of the first casualty, will be the Indian Railways. No doubt. You talk a lot about the Tejas trains. Actually, what it is, the Delhi-Lucknow bound train, which you offer now as a great, great achievement. What will be the cost of a ticket? How many folds they are higher than the present rates? For 1,000 kilometers, at present, the railway charge around 700 to 800 rupees. But the Tejas trains, you are going to sell a ticket maybe 2,000 to 3,000. It may sometimes go to the peak seasons, even for 4,000 rupees. Tejas trains. And you talk about the common man. Garibam ka Bharat. Garibam ka Bharat. That's a very, very confusing word for the BJP now. You don't know who the real Garib log of this country. And sir, we should tell that what has happened to Shamit trains. Shamit trains for the first time was driven on 1st of May. Lockdown came to effect on the March of 2020. 1 month, more than 1 month you waited. And when the Shamit trains ran for the poor people of the migrant laborers, like refugees, they were filled in the trains. No water, no food. 97 people died in those trains. I may ask the minister to tell this House whether your government of the poor has a plan to offer a compensation for those poor families who were killed in your trains, Shamit trains. You forget the Shamit trains and you turn your face to the Tejas trains. I am very sure in the course of time, foreign capital with the name of FDI will come to conquer the Indian Railways. Conclude. Please conclude. No, no, to. Will come to conquer the Indian Railways. And this government of the BJP, which talk a lot about Bharat Mata, will pave the way for that surrender to the foreign capital. Sir, let me tell you one more thing about the Kerala state. It's the one state where the government get the maximum revenues. Almost everybody is traveling in the train by tickets. Nobody is traveling the trains in Kerala without a ticket. Thank you, thank you. But all the coaches in Kerala are very, very old, decades old. Thank you. Please give us a reasonable and clean coaches, sir. Thank you. Please do it. Thank you. And one more thing, sir. There was a great saying about a coach factory in Kerala. A coach factory. Where is it? Decades and decades. Thank you. You offered that. Thank you, Vinay Visamji. But at least now, please tell whether that coach factory is going to be real estate or not. Thank you, Vinay Visamji. I am calling Sri B.L. Burma. Sri B.L. Burma. Sri B.L. Burma.
बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपने और मेरी पार्टी ने रेलवे की अनुदान मांगों पर समय दिया है, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिन्होंने 2020-21 का बजट पेश किया है। महोदय, ये बजट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है और दुनिया में अन्य देशों की अपेक्षा भारत कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को मात देकर उसके बाद आर्थिक संकट की समस्या को देखते हुए जिस प्रकार से बजट पेश किया है, ये वास्तव में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बजट हो जाता है। माननीय रेल मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान इसमें किया है। उन्होंने रेल को एक ऐसा विजन दिया है जिससे रेलवे के आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो गई। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और साथ में रेलवे के उन कर्मचारियों के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की स्थिति में हमको सेवाएं देने का काम किया है। ये बजट सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले 5 वर्षों में खास बातों पर हम ध्यान देते हैं तो जैसे यात्री किराए में बढ़ोतरी का न होना, साफ सफाई, खान पान, हेल्पलाइन नंबर, प्लेटफार्म और स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष में एक भी बड़ा रेलवे हादसा नहीं हुआ है। नहीं तो पिछले कई सालों से हम सुनने को मिलता था कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और इसलिए आज की स्थिति में ये महत्वपूर्ण बजट ये हो जाता है। माननीय मोदी की सरकार जब से आई है तब से रेलवे को बहुत ही महत्वपूर्ण बजट लगातार दिया जा रहा है। माननीय रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1000 रेलवे स्टेशन, 400 रेलवे भवनों पर जो सौर पैनल लगाए हैं तो हमारी सरकार का मानना है कि सन 2030 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे वाला दुनिया का पहला देश होगा। हमारे विपक्षी लोगों ने लॉकडाउन की स्थिति में जब कोरोना बढ़ रहा था उस समय आलोचना की थी, लेकिन वो आलोचना सही नहीं थी। उस समय रेलवे की अगर ट्रेनें चलाई जाती तो देश भर में कोरोना और ज़्यादा फैलता, लेकिन इसके बाद में भी कोरोना पीरियड में 2 करोड़ लोगों को रेलवे ने मुफ्त भोजन और पानी की बोतलों के वितरण के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे लगभग 4600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की, जो वास्तव में रेलवे के प्रशंसनीय कार्य को दर्शाता है। हमने कोविड महामारी के दौरान भी मालवाहक ट्रेनों की गति को दोगुना करने का काम किया। कोविड से पहले की स्थिति मालगाड़ी की रफ्तार जो होती थी 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी बेहतर योजना बनाने का काम किया जो 22-23 की रफ्तार को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को करने का काम किया। रेलवे ने हर डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट खोली है और कस्टमर रिस्किंग को सामने दृष्टिगत रखते हुए ग्राहकों के पास जाकर सामान को रेलवे द्वारा परिवहन करने की व्यवस्था की है। महोदय, किसान रेल जिस तरह से चालू करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक निर्णय लिया, ये उनकी दूरदर्शिता किसानों के प्रति गहरा लगाव दर्शाता है। किसान रेल के माध्यम से किसान अपना दूध, फल, सब्जी इत्यादि मछली सब खराब होने की स्थिति में होते थे, इनको उन उत्पादों को वहन होने से बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहे हैं। आज अपने उन उत्पादों को हम कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं। रेलवे ने अब तक 23 रूटों पर किसान ट्रेन सेवा को प्रचालित करने का काम किया है। जनवरी 2020 तक 34,000 टन से अधिक माल का वहन किसान रेल ने करके कुल 120 दौरे भी किए हैं। महोदय, मैं अपने गृह जनपद बदायूं, जहाँ का मेरा जनपद है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि रेलवे संबंधित मांगों के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरा गृह जनपद बदायूं जो दिल्ली और बदायूं के बीच में स्थित है और एक और बड़े क्षेत्रफल में गंगा बहती है तो दूसरी ओर रामगंगा बहती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के इस पार बॉर्डर से 25 किलोमीटर कासगंज में लखनऊ और दिल्ली आने जाने की सुविधा ट्रेन की है और उधर रामगंगा के उधर 25 किलोमीटर आगे जाकर बरेली और लखनऊ और दिल्ली आने जाने की सुविधा है। मान्यवर, मैं इसलिए और इसको इंगित करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ट्रेन की बात हम सब करते हैं,
ट्रेन की पटरियों की बात सब करते हैं, लेकिन ट्रेन की पटरियों को जितना मैंने जाना है, जितना मैंने ट्रेन पर की पटरियों पर चला है, आप सब ट्रेन की यात्रा ऊपर किए होंगे, लेकिन 6th क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो की थी, 12 किलोमीटर ट्रेन की पटरियों पर रोजाना जाकर, ट्रेन की पटरियों पर जाकर, उन पत्थर की राहों पर जाकर के तब मैंने पढ़ाई की थी। तो सम्मानित महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गृह जनपद बदायूं जो बता रहा हूं, वो यहाँ की कृषि व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था आधारित है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग, माननीय वर्मा जी कंक्लूड करिए। ज्यादातर लोग कामकाज के लिए दिल्ली और लखनऊ आते जाते हैं, परंतु लखनऊ दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन न होने के कारण परिवहन के अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं मान्यवर कि बदायूं जिले की दिल्ली से लखनऊ सीधी ट्रेन से जोड़ा जाए। यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, बड़ी लाइन है, स्टेशन भी हैं। सिर्फ ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से क्षेत्र के व्यापारी, किसान रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों के लिए दिल्ली व लखनऊ एक तरह से दुर्बल जैसा होता है। मैं ये निवेदन के साथ बदायूं की जनता को रेल के माध्यम से दिल्ली व लखनऊ से सीधे जोड़ने का मैं निवेदन करने आया हूं। तो दिल्ली वाया बदायूं होते हुए लखनऊ को सीधी ट्रेन चलाने के निवेदन के साथ विचार किया जाए। माननीय सावंत महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा, उक्त मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने के साथ इसको सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। साथ ही पुनः इस रेल बजट पर आपका इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। श्री हरिद्वार दुबे जी। मान्यवर, आज रेल बजट पर चर्चा हो रही है और मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद दे दूं कि मुझे उन्होंने इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया है। मान्यवर, सबसे पहले इस कोरोना काल में जहां विश्व इस महामारी से ग्रसित था और भारत को इससे निकालने में जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद मैं पहले प्रधानमंत्री को और फिर उसके अंतर्गत ऐसा सुलभ आम बजट रेलवे के लिए आया, उसके लिए मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मानवर, रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपया इस बजट में आवंटित हुआ है। निश्चय ही इससे रेलवे का विकास होगा और विकास के लिए सुदूर जहां पूर्वोत्तर में अभी राकेश जी गिना रहे थे कि पूर्वोत्तर के सारे राज्य जो सेवन सिस्टर्स कहे जाते हैं, उनके राजधानी को जोड़ा जा रहा है। वही सुदूर कश्मीर के पश्चिम में कश्मीर में और बनियाल और वहां तक भी रेल लाइनें बिछ गई है। मानवर, जहां अभी तक एक लोग सपना समझते थे बुलेट ट्रेनों की, अभी बात आ चुकी है। तो पहली घोषणा हुई थी बम्बई से अहमदाबाद की, लेकिन अब दूसरा भी हो गई है कलकत्ता से और बनारस तक की। और इसी तरह से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, मैं छोटे शब्दों में, कोई समय के आपने प्रतिबंध लगा दिया है। एक चंद्रशेखर जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो बलिया से सिवान बिहार के एक रेलवे लाइन का सर्वे कराए थे और उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सर्वे यदि हमारे माननीय मंत्री जी को कहीं याद आ जाए, और सर्वे में स्टेशंस जो बने के थे उसमें हुसैनाबाद और बिहार का बलुआ और जगन्नाथ का पीपरपाती ऐसे होते हुए सिवान जाने की बात थी। मानवर, मैं चाहूँगा कि रेलवे लाइन को जोड़ा जाए और रेलवे लाइन के बनाने से अनेक उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। भले चंद्रशेखर जी के नाम पर ही रेलवे लाइन चला दी जाए। मानो मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आगरा एक सबसे बड़ा टूरिस्ट का क्षेत्र है और वहाँ पर ताज नगरी जिसको कहा जाता है, और वहाँ पर अनेकों देश विदेश सारे तरह के पर्यटक आते हैं। और वहाँ कुल 4 चीज़ें भी बड़ी प्रसिद्ध है मान्यवर, और जिसमें सबसे पहले ताजमहल जहाँ है, वहीं पेठा है, वहीं जूता है, चौथे का नाम नहीं लूँगा मैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए अलग से एक ट्रेन की व्यवस्था करें जो इन मालों को तुरंत सप्लाई करके सुदूर क्षेत्रों में जाने की व्यवस्था हो सके। क्योंकि जब ट्रेनें आती, जो भेजते हैं लोग, तो ये लोग सारे सामान को यात्री ट्रेनों में भेजते हैं। उसमें जाने का सुविधा केवल एक दो जो कोच होता है उससे जाता है, उससे सामान उनका पहुँच नहीं पाता है। इससे अलग से इसकी व्यवस्था कराई जाए, जिससे ये 4 जो आगरा की 3 चीज़ें, एक तो नहीं ला सकते लेकिन 2 की व्यवस्था जूता और पेठा की हो सके, इसके लिए व्यवस्था की जाए। मानवर, जहाँ विश्व में आगरा का स्थान ताज के कारण से है, उस यहाँ के स्टेशन भी तदनुरूप बनाए जाए, उसी के आधार पर यहाँ की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री से बात करूँगा। मैं सबसे प्रमुख बात करना चाहूँगा कि सन 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने गांव बटेश्वर को, जो एक तीर्थस्थल भी है, जैनियों का भी है, वहाँ पर आगरा से इटावा तक के लिए एक रेल लाइन का शुभारंभ किया था।
ये लाइन 2 साल बनी, लेकिन यूपीए सरकार के आने के बाद ये काम पूरा 10 साल ठप हो गया। पूरा माननीय मोदी जी के आने के बाद ये सारे इस कार्य को पूरा किया गया। और 3 साल पहले जब तत्कालीन रेल मंत्री माननीय मनोज सिन्हा ने उस पर एक मेमो रेलगाड़ी चलाकर उसका शुभारंभ किया और उन्होंने घोषणा की थी इस ट्रेन को, इस रूट को अधिक उपयोगी बनाने के लिए और अधिकतर लोग बटेश्वर को दर्शन कर सकें, बटेश्वर में पूजा कर सकें और जैन समाज के लोग भी वहाँ पर, क्योंकि जैन तीर्थंकर का भी नाम वहाँ शंकर का आता है, इसलिए अधिक जा सकें। इसलिए यहाँ पर कुछ यात्री ट्रेनें और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें जिनका उन्होंने नाम भी लिया था घोषणा इससे चलेंगी, जिसके कारण से टुंडला और आगरा फोर्ट का जो सेक्शन है भीड़ भाड़, इससे बचत हो जाएगी। परंतु कोरोना के कारण से काम हो नहीं पाया। माननीय, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस कार्य को सुलभ कराएं। धन्यवाद माननीय दुबे जी। माननीय समीर उरांव जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे रेल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, रेल का इंजन देश के विकास का इंजन है। 1837 में जो है मालगाड़ी और 1853 में सवारी गाड़ी प्रारंभ होने से लेकर के आज तक भारतीय रेल भारत के आम जनों का एक जीवन रेखा बन गई है और आवागमन का प्रमुख साधन बनी हुई है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेलवे को नए भारत की रेल व एक आधुनिक रेल व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि जल्द ही भारतीय रेलवे विश्व की सबसे आधुनिक सेवाएं उपलब्ध करने वाली रेल व्यवस्था होगी। महोदय, सभापति महोदय, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से पिछले 6 वर्षों में भारतीय रेल ने ऐसे कार्य किए हैं जो विश्व के लिए उदाहरण बन गए हैं। महोदय, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में चिताब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से जम्मू कश्मीर उसी प्रकार से भारतीय रेल के अन्य मार्गों से जुड़ेगा जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर धारा 370 हटाने के पश्चात भारत की भावनाओं से जुड़ा है। महोदय, स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय रेल भी बढ़ चढ़कर इस अभियान की भागीदारी बनी और आज इसका परिणाम हम सभी के सामने है कि किस प्रकार से देश के स्टेशनों को स्वच्छ किया जा रहा है। रेल में बायो टॉयलेट को बढ़ावा देकर किस प्रकार से रेल डिब्बों में स्वच्छ किया गया है। मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, देश के सामान्य लोग कुछ वर्ष पूर्व वक्त तक जो सिर्फ रेल जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए सोचते थे कि ठीक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो है हमारे इस देश में इस प्रकार से जो व्यवस्थाओं को पिछले दिनों में किस प्रकार से शुरू किया है। महोदय, मैं सोचता हूं कि देश में जो है हाई स्पीड का जो आधुनिक रेल की संभावना है इसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा था, परंतु हमारी सरकार ने कुछ ही वर्षों में देश को तेजस वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल देने के साथ ही भविष्य में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है और जल्द ही देश मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बनारस के बीच नए भारत की नई रेल को देखेगा। सभापति महोदय, इस वित्तीय बजट में भी भारत सरकार ने रेल विभाग ने रेलवे की उपयोगिता को समझते हुए बजट में लगभग 1,10,000 करोड़ की रिकॉर्ड धनराशि को उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बजट में नए भारत के लिए नई रेल नीति तैयार करने के बात कही गई है, साथ ही 2023 तक सभी ब्रॉड गेज 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। महोदय, माल ढुलाई को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई थी और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बजट में सन 2022 तक इस फ्रेट कॉरिडोर का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
आज सरकार की इच्छा शक्ति से जो काम कभी असंभव लगते थे वह भी संभव होते दिखाई दे रहे हैं और इसमें आम जन का विश्वास इस सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। उपसभापति महोदय, मैं झारखंड का निवासी हूं और वहीं से सदन का सदस्य भी हूं। महोदय, कुछ सप्ताह पूर्व झारखंड का गोड्डा जिला स्वतंत्रता के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये विकास के लिए अति आवश्यक रेल लाइन का कार्य पूरा कराया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड के कुछ अन्य अति आवश्यक रेल विषयों को माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। खत्म करिए। बस 1 मिनट में खत्म। नहीं, जल्द खत्म करिए। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। वर्षों से रांची से चल करके लोहरदगा से गुमला, जसपुर, छत्तीसगढ़ का और कोरबा का लाइन जो है, वहां के लोगों का एकदम चिर प्रतीक्षित जो है मांगे हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि पिछले दिनों में भी कहा गया था कि वो सर्वे का काम अब पूरा होगा, बजटीय प्रावधान हो गया है। मैं मांग करता हूं कि यह लाइन जो है वहाँ के आदिवासी, वहाँ के किसानों, वहाँ जो माइंस का क्षेत्र है, ऐसे सारे लोगों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए इस रेल परियोजना को कराने का कृपा करेंगे। साथ ही महोदय, माननीय समीर जी खत्म करिए। बस एक मिनट। साथ ही महोदय, ये जो हमारे माननीय रामविचार नेताम जी ने जो मांगे की थी कि चिरीमिरी से बरवाडी लाइन, वो भी बहुत वर्षों से, आजादी के पहले से वो धन्यवाद जो प्रोजेक्टेड है उसको भी पूरा मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। धन्यवाद। इसलिए प्लीज ये मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सारे योजनाओं को डॉक्टर फौजिया खान जी जो है, प्लीज डॉक्टर फौजिया खान जी प्लीज। Thank you, Chairman, sir. Sir, Indian Railways are the lifeline of common man. They have existed and served quietly for years and years, playing a critical role in the economic growth and the development of the nation. Sir, it is beautifully said that a seed grows with no sound, but a tree falls with a huge noise. Destruction has noise, but creation is quiet. This is the power of silence. Chairman, sir, so let us guard ourselves against the noise. Let us safeguard what has been quietly created and grown by our forefathers and not be tempted to sell, to disinherit, disinvest. Instead, let us rise up, improve, innovate, and enhance our skills, remaining steadfast on the tracks. Let us not derail ourselves and hand over our national wealth to hands that know nothing but profiteering. Sir, our railways, after all, are the lifeline of our common man. It is the world's largest passenger carrier, and one does not need an outstanding foresight to see that the inevitable consequence of privatization will have an overall impact on the economy at large. Sir, the National Rail Plan Vision 2030 gives great hopes. As we moved from steam engines to diesel engines and then to electric, let us work faster on moving to solar energy and to the Hyperloop, which has the potential to be the change maker. Isn't it, sir? Mahatma Gandhi had said, our greatness lies not so much in being able to remake the world, but being able to remake ourselves. Let us remake ourselves. We are happy and proud that the Department of Railways is headed by Piyush Goyalji, a dynamic, modern thinking personality, the son of the soil from my own state, well-informed, always responding positively. Therefore, we were certainly not unfair in our expectations that when the meal is served, we'll be getting a larger share. We, however, were very surprised and disappointed, sir,
to see that Marathwada, the deprived region of Maharashtra, has once again been left deprived and ignored. Out of the total central budget of 110 crores, the South Central Railway got 7,221 crores. Out of that, Marathwada got 175 crores for electrification between Manmad and Munger. And out of 89 projects, sir, in India, Maharashtra gets only 4. Doubling of lines between Parbhani and Manmad, denied. But Guntur, Gutkal, 364 crores. Vijayawada, Gudivada, 1,200 crores. Jalna, Khamgaon, pending for decades. Aurangabad, Chalisgaon, stuck in surveys. Nanded, Latur, approved but no progress. Nanded, Bidar, approved but no provision. Andhra, Telangana division gets 4 new railway lines in 2020-21 and 3 electrification projects underway, but why nothing for Marathwada? Sir, 8 new railway projects got funded in South Central Railway, but no new project in Marathwada. I earnestly request the Minister to please join Nanded Division to Central Railway to rectify the Please injustice. conclude, madam. Please conclude now. Sir, a very small issue remains. Please conclude. Okay. Complete it. Jan Shatabdi, please extend up to Jalna. And I request the Minister, I have so many issues about Marathwada. I request you, sir, please take a meeting with all the MPs of Marathwada, Lok Sabha, Rajya Sabha, so that we can come and voice our woes, because there is no other way in which Marathwada can get justice. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Fauziya Khan. अंतिम स्पीकर को बुलाने के पहले announcement by chair. I have to inform members that the Honorable Chairman has received a letter dated the 16th of March 2021 from Sri Swapan Das Gupta, a nominated member, resigning his seat in the Rajya Sabha. The Honorable Chairman has accepted his resignation with effect from the 17th of March 2021. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 2021. Srimati Nirmala Sitharaman to lay. Thank you very much, sir. I rise to present a statement showing the supplementary demand for grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2021. Thank you, madam. The budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2021-2022. Srimati Nirmala Sitharaman to lay. So I rise to present a statement of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 21-22. Thank you. Supplementary demands for grants of Union Territory of Puducherry 2020-21. Srimati Nirmala Sitharaman to lay. So I rise to present a statement showing the supplementary demand for grants in respect of the Union Territory of Puducherry for 2020-21. Thank you. The budget of Union Territory of Puducherry 2021-22. Srimati Nirmala Sitharaman to lay. So I rise again to present a statement of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Puducherry for the year 21-22. Thank you very much. रेल चर्चा पर अंतिम वक्ता माननीय श्री सकलदीप राजभर जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। मैं रेल बजट पर अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आपने जो हमें समय दिए इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में न केवल रेल सुविधाएं वरना अन्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जैसे सड़क परिवहन, हवाई यातायात इत्यादि। आज माननीय रेल मंत्री जी को अपने तरफ से तथा देश की जनता के तरफ से धन्यवाद भी देता हूं कि इनके प्रयास से पूरे भारत की जनता की सुविधा के लिए रेल लाइनों का जाल बिछ रहा है। रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण तथा सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता एवं शुद्ध जल, जनमानस को बैठने के लिए विश्रामाशालय, प्लेटफार्मों पर कुर्सियां तथा स्टेशनों का साफ सफाई चकाचौंध कर दिया गया है। जब शाम होती है तो
दीपावली के दिन जैसे स्टेशन जगमगा रहे हैं। यहाँ तक कि बुजुर्गों और बीमार पीड़ितों के लिए लोअर टिकट के रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की है। उक्त रेलवे के सारे कार्य सराहनीय हैं। इसी कड़ी में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरे गृह जनपद बलिया समेत जनपद आजमगढ़ और मऊ के चौमुखी विकास के लिए आजमगढ़ मुख्यालय से सगड़ी, जीयनपुर, दोहरी घाट, मधुबन, बेलथार और सिकंदरपुर, मनियर, बाहडी होते हुए बकुलहा घाट, सुलेमनपुर तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने मंत्रित्व कार्यकाल में बिलथार और सिकंदरपुर से सुलेमनपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे भी कराया था, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने अपना सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया। इसके साथ ही मेरे स्टेशन बेलथार से दिल्ली के लिए गुजरने वाली एकमात्र गाड़ी लिच्छवी एक्सप्रेस 14,005 और 14,006 है। इस गाड़ी में एसी प्रथम कोच लगाने के लिए जब से मैं सांसद बना तब से लगातार मांग कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर लिच्छवी गाड़ी में प्रथम एसी कोच नहीं लग सका। यह भी बताना उचित समझता हूं कि यदि इसमें प्रथम श्रेणी का एसी कोच लग जाएगा तो प्रथम श्रेणी में चलने वाले जनमानस को इसकी सुविधा मिल जाएगी जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम सभी व जनता जनार्दन उचित गाड़ी को लेने के लिए 100 से 150 किलोमीटर सड़क यात्रा कर वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया से ट्रेन की सुविधा प्राप्त करते हैं, जिससे समय और धन दोनों का बर्बादी होता है। इसके अलावा मैं गोरखपुर से दिल्ली के लिए एक राजधानी ट्रेन की भी मांग करता हूं। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आजमगढ़ से बलिया, सुलेमनपुर तक नई रेल लाइन बिछाने तथा लिच्छवी एक्सप्रेस में प्रथम एसी कोच लगाने हेतु अपने अनुदान मांगों में शामिल करके इस कार्य को कराने का कष्ट करेंगे तथा इस माननीय झा साहब ने जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर ट्रेन चलाने के मांग की है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। और बकुलहा घाट रेलवे स्टेशन का नाम जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर तथा क्रीड़ापुर रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा जाए, मैं पहले से मांग कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय ठावले जी, एक मिनट। डिप्टी चेयरमैन सर, ये रेल का जो बजट है इसका सपोर्ट करने के लिए और देश को प्रगति की दिशा से आगे ले जाने की कोशिश जो हमारी सरकार की है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। कुछ लोग तो जा रहे हैं जेल, कुछ लोग तो जा रहे हैं जेल, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल की तेजी से चल रही है रेल। वेस्ट बंगाल में भी पहुंच रही है बीजेपी की मेल, वेस्ट बंगाल में भी पहुंच रही है बीजेपी की मेल। टीएमसी का बंद होने वाला है वहां से खेल। खत्म करिए। अब इसीलिए जो ये रेल बजट है, रेल बजट में महाराष्ट्र में बहुत सारी योजनाओं को मतलब सपोर्ट किया है, मतलब बजट भी दे दिया है। मुंबई शहर जो है, मुंबई शहर में जो लोकल सेवा है, ये लोकल सेवा के लिए भी मतलब अच्छी सुविधाएं दी है। और पीयूष गोयल जी हमारे महाराष्ट्र से, मुंबई से रहने वाले हैं, इसीलिए मुंबई को ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भी मुंबई का हूँ, तो इसीलिए मतलब ये बजट का मैं सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद माननीय ठावले जी। माननीय मंत्री जी का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही अच्छी चर्चा रही डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज के ऊपर। वास्तव में ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। स्वाभाविक रूप से सभी माननीय सांसद अपने अपने दल की प्राथमिकताओं से उठ के देश की चिंता करें, देश में किस प्रकार से विकास को गति मिले, किस प्रकार से देश का आगे एक उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलके काम करें, इस पे हम सब चिंता करते रहते हैं।
डिबेट का स्तर भी अच्छा था, कई सुझाव आए, कुछ टिप्पणियां भी हुई, थोड़ी तारीफ हुई, कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन एक प्रकार से लोकतांत्रिक परंपरा को रखते हुए जिस अच्छे वातावरण में आज की बहस, आज की बातचीत हुई, वो सही माने में दर्शाती है कि हम सबका लक्ष्य तो एक ही है, कैसे भारतीय रेल जो इस देश की संपत्ति है, इस देश का एक अंग है, और हम सबकी जितना जुड़ाव रेलवे के साथ हमारा सबका लगा हुआ है, वो भी आज देखने को मुझे मिला। मुझे याद है पिछली बार जब रेलवे पे डिबेट हुई थी दोनों सदनों में, तब लगभग 174 माननीय सांसदों ने लोकसभा में और 30 माननीय सांसदों ने राज्यसभा में अपनी अपनी बातें रखी थी। कई ने अपनी स्पीच को पटल पर रखा था। उस समय भी हमने हर एक माननीय अध्यक्ष महोदय, हर एक सांसद को जो विषय उन्होंने चर्चा के दौरान उठाए उसका एक व्यक्तिगत जवाब भेजा। अभी भी लोकसभा में डिबेट एक दिन चली और उत्तर मेरा मंगलवार को था, कल था, तो हमारे सभी रेलवे के अधिकारी रात भर बैठे और जितने चर्चा में विषय निकले थे सोमवार को, उन्होंने हर एक विषय के ऊपर व्यक्तिगत समाधान, जहां समाधान हो सके या जहां पे कोई कठिनाई हो तो कठिनाई बताते हुए पूरी तैयारी करके मेरे कमरे में रख दी, जिससे लगभग कोई सांसद जिसने कोई डिमांड रेस की हो, नीरज जी ने कुछ कहा, मनोज जी ने कुछ कहा, अलग अलग माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की, राज्य की डिमांड रखी। हमने हर एक का व्यक्तिगत जवाब, लोकसभा का तो रात को ही तैयार कर लिया था। वास्तव में ये जवाब की एक प्रतिलिपि भी है मेरे पास। एक एक माननीय सांसद ने जो विषय उठाए उसका जवाब भी साथ ही साथ मैं तैयार करके गया था, लेकिन सभी माननीय सांसदों की अनुमति से आज के भी जो व्यक्तिगत विषय थे उस पर तो मैं जरूर आपको लिखित रूप से जवाब दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बहस का स्तर समझते हुए आज चर्चा करें कि रेलवे किस दिशा में चल रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं और क्या सोच है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जब वो भारत की रेलवे का आगे का विस्तार प्लान करते हैं, आगे किस प्रकार से रेलवे देश की सेवा करेगी, दोनों वर्गों की, चाहे यात्री हो, चाहे उद्योग जगत के लिए एमएसएमई सेक्टर हो, हमारे एक्सपोर्टर्स हो, उद्योग जगत को बल मिलता है तो उससे नौकरियां आती हैं, उससे और ज़्यादा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से भारतीय रेल आगे नियंत्रित रूप से तैयार की जाए देश को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। सबसे पहले तो स्वाभाविक है और कई माननीय सांसदों ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोविड की महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। मेरे खुद का प्रदेश महाराष्ट्र में कोविड की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आज लगभग 60% केसेस महाराष्ट्र से ही हैं, 15,000 के करीब हर रोज केसेस निकल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबके साथ चर्चा करके कोशिश की है कि सब लोग मिलकर इसको नियंत्रण में रखें। कोविड एक बड़ा भयानक समय था। आप सबको याद है कि जब लॉकडाउन अनाउंस किया तब कुछ टिप्पणियां भी हुई थी, कहा गया अरे अब तो 500 केस भी नहीं हुए, लॉकडाउन की क्या जरूरत है। लेकिन हम सब ने देखा कि जिन देशों ने समय पे कदम उठाए, उचित कदम उठाए, निर्णायक कदम उठाए, फैसले किए, उन देशों में, और उन देशों में भारत का सर्वप्रथम अंक माना जाता है, उन देशों ने कैसे रैपिडली रिकवर किया, अपने लोगों की जान बचाई, लोगों को मृत्यु से बचाया, लोगों को जल्दी ठीक किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी साथ ही साथ पटड़ी पे लाने में सफल हुए। और वो देश जो अपने आप को बड़ी
मॉडर्न, बड़े एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज मानते थे, उन देशों ने जिन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता की, समय पे लॉकडाउन नहीं किया, समय पे लोगों को संभाला नहीं, समय पे मास्क का उपयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, पर्सनल हाइजीन हो, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं की, अपने स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक करने की चिंता नहीं की। आज देखिए उन देशों का क्या दृश्य है। और मैं समझता हूँ रेलवे भी उसी का एक प्रतीक है। मुझे अभी भी याद है कि जब शुरू में कोविड के समय 22 या 23 मार्च पिछले वर्ष रेलवे की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से विराम दिया, उनको रोका गया, तब तुरंत ध्यान में आया कि आखिर देश चलना है, देश की अति आवश्यक वस्तुओं सब तक पहुंचानी है, अनाज पहुंचाना है सबको, किसानों को फर्टिलाइजर चाहिए। अगर बिजली नहीं होगी तो हम लॉकडाउन में घर बैठ ही नहीं पाएंगे। बिजली के कारण टेलीविजन, कुछ एंटरटेनमेंट, गर्मी में कुछ सुविधा, सर्दी में भी बच के रहना, बिजली का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल। और देश में बिजली बिना कोयले के उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में बिना अपनी जान की चिंता करे, आखिर रेलवे के कर्मचारी भी तो परिवार के लोग हैं, सामान्य आदमी हैं, मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, उनके परिवारों में भी आखिर कोविड के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। सबको टेंशन था, सबको चिंता थी, सबको डर लगा हुआ था। लेकिन मैंने लोकसभा में भी इस बात का जिक्र किया और मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात के प्रति कि पूरे महामारी के दौरान रेलवे के एक भी कर्मचारी ने कभी अपनी ड्यूटी पे आने से मना नहीं किया। 24 घंटे तत्पर रहे, जहां वस्तुओं को पहुंचाने की जरूरत थी, लगातार अनाज हो, फर्टिलाइजर हो, कोयला हो, दवाइयां हो, लोगों तक सीधा पहुंचती रही। जब और कोई साधन नहीं था, तब रेलवे एकमात्र साधन था जिससे सब वस्तुओं पहुंचने से देश इतनी बड़ी महामारी से जूझने में भी सफल हुआ और एक प्रकार से पूरे देश में अमन शांति बनी रही। आपने किधर कोई किस्सा नहीं सुना कि यहाँ पे लोगों को खाने पीने की सामान की कमी हो रही है, कोई बिजली घर बंद नहीं हुआ, कोई किसान को तकलीफ नहीं हुई। आखिर उसी का प्रमाण है कि आज हमारे मेहनती किसानों ने, और वो एकमात्र क्षेत्र है जिसमें लगभग 3.5% वृद्धि हुई है उत्पाद में, वो इसलिए क्योंकि किसानों ने मेहनत की और साथ ही साथ समय पे, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, हर एक वस्तु हमारे मेहनती किसानों तक पहुंच पाई। और मैं समझता हूं कि जब समय समय पे निर्णय लेने की जरूरत पड़ी, जब लगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी, आगे चल के अगर नंबर बहुत बढ़ गए और आईसीयू बेड्स या अस्पताल के बेड्स कम हो गए, तो आइसोलेशन में लोगों को कहां रखेंगे। साधारणतः हम सबके छोटे घर होते हैं, किसी व्यक्ति को कोविड हो जाए तो उसको आइसोलेट करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में देश के पास पर्याप्त सुविधा नहीं थी, खासतौर पे गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मुझे सुबह सुबह फोन करके पूछा कि क्या आपके ये कोचेज, आजकल ट्रेनें तो बंद है पैसेंजर की, क्या ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात यह है कि मैं भी एक प्रकार से बहुत हैरानी में रह गया कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पर जब उन्होंने मुझे समझाया कि आखिर कोविड की कोई दवाई तो है नहीं, कोविड में कहा जाता है कि एयर कंडीशन में रहना ठीक नहीं है, एयर कंडीशन तो हानिकारक था। हमारे साथ कई डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, इस बात की पुष्टि करेंगे। तो एयर कंडीशन के बगैर रहना है, चाहिए क्या कुछ दवाइयाँ, उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू हुई थी, कुछ समय तक रेमडेसिविर थी, साधारणतः तो फैबी फ्लू और टेम्परेचर कंट्रोल, फीवर कंट्रोल करने की दवाइयों पे ही बल दिया जाता था। तो जरूरत थी कि एक अच्छा साफ सुथरा माहौल हो,
उसमें आईवी लाइन वगैरह और देने की जरूरत पड़े, सुविधा ऐसी हो कि अटेंडेंट्स देख सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और अगर समझो कोई दूर दराके के गांव में, समझो बलिया में एक आउटब्रेक हो जाए कोविड का, बाकी व्यवस्थाएं तो संभाल नहीं पाएंगी। ऐसी परिस्थिति में हम फटाफट घंटों के अंदर ट्रेन पहुंचा सकते हैं वहां पे, और उस कोचेस को इस तरीके से बनाया जाए जो कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बन सके। और मैं समझता हूं ये एक सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये चीज समय समय पे मुझे मार्गदर्शन मिलते रहा प्रधानमंत्री जी का, कैसे रेलवे इस कोविड के आपदा को भी एक प्रकार से सुधार का अवसर बनाए, देश की सेवा का अवसर बनाए, जनता की सेवा का अवसर बनाए। और रेलवे का पूरा परिवार, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इस काम में जी जान से जुट गए। अध्यक्ष महोदय, करीब करीब 80,000 बेड्स का आइसोलेशन कैपेसिटी हमने तैयार कर दी। उत्तर प्रदेश के तो कई गांव में इसका इस्तेमाल भी हुआ। कुछ प्रदेश उसमें राजनीति करते रहे कि नहीं, इसमें आपने वेंटिलेटर नहीं लगाया है, आप डॉक्टर दो, फलाना ढिमका। अब मैं समझता हूं कि सुविधाएं भी दें और उसके बाद उसमें भी अगर राजनीति की जाए तो ये बहुत दुख की बात है। पर इसी प्रकार से पूरे इस कोविड के दौरान अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसान रेल चलाने की बात हो कि हमारे किसानों का सामान देश के कोने कोने तक पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, आज तक 377 किसान रेल चल चुकी हैं 43 अलग अलग रूट्स के ऊपर, और 1 लाख सवा लाख टन अभी तक किसानों का उपज पहुंचा चुकी है अलग अलग जगहों पे। तो एक प्रकार से इस पूरे दौरान श्रमिक स्पेशल की जहां बात आती है, जब ध्यान में आया कि लोग उत्सुक हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तो बंद व्यवस्था के बावजूद स्पेशल ट्रेन श्रमिक स्पेशल के नाम से देश भर में चलाई गई। 4,600 के करीब ट्रेन चलाई गई। अब पता नहीं कहां से किसी माननीय सदस्य को लगा कि 40 ट्रेन भटक गई। ऐसा तो कभी ट्रेन में होता नहीं है कि ट्रेन ही भटक जाए, पर दुर्भाग्य से कुछ लोग भ्रमित रहते हैं, उनको अब उसका इलाज तो मेरे पास है नहीं। लेकिन 4,600 ट्रेनें जिन्होंने 64 लाख से अधिक, 64 लाख तो रजिस्टर्ड हमारे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, सुगम उनकी यात्रा रही। लगभग 2 करोड़ से अधिक तो हमने मुफ्त में भोजन दिया। 2.25 करोड़ 16 लाख के करीब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल दी गई। आरपीएफ की व्यवस्था हर ट्रेन में करी गई, और हर एक राज्य ने जितनी ट्रेनें मांगी उतनी ट्रेनें उनको मिली। उसमें भी कभी कभार राजनीति करने की कोशिश हुई, उसका भी हमने एक प्रकार से तुरंत समाधान किया कि किसने अगर कह दिया कि हमारे को तो ट्रेन चाहिए थी, मिली नहीं, तो हमने कहा भाई बताइए कितनी ट्रेन चाहिए, और 12-14 घंटे के अंदर उतनी ट्रेन खड़ी कर दी। ये अलग बात है कि वो फिर वो ट्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उतनी जरूरत ही नहीं थी। तो राजनीति चलती रहती है, पर मैं समझता हूं कि कोविड के समय जिस प्रकार से पूरे रेल परिवार ने देश की सेवा की, ये अपने आप में एक मिसाल रहेगा और एक गर्व की बात है। ये देश गर्व करेगा अपने रेल परिवार पे। और मुझे तो खुशी है कि 2 पूर्व रेल मंत्री भी यहाँ पे विपक्ष में बैठे हैं। उन सब के लिए भी एक प्रकार से आनंद का विषय है कि उनके परिवार ने, इस देश के रेल परिवार ने देश की सेवा की। और मैं समझता हूँ इसमें तो पूरे सदन ने एक साथ देश के रेल कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिए। इसमें तो राजनीति करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखती। इसी दौरान एक और बड़ी अच्छी घटना रेलवे के हिसाब से हमारे अनुभव का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो वर्षों वर्षों तक हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। कोई अगर जैसे कलकत्ता है, 15 रेल लाइनें हैं वहां, 15 लाइनों के ऊपर एक पुराना ब्रिज था जो तोड़ नहीं पा रहे।
फिर तोड़ने के लिए सब ट्रेनें को बंद करना पड़ेगा। 15 लाइनों की ट्रेनें बंद करना मतलब पूरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो जाती है। इस दौरान हमें एक लंबा ट्रैफिक ब्लॉक मिल गया, रोक सके गाड़ियां ऐसे, और उस रोड ओवरब्रिज को हम डिसमेंटल कर पाए तो सेफ्टी बढ़ गई। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 350 लंबे अरसे से जो लंबित थे प्रोजेक्ट जो खत्म नहीं हो पा रहे थे और शायद भविष्य में कभी हो भी नहीं पाते, उन सबको माननीय मंत्री रेलवे ने 6 बजे। Sir, railways is a very is a department, not only a department for the whole country, but is close to the heart of every citizen. And many of the members have expressed their opinions and views on this topic, on the demand of grants. And every honourable member would like to hear the response of the honourable minister also. So I would suggest that the House may agree to sit till the minister's reply is over. सदन की सहमति है माननीय मंत्री जी के जवाब तक। प्लीज सहमति सदन की है। My good friend Jairam ji is concerned because there are so many good things to speak about the performance of the railways. अध्यक्ष महोदय, पहले के जमाने में एक रेल बजट अलग से आया करता था और उसके बारे में कई बार चर्चा होती है कि वो बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो क्यों बंद कर दिया। मैंने भी कई रेल बजट्स पढ़े और देखे पुराने कि उसमें क्या रहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट कुछ और कहता था, अनाउंसमेंट्स अलग अलग प्रकार की करता था, लेकिन जो फाइनेंस का बजट में उसकी एलोकेशन होती थी, जो पैसा उपलब्ध कराया जाता था निवेश के लिए, वो अपने आप में बहुत थोड़ा रहता था। और इसी के चलते देखा गया कि अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट लगभग 500-550 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और मैं उसकी पूरी लिस्ट लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स हर प्रदेश के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से। अब जिस राज्य का जो प्रोजेक्ट है मेरे पास उसकी डिटेल है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते गए। अब कोई पश्चिम बंगाल से रेल मंत्री बने तो उठा के 2009, 10, 11 में नई लाइनें, डबलिंग, ये वो के 15-20 प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। अनाउंस करने में क्या जाता है, लोग अपना खुशी मना लेंगे, सांसद भी खुश, जनता को भी भ्रमित कर देंगे, पर उसके बाद उसके लिए आवंटन के लिए पैसा ही नहीं है। कभी पैसा आवंटित किया ही नहीं गया उसको कंप्लीट करने के लिए। चलो पैसा भी उपलब्ध हो जाए तो जमीन देने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है, जमीन एक्वायर करके देने में टंचाई। ऐसे करके हमने जब देखा तो एक एक प्रोजेक्ट में अध्यक्ष महोदय, हमारे चाहते हुए भी कि हम पैसा और दें, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हैं। पश्चिम बंगाल का तो सबसे पुराना प्रोजेक्ट देखने की सुनने लायक है। 1974 1974-75 में अनाउंस हुआ 110 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट, जो हावड़ा से आमटा, बारगचिया, चंपादंगा, तारकेश्वर, आमटा, बागनान जाने वाला था। उसमें 42 किलोमीटर ही बन पाए अध्यक्ष महोदय, बाकी की जमीन ही उपलब्ध नहीं हुई। कुछ पैचेस में जमीन उपलब्ध हुई, लेकिन पैचेस में तो रेल नहीं चल सकती, हवा में उड़ते नीचे ऊपर नीचे, वो भी एनक्रोच हो गई आस्ते आस्ते। कि कुछ इलाके में जमीन का उन्होंने कहा चलो हमने ले लिया जमीन, पैसा जमा करो, तो हमने पैसा जमा कर दिया। अब वो पैसा भी वापस नहीं आ रहा, ना जमीन आई ना पैसा है। और नहीं तो महाराष्ट्र का सुना देते, आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। माननीय सांसद, चलिए मेरे खुद के राज्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं प्लीज। महाराष्ट्र में माननीय बहन फौजिया खान जी ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त राशि नहीं उपलब्ध की जा रही है या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। अब जब एक सरकार 2009 से 14 के बीच काम कर रही थी तो 5 वर्षों में
उस समय 5 वर्षों में 1171 करोड़ एवरेज पर ईयर एलोकेट किया गया महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से गुजरने वाली लाइनों पे 1171 करोड़ प्रति वर्ष। इस वर्ष के बजट में 2021-22 में अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा महाराष्ट्र के लिए अलॉट किया गया है, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के लिए इस वर्ष में आवंटित किए गए। ये है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक स्टेट के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब तक निवेश नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट होंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा। पर निवेश तभी हो सकता है। किसी माननीय सांसद ने पूछा, मुझे बताइए ये लाइन कब तक होगी। मैं लाइन की डिटेल्स लेके आया हूं। अगर आप जमीन ना दें, अगर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ना दें, अगर यूटिलिटी शिफ्टिंग ना करें, अगर कोई रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है वो ना करें, तो आप बताइए मैं डेट कैसे दे सकता हूं। मेरी डेट तो रेलवे की राज्य सरकार पर निर्भर करेगी। और इसी क्रम में आप जिस राज्य की देखो, आज केरल की भी बात निकली। केरल में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। क्यों? जमीन ही उपलब्ध नहीं है। कहां पे लगाएं रेलवे लाइन? डिमांड नई लाइन की आती है लेकिन पुराने लाइन के लिए जमीन नहीं मिलती है। और जो राज्य हमें जमीन उपलब्ध कराने में चुस्ती दिखाते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, वहां तेजी से काम कर पाते हैं। आज मध्य प्रदेश के माननीय सांसद बता रहे थे उनके प्रदेश की बात। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में हम, या उत्तर प्रदेश की बात हुई, हमने इस बजट में भी बलिया की एक लाइन अप्रूव की है। अब जहां पे हमें जमीन में प्रोएक्टिव अप्रोच मिले, जहां पे हमें जमीन में दिखे कि जरूरत पड़ने पे जमीन की कठिनाई नहीं होती है, तो तुरंत वहां पे हम काम शुरू करते हैं। और हमने एक सोच बनाई है जो मुझे लगता है, मैं सदन का आशीर्वाद चाहूंगा इस सोच पे, कि जिस प्रोजेक्ट में जमीन उपलब्ध हो, अप्रूवल्स पूरे हों, वाइल्ड लाइफ वगैरह अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो पूरी हो, अगर कोई ओवरहेड शिफ्टिंग करनी है वो पूरा हो जाए, तो उस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए, उस प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। अगर हम इस प्रकार से फोकस करेंगे तो जो आज 2,15,000 करोड़ रुपए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, आज से 15 साल पहले अध्यक्ष महोदय सालाना 25,000 करोड़ रुपए कैपेक्स में खर्चा करती थी रेलवे 2004 से 9 के बीच, एवरेज 9 से 14 के बीच वो बढ़ा के 45,000 करोड़ हुआ। 25,000 5 वर्ष तक एवरेज, 45,000 5 वर्ष तक एवरेज। इस वर्ष वो बढ़ा के 2,15,000। सोचिए स्केल ऑफ कैपेक्स कितना बढ़ा है। और उसके मैं आंकड़े भी बताऊंगा कैसे उससे तेज गति आई ये काम करना। पर वो अगर वो पैसे को हम 500 प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दे थोड़ा थोड़ा, और आधे आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स ही रखें, तो बताइए देश को क्या फायदा होगा, जनता क्या लाभ ले पाएगी, यात्रियों को क्या फायदा होगा। आधे अधूरे प्रोजेक्ट में तो ट्रेन नहीं चल सकती। तो हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स जो 70% 80% कंप्लीट हुए हैं, जहां जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उस पर फोकस किया जाए, उसको तेज गति से खत्म किया जाए। और इस प्रकार से ये सब प्रोजेक्ट्स देश की सेवा में आएंगे। रेलवे का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, फ्रेट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा का भी विषय उठा था, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि कहाँ 2009 से 14 के बीच 838 रुपए प्रति वर्ष एवरेज निवेश होता था। 838 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एवरेज मिलता था उड़ीसा की लाइनों को कैपेक्स के रूप में। वो 2021-22 में बढ़कर 5,528 करोड़ रुपए, यानी लगभग 6 गुना, 6.5 गुना। तो मेरे ख्याल से
जो सोच बदली है रेलवे की, वो इसी कारण बदल पाई कि अब दोनों बजट्स को हमने मिला दिया। जितना पैसा उपलब्ध है उसके हिसाब से नई लाइनों का प्लानिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लानिंग, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, अलग अलग चीजें, जितनी जेब में पैसा है उसके हिसाब से प्लान करो, अनाउंस करो, क्यों लोगों को भ्रमित करना। और आपको जान के खुशी होगी, हमने इसी क्रम में इन मापदंडों से जब आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने की भी प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी तरीके से एक नेशनल रेल प्लान बनाया कि 2030 तक देश की सबसे ज्यादा अति आवश्यक लाइनें क्या हैं, कौन सी लाइनों में सेवा यात्रियों को ज्यादा डिमांड है, सेवा चाहिए, कहां पे फ्रेट की डिमांड है, जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी, आपके पैराडीप से कनेक्टिविटी देनी है, जेएनपीटी से कनेक्टिविटी देनी है, कोची से कनेक्टिविटी देनी है, हावड़ा से कनेक्टिविटी देनी है, पोर्ट कनेक्टिविटी, कोयले की खदानों से कनेक्टिविटी, आयरन ओर की खदानों से कनेक्टिविटी पोर्ट को, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस प्रकार से सोच करके 2030 तक का एक बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत एक नेशनल रेल प्लान बनाया। उसमें 58 प्रोजेक्ट्स को सुपर क्रिटिकल अनाउंस किया। उसमें से आपको बताते हुए खुशी होती है 25 हम पूरे कर चुके हैं, 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और आखिरी 2 मार्च अगले वर्ष, यानी पूरे 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इस आने वाले वर्ष में पूरी तरीके से देश की सेवा में आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक क्रिटिकल 68 प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकल घोषित किया, जिनको हम अगले 3 वर्षों में पूरा करके एक प्रकार से पूरे देश में कनेक्टिविटी का विस्तार बढ़ाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अपने अंतिम छोर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश को रेलवे से जोड़ पाएंगे। इस प्रकार की कल्पना के साथ हम काम में जुटे हुए हैं। कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था, बीच में पीआईएल्स और कोर्ट केसेस वगैरह में काफ़ी समय तक उसमें तकलीफ भी आई, कुछ समय खरगे जी भी थे तब भी उसमें शायद स्टे वगैरह हो गया था। उन सब समस्याओं को पीछे करके अधिक रूप से उसमें पैसा दिया गया पिछले 2-2.5 साल में। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि जो एक लास्ट सेक्शन है बनिहाल से ज्वाइन करेगा कतरा को, वो सेक्शन पे तेज गति से काम चल रहा है और जल्द से जल्द मेरे ख्याल से अगले 2-2.5 साल में वो सेक्शन पूरा होने से पूरे बारामूला तक कन्याकुमारी से एक ही गाड़ी में व्यक्ति ट्रैवल कर सके। और इन ट्रेनों में हम विस्टा डोम के कोचेस भी लगा रहे हैं, जो पूरे कांच के चारों तरफ जिसमें कांच हो। तो आप सोचिए कश्मीर में उन विस्टा डोम कोचेस में क्या आनंद आएगा, बर्फ का आनंद लेंगे, चारों तरफ वादियों का आनंद लेंगे। ऐसे अभी तक 33 विस्टा डोम के कोचेस सेवा में हैं, अलग अलग रूट पे चल रहे हैं, कुछ अराकू वैली में चल रहे हैं, कुछ दादर से मडगांव कोंकण रेलवे में चल रहे हैं, माथेरान केवड़िया बैंगलोर के बीच एक चल रहा है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे पे चल रहा है, कश्मीर में अभी एक पहुंचा है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू करेंगे और सक्सेसफुल करेंगे उसको। उसमें हमने बुलेट प्रूफ वगैरह किया है उसको। कालका शिमला में कुछ कोचेस को किया, पर अब उसको भी नए डिजाइन से हम नया बना रहे हैं, जिससे अगले 1.5 वर्ष में पूरी जो शिमला की रूट है उसमें इतने सुंदर नए कोचेस विस्टाडोम बनेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा सभी हमारे माननीय सांसद उससे एक बार शिमला जरूर जाएंगे और उसका स्वाद लेंगे। पठानकोट बैजनाथ पपरोला के बीच चल रही है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसमें 33 विस्टाडोम कोचेस अब चल रही हैं और 100 और बना के पर्यटन को भी हम एक बड़ा बूस्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, कश्मीर का जो चेनाब ब्रिज है वो भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। वास्तव में उस प्रोजेक्ट का
लेंथ 111 किलोमीटर है, पर उसके लिए 205 किलोमीटर की तो रोड्स बनानी पड़ी हैवी इक्विपमेंट को लेके जाने के लिए। इतने टनल्स हैं, सबसे लंबा टनल भी देश का वहीं पे है, 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा। इन सब के पीछे पर्सनली मैं मॉनिटर करता हूं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हर हफ्ते मॉनिटर करता हूं, कश्मीर का प्रोजेक्ट हर 15 दिन में मेरे लेवल पे मॉनिटर करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हमें ये सिखाते हैं कि एक बार जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे तो समस्याओं का समाकलन निदान जल्दी होगा और काम को भी तेज गति आएगी। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स तो अपने आप में एक मिसाल है कैसे इस सरकार ने स्पीड चेंज करी है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, गति लाए हैं। कहाँ पे उस प्रोजेक्ट में 2014 के पहले सिर्फ 10,000 करोड़ खर्च हुआ था, हमने 2014 से 19 के बीच 38,000 करोड़ उस पर निवेश किया 4 से 5 सालों में। और इस साल के बजट में भी लगभग 14 या 16,000 करोड़ सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दे रहे हैं कि उससे देश भर में हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे उद्योग जगत को एक बड़े रूप में सस्ते दामों पे फ्रेट तेज गति से पहुंचाने को मिलेगा। और वो लाइनें जहां आज फ्रेट चलती है वो हमें पैसेंजर सर्विस के लिए फ्री हो जाएगी, जिससे हम पैसेंजर की सेवाएं भी और ज़्यादा अधिक सुगम बना सकेंगे और तेज गति से ट्रेन चल पाएंगी और ज़्यादा ट्रेन चल पाएंगी। इसी प्रकार से फ्रेट में कई सारे हमने चेंजेस करके हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को और बल दिया है। किसान रेल में 50% छूट दी फल और सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी अगर मैं समझूं उपलब्धि इस कोविड के दौरान को, इस आपदा को अवसर में बदलते हुए, तो वो रही फ्रेट की स्पीड। और ऐसा नहीं कि आज कम गाड़ियां चल रही है इससे स्पीड ज्यादा है, लगभग 80% मेल एक्सप्रेस ट्रेन फिर से चलने लग गई हैं। सबर्बन तो 91% रीस्टार्ट हो गई हैं। बाकी ट्रेन जैसे जैसे डिमांड आती हैं, जहां जहां पे कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो सकते हैं उसको भी फिर हम आस्ते आस्ते शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो हमने मेहनत करके फ्रेट ट्रेन का स्पीड डबल करने में हम सफल हुए, जो 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड थी फ्रेट की, वो आज 45 किलोमीटर साधारणतः रोज एवरेज स्पीड पे फ्रेट ट्रेन चल रही। अब इसका आप अनुमान लगाइए देश की अर्थव्यवस्था को और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे लाभ होगा। जो ट्रेन मुंबई से गुवाहाटी 7 दिन में जाती थी, अब वो 2-2.5 दिन में पहुंच जाती है। सामान जल्दी पहुंचता है तो हम ज्यादा ट्रेनें चला सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तेज गति से अर्थव्यवस्था रिवाइव होगी तो नया निवेश आएगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए नौकरियों के अवसर बनेंगे और उसी से देश आगे बढ़ेगा देश में और तेज गति से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि आज के दिन एक माननीय सांसद ने उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि कुछ अच्छी उपलब्धि हो तो उसको तो कोई भी करे, किसी भी पार्टी की सरकार करे, देश ने सेलिब्रेट करना चाहिए। आज माननीय अध्यक्ष जी, कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल ने पिछले वर्ष, आज 17 तारीख है, 16 मार्च तक, पिछले वर्ष 16 मार्च 2020 में अप्रैल से मार्च तक जितना मालगाड़ी ने माल ढोया था उसको हमने पार कर लिया इस वर्ष कोविड के बावजूद। जबकि पहले 3-4 महीने में जब महामारी पीक पे थी, लॉकडाउन था, तब 70 मिलियन टन का शॉर्टफॉल था, 70 मिलियन टन। लेकिन उसके बाद लगातार मेहनत की, नई नई पॉलिसीज की, और आपको अध्यक्ष जी जान के खुशी होगी और आपके माध्यम से मेरे सभी गणमान्य सदस्यों को और देश को भी जान के खुशी होगी, सितंबर ऑनवर्ड्स
सितंबर से फरवरी तक 6 महीने हो गए और हम कोशिश करेंगे आगे भी वो क्रम चालू रहे। हर महीने जो फ्रेट लोडिंग हुई है वो भारत के 168 साल के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक लोडिंग इन 6 महीनों में हर महीने हुई। यानी अगर सितंबर 2020 देखें तो कोई सितंबर महीना ले लो इस साल के पहले, उससे अधिक सितंबर 20 में लोडिंग है। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीने मैक्सिमम लोडिंग एवर इन दैट मंथ इन 6 महीनों में कंसिस्टेंटली की। और इस कंसिस्टेंसी से मुझे उम्मीद है कि रेलवे आगे और तेज गति से एक कस्टमर इज किंग का जो हमने एक बीड़ा उठा रखा है। आजकल फ्रेट के लिए किसी को रेलवे स्टेशन के धक्के नहीं खाने पड़ते, रेलवे ऑफिसेज के धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको कुछ सामान पार्सल में भेजना हो, छोटा सामान हो, छोटा लॉट हो, किसान रेल से भेजना हो, आपको कुछ सामान मालगाड़ी से भेजना हो, तो आपको जूते नहीं घिसने पड़ेंगे, आपको कोई किसी की सिफारिश नहीं लगती है। आज सब ऑनलाइन होता है, पारदर्शी तरीके से आप बुकिंग करो, पैसा भी ऑनलाइन भरो, आपको कोई किधर धक्के नहीं खाने पड़े। हाँ, मजाक में एक मेरे रेलवे के अधिकारी ने मुझे कहा, साहब आप ये बोलते हो तो ठीक है, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए तो आदमी को स्टेशन आना पड़ेगा, सामान तो ऑनलाइन नहीं आएगा। पर सामान लोडिंग के लिए लाने के अलावा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया और आज ये सुविधा से लोग अपना सामान और ज्यादा रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो अनाज हो, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, चाहे वो सीमेंट हो, आयरन ओर हो, हर चीज में आज उद्योग जगत को दिखने लगा है, एमएसएमई सेक्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम रेलवे से सामान सस्ता भी भेजेंगे, टिकाऊ भी पहुंचेगा ठीक ठाक से और समय पे पहुंचेगा। और मैं समझता हूं आगे के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक पे कमीशन के कारण रेलवे के खर्चों का मॉडल बदल रहा है, उसमें हमें अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी पड़ेगी और ज्यादा सेवाएं एक्सपैंड करके रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें मैं जरूर आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, कैसे रेलवे के खर्चों का क्या मॉडल है। कुछ मान्य सदस्यों ने ऑपरेटिंग रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात की, वैसे मैं समझ नहीं पाया। एक तरफ बात हुई कि तो सेवा का काम है, इसमें तो देखना ही नहीं चाहिए कि ठीक से चले नहीं चले, और कुछ सदस्य कह रहे थे कि ऑपरेटिंग रेशियो देखो, पर हमने दोनों पे चिंता करी है। ये विशेषता है मोदी सरकार की, हमने सेवाएं भी बढ़ाने का बीड़ा उठाया, लेकिन साथ ही साथ रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने का भी, दोनों बीड़ा एक साथ है। मुझे याद है जब 6th पे कमीशन हुई थी, करीब मेरे ख्याल से 2007 और 9 के बीच में 6th पे कमीशन जब आई थी, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो सीधा 75% से बढ़ के 95% हो गया। 20% ऑपरेटिंग रेशियो डिटेरियोरेट हुआ था। क्यों? स्वाभाविक है, जब इतने लाखों एम्प्लॉयज की सैलरी एक साथ इतनी बड़ी बढ़ेगी और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक साथ तो कोई इतना रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। जब हम आए सरकार में तो अध्यक्ष महोदय ऑपरेटिंग रेशियो 94% के आसपास था, और उसके बाद 7th पे कमीशन आई। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा आंकड़ों से बताना चाहूंगा, और ये बात जरूरी है समझनी, क्योंकि ये दर्शाएगी कि रेलवे किस कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी इतना बड़ा निवेश भी कर रही है और इतने सारे सुविधा के काम भी आगे बढ़ा रही है। 2009 से 14 के बीच अध्यक्ष महोदय स्टाफ का कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए था, और 14 से 19 के बीच वो बढ़ के 65,000 करोड़। इस वर्ष 2021-22 में वो 65,000 से बढ़कर आज के दिन 92,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 27,000 करोड़ इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से पेंशन का आउटगो जो 38,000 करोड़ एवरेज था 9 से 14 के बीच, वो बढ़कर 54,000 करोड़ रुपए,
यानी इसमें भी 16,000 करोड़ की बढ़त। अब ऐसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ रेलवे स्टाफ और पेंशन में 1,46,000 करोड़ रुपए खर्चता है, लीज रेंट जो हम कैपेक्स करते हैं, जो लोकोमोटिव्स नए कोचेस वगैरह लेते हैं, उसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्चते हैं। तो 1,61,000 करोड़ तो फिक्स कॉस्ट है। यहाँ जो भी फाइनेंस समझते हैं उसको ध्यान आएगा, 1,61,000 करोड़ रुपए फिक्स कॉस्ट, जिसमें मैं कुछ बदलाव नहीं कर सकता। देश के लिए वो फिक्स कॉस्ट रेलवे के ऊपर बोझ है। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसमें मेंटेनेंस भी है, फ्यूल भी है, डीजल भी है, बिजली भी है, साफ सफाई भी है स्टेशनों की, इन सब अदर एक्सपेंसेस का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2014-15 में 54,000 करोड़ रुपए का अदर एक्सपेंसेस थे। ये सब जो मैंने अदर एक्सपेंसेस बताए, वो अगले इस वर्ष 21-22 में घटकर 48,000 करोड़ हो जाएंगे। यानी 7 साल बाद भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन फिक्स कॉस्ट, जिन वेरिएबल कॉस्ट पे हमारी कुछ नियंत्रण हो सकती है, हम थोड़ी बचाव कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसको एक्चुअली 7,000 करोड़ से हम कम कर पाए। 6-7,000 करोड़ से हम कम करने में सफल हुए 7 साल के बाद। और इससे ये भी दर्शाता है कि हमने महंगाई को भी नियंत्रण में रखा, अनाप शनाप खर्चों पे भी नियंत्रण लाए, और एक प्रकार से पारदर्शी व्यवस्थाओं से, जेम से खरीदना सामान, हर चीज में देखना कि इसकी जरूरत है कि नहीं है, अच्छे कोचेस और अच्छे लोकोमोटिव्स लाना जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, इलेक्ट्रीफाई करना ज्यादा से ज्यादा। अब आप अंदाजा लगाइए, इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ 600 किलोमीटर के करीब हर वर्ष होता था मोदी जी की सरकार आने के पहले, 600 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर प्रति वर्ष। इस वर्ष 5,500 करोड़ से 5,500 किलोमीटर से अधिक का विद्युतीकरण, मोर देन 5,500, यानी लगभग 8 गुना। कोशिश हमारी है कि 6,000 किलोमीटर तक जाए। और ये तेज गति से अलग अलग काम करने में हमारा विश्वास है कि जो हम यात्रियों को सेवाएं करने में देने में सफल हुए, चाहे वो स्वच्छता हो, ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन की स्वच्छता, ट्रैक्स के ऊपर स्वच्छता, 100% बायो टॉयलेट लगने से अध्यक्ष महोदय 4,000 टन रोज का मल जो ट्रैक पे गिरता था, 4,000 टन होता था। सोचिए पर्यावरण के लिए कितना खराब था। आपको याद होगा कैसी स्मेल आती थी, बांस आती थी एक जमाने में। आज आप कोई ट्रेन पे चले जाइए, कोई स्टेशन पे, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। हर स्टेशन पे हमने सफाई हो, अच्छे शौचालय हो, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो, ये पूरी तरीके से व्यवस्था खड़ी कर। अब आस्ते आस्ते दिव्यांगों के लिए भी स्टेशनों पे व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। प्रमुख स्टेशनों पे दिव्यांग जनों के लिए टॉयलेट में एक्सेस वगैरह की फैसिलिटी तो करने में हम ऑलरेडी सफल हुए। आपको सबको अपने अपने क्षेत्र में देखने को मिला होगा, चाहे वो फुटओवर ब्रिज हो, चाहे एस्केलेटर हो, चाहे लिफ्ट्स हो, इन सब सुविधाओं में भी कैसे तेज गति से गत 7 वर्षों में वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि एक माननीय सदस्य ने कोशिश की इस बात का, इसे तो मैं नहीं कहूंगा मजाक क्योंकि वो मेरी तरफ से बड़ा अच्छा हो जाएगा, पर बड़ा बिलिटल किया, बहुत छोटे उपलब्धि बताई कि 2 वर्षों में मार्च 2019 से अभी तक एक भी यात्री की ट्रेन की दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई। मैं समझता हूं ये बात तो हम सबके लिए आनंद की है कि हमने लोगों को सुरक्षित और सुगम सेवा दी और सफर दिया। किसी ने कहा कि कोविड में ट्रेन ही नहीं चली, इसके कारण हो गया। अब ट्रेनें कुछ समय के लिए रुकी, बाकी तो ट्रेनें शुरू होती जा रही हैं, सब सबअर्बन चल रही हैं, 80% मेल एक्सप्रेस शुरू हो गई हैं।
परंतु इसके पहले भी पूरा 2019 से 20 का वर्ष आखिर ट्रेनें पूरी चली, एक भी मृत्यु नहीं हुई। ये दूसरा वर्ष और मैं भगवान से आशीर्वाद चाहूंगा, प्रार्थना करता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, मेरे साथियों का, बड़ों का, कि इसमें हम सफल रहें, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए कीमती है, हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत, उसका जीवन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और ये 13 लाख, 12.5-13 लाख कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, ये अपने आप नहीं होता है। ये दिन रात सेफ्टी के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो ट्रैकमैन ट्रैक चेकिंग कर रहा है, चाहे लोको पायलट नजर एकदम तेज रख रहा है कि ठीक से ट्रेन चले, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो और या चाहे वो सिग्नलिंग का अफसर हो, मैकेनिकल कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिकल कर्मचारी हो, एक पूरे व्यवस्था की संयुक्त जिम्मेदारी को उठा के अपने कर्तव्य का पालन करने का जो संकल्प है, उसके कारण ही ये हो सकता है। और मैं वास्तव में उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो दिन रात एक करके रेलवे को सुरक्षित रखते हैं, रेलवे की सफर कैसे हमारे यात्रियों की अच्छी हो उसकी चिंता करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई विषयों पे एक रूट कॉज एनालिसिस करके उसका समाधान किया, गहराई से समस्या के जड़ में जाके। समस्या कई बार तो ऐसी थी कि जब गहराई से देखो तो बड़ी सरल उसका उपाय भी मिल जाता। एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, सिर्फ सोच बताने के लिए, कैसे रेलवे की सोच बदली है। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसद कई बार कंप्लेन करते थे कि खासतौर पे गर्मियों के दिनों में कि ट्रेन में पानी खत्म हो जाता है। आपको ध्यान होगा, पहले कई बार होता था कि बाथरूम में पानी खत्म हो गया या वॉश बेसिन में पानी खत्म हो गया। अब उसकी रूट कॉज एनालिसिस की तो अध्यक्ष महोदय ध्यान ये आया, जब कभी किसी वर्ष ये पाइप लगे थे जिससे वाटरिंग होती है, वाटर टैंक्स भरे जाते हैं, वो पाइप एक तो छोटे थे, दूसरा कुछ पाइप जंग पकड़ गए थे, तीसरा मट्टी वगैरह अंदर लगने से पाइप का डाया और कम होते गया, तो बड़ी धीरे गति से पानी अंदर भरा जाता है। दूसरा, ये पाइप बने थे जब स्टीम इंजन चलती थी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बात का कि स्टीम इंजन के समय तो ट्रेन आधा घंटा रुकती थी, तो आधे घंटे में पानी भर जाता था। आस्ते आस्ते डीजल आई, अब इलेक्ट्रिक आई, तो ट्रेन तो 2-3-4 मिनट रुकती है, उतने समय में पानी भरता नहीं है। तो हमने एक मुहिम चलाई देश भर में, जहां जहां वाटरिंग होती है वहां पे पाइप पड़ी की, नोजल्स ठीक किए, उसका मेंटेनेंस प्रोटोकॉल किया। और साधारण था, अब ये समस्या हमारी हेल्पलाइन, कंप्लेन लाइन में कोई किधर हमें आती नहीं है कि पानी खत्म हो गया, और अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। किस स्टेशन पे पानी भरा गया, क्यों नहीं भरा गया पूरा, कौन अफसर जिम्मेदार है, कौन कर्मचारी जिम्मेदार है, एक्शन लिया जाता है। और एक्शन तो इस हद तक है अध्यक्ष महोदय कि अब आज के दिन हर ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर हो, मेल एक्सप्रेस हो, फ्रेट की ट्रेन हो, हर ट्रेन आज मोबाइल फोन पे देखी जा सकती है। इस समय 6:30 बजे 6:32 पे कौन सी ट्रेन कहां पर है, इस समय आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। और इसी के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय, एक तरफ फ्रेट ट्रेन की स्पीड डबल तो हुई, अभी साधारणतः फॉग के दिन छोड़ के, फॉग के दिनों में कई, इस बार तो ज्यादा फॉग आई है, पिछले वर्ष कम थी, इस बार फॉग के दिनों में, और ये मैं अपने मोबाइल फोन पे अध्यक्ष महोदय रोज मॉनिटर करता हूं। कल की जानकारी मैं अभी बता सकता हूं कि कल कितनी ट्रेन समय पे चली, समय पे पहुंची, और एक एक ट्रेन जो नहीं पहुंची उसका कारण क्या था। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सदन को जानकारी देता हूं, कल का पोजीशन मुझे सुबह 9 बजे आ जाती है। कल अध्यक्ष महोदय मेल एक्सप्रेस ट्रेन 1026 चली थी, जिसमें से 1013 राइट टाइम स्टार्ट हुई। 1013
राइट टाइम पहुंची 992, यानी कुल ट्रेन जो डिले हुई मात्र 34, पूरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन पूरे रेलवे में मात्र 34 ट्रेन डिले हुई, मतलब पंक्चुअलिटी लगभग 97%। उसमें भी 14 ट्रेनें 30 मिनट के अंदर, 9 ट्रेनें 1 घंटे के अंदर, और सिर्फ 11 ट्रेन 1000 में से सिर्फ 11 ट्रेन 1%, 1 घंटे से ज्यादा। और अध्यक्ष महोदय, हर ट्रेन का, ये 34 की 34 ट्रेन का कितने समय चली, कितने बजे पहुंची, कितना लेट हुई, उसका कारण क्या था, और हर रोज इन कारणों के ऊपर निगरानी रखी जाती है, देखा जाता है इसको कैसे सुधार करें। इस प्रकार की पारदर्शिता भी और निगरानी रखने से मैं समझता हूं कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा है और कस्टमर्स को सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। स्टेशन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ आलोचनाएं की गई। अध्यक्ष जी, हमने अपना पैसा खर्च के बहुत सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया है देश भर में। कई माननीय सांसदों ने अनुभव भी किया होगा। कई स्टेशंस में अच्छी लाइटिंग, तो लगभग सब मेन स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह ब्राइट एलईडी लाइट्स लग गई, टॉयलेट सुधर गए, स्वच्छता अच्छी हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए। हबीबगंज स्टेशन का भी किसी ने आलोचना की, मैं तो हैरान हूं। आखिर कोई व्यक्ति आके वहां 100 करोड़ से अधिक खर्च किए। मैंने बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस कल लोकसभा डिबेट के बाद कल शाम को ही हबीबगंज का रिव्यू किया। कल शाम को वो स्टेशन देखने लायक है अध्यक्ष महोदय, इतना सुंदर कर दिया उस पूरे स्टेशन को। नए सबवेज बन गए, ऊपर कॉन्कॉर्ड्स बन गए, अराइवल पैसेंजर्स अलग जगह से निकलेंगे, ट्रेन में जाने वाले पैसेंजर्स अलग अंदर आएंगे, तो कभी दोनों का क्लैश नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से लोग आगमन कर पाएंगे। अगर निजी क्षेत्र के कैपिटल से, निवेश से हम ये सुधार कर पाते हैं, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ? स्टेशन तो हमारा ही है, स्टेशन तो आप सबका है, इस देश की संपत्ति है। कोई उसको बेचा नहीं है, कोई उसका मालिकाना हक नहीं बना। उसने सुविधाएं बनाने में एक निवेश किया और एक अगले 30 वर्षों में उस स्टेशन से जो कमाई करेगा, और वो कमाई भी आप पैसेंजर्स को सुविधा देके ही करेगा ना, उससे वो इस निवेश का पैसा मेकअप कर लेगा। उसका ब्याज, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी होगी अच्छी तरीके से मेंटेन करना। तो मैं समझता हूं कि समझदारी का काम है कि स्टेशन सुधरे, जो जमीन हमारे पास है उसका अच्छी तरीके से उपयोग हो। ऐसे ही मैंने कल लोकसभा में भी ये बात रखी, मैं आप सबके समक्ष पूछना चाहूंगा, जब सड़क बनती है, सड़क किसकी होती है? देश की है, सरकार की है। सड़क पे गाड़ियां सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती है क्या? सबकी गाड़ियां चलती है, हमारी निजी गाड़ियां भी चलती हैं। तो अगर रेलवे ट्रैक पे कुछ अच्छी निजी गाड़ियां जो अच्छी सुविधा दे, हजारों करोड़ रुपए खर्च के लोग लाएं, अति आधुनिक विश्व स्तरीय ट्रेनें आए हमारे ट्रैक्स में, तो उससे पैसेंजर्स को लाभ होगा या नुकसान होगा? स्वाभाविक रूप से अच्छी सुगम यात्रा होगी, तेज गति की ट्रेन्स होंगी, कंफर्टेबल जर्नी के साथ उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे के पूरा यंत्र बैठेगा कि वो ठीक से चले, ठीक से प्राइसिंग हो, हर प्रकार की सुविधा ठीक से दे। लेकिन ये पुरानी सोच में रहना, और एक माननीय सदस्य ने इसकी बड़ी आलोचना की, उनकी खुद की विचारधारा की जो सरकार हमारे से सटे हुए एक देश में है, चलती है, उस विचारधारा की सरकार ने भी अपने देश में पूरी तरीके से प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके देखिए सुविधाएं कहां से कहां पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो वही विचारधारा है जो उस देश को आगे लेके जा रही है, और हमारे देश में उस विचारधारा को थोप के पीछे लेके जाने का काम करने का सुझाव कुछ लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं समय आ गया है कि अति आधुनिक व्यवस्थाएं रेलवे में आए, लोगों को
अच्छी सुविधाएं मिले, और इसमें किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे भारत की संपत्ति है, आगे भी रहेगी, इसका कोई निजीकरण कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा निवेश बढ़े, निवेश ज्यादा आए और देश की सेवा करे, मैं समझता हूं उसमें सरकार भी अपना पैसा डाल रही है। और जैसा मैंने बताया, पहले के निस्बत आज 5 गुना सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है तो उससे कई ज्यादा बढ़ी है। और नेशनल रेल प्लान को जब हम देखते हैं तो 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता दिखती है, उसमें निवेश लगेगा हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का। हमने सोचा है कि जैसे बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद आएगी, ऐसे 6-7 और रूट आइडेंटिफाई किए हैं। जो जो राज्य सरकार सहयोग करेगी, जमीन उपलब्ध कराएगी, उधर ये हाई स्पीड रेलवे रूट्स भी बनाएंगे। अब इन नए रूट्स को अगर प्राइवेट कैपिटल आके तेज गति से बनाए और सेवा दे तो उसमें देश का कैसे नुकसान होगा, मेरी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं नई व्यवस्थाएं देश के कोने कोने तक पहुंचेंगी, नई व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था को भी बल देंगी, लाखों लोगों को मजदूरी और नौकरी देगी। और इसमें हम सबको एकजुट होकर सभी राज्यों को परसुएट करना पड़ेगा कि वो भी अपना शेयर जो प्रोजेक्ट का है वो दे। अब आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र बार बार कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स का स्पीड क्यों नहीं है। मुझे जमीन मिल जाए और जो आंध्र प्रदेश ने कमिट किया है, जो शेयर ऑफ देयर सपोर्ट, वो मिल जाए तो तेज गति से प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमारे राजस्थान में स्थिति देखें तो लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जिसमें राज्य सरकार ने सहमति दी थी कि हम इसमें आपको जमीन देंगे, आप 50% शेयर देंगे, उससे मुकर गए, निवेश नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है। गुजरात में लगभग 95% जमीन आ गई, महाराष्ट्र में 24% जमीन है। अब हम क्या करें, उस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा बनाना शुरू तो हमने कर दिया गुजरात का पोर्शन, पर अगर मुंबई का टर्मिनल मिल जाए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और जमीन मिल जाए तो पूरे रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका महाराष्ट्र का हिस्सा महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को गति देगा, गुजरात में देगा, और ये एक रोल मॉडल बनेगा। आखिर विश्व की सबसे सेफेस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी जापान से लाई जा रही है, उसका पैसा जापानीज गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट पे, 0.1% इंटरेस्ट पे 50 वर्ष का लोन पहली बार भारत में आया है, पहली बार। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाए हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी है, उसके फलस्वरूप रेलवे को बहुत बड़ी सौगात मिली है कि इतने सस्ते पैसे से बुलेट ट्रेन लगेगी, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, उससे हम देश भर में अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। अब हमारी सोच एक लॉन्ग टर्म विजन है, दृष्टिकोण छोटा मोटा नहीं है कि आज वोटरों को लुभाने के लिए अनाउंसमेंट कर दो। कैसे देश को मजबूत ताकत बनाएं, कैसे देश की व्यवस्थाओं को एक लंबे अरसे के लिए अच्छा बनाएं, उस सोच के साथ ये सरकार रेलवे में काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस तेज गति से काम करने में सभी राज्य सरकारें भी हमारी मदद करेंगी। कोई भी दल की पार्टी, कोई भी पार्टी की सरकार हो कोई प्रदेश में, मैं समझता हूं विकास के कामों में हमने एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन सरकार चुनी गई 2014 में और फिर 19 में ये फिर एक बार दोहराया था हम सब के लिए, और हम सबको निर्देश दिया था कि चुनाव तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, चुनाव के बाद हम 135 करोड़ के देश के प्रतिनिधि हैं, 135 करोड़ का देश हमारा है। बिना भेदभाव के हर राज्य की जरूरतें, हर राज्य के प्रोजेक्ट्स पे रेलवे काम करती है, आगे भी करती रहेगी।
सुविधाओं का हक 135 करोड़ भारतवासियों का है, परंतु ताली दो हाथ से बजती है। और मैं समझता हूं जो हाउस ऑफ एल्डर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आज स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हम सब बैठे हैं, अगर हम इसमें थोड़ा लग जाएं, थोड़ा मदद करें, थोड़े अपनी अपनी राज्य सरकारों से को प्रोत्साहित करें कि वो मिलके रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने में, उनके प्रोजेक्ट्स को तेज गति देने में अगर हम सब मिलके काम करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय रेल का सफर हवाई जहाज के सफर से और अच्छा सुविधाजनक हो जाएगा। इस देश में यात्री प्रिफर करेंगे एक अच्छी ट्रेन सर्विस, सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल, कम समय पे ले जाएगी यात्रियों को, सिटी सेंटर से सिटी सेंटर ले जाएगी। ऐसी सुविधाएं बनाने की जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, और मैं समझता हूं रेलवे को मोदी जी से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं पहचान सकता। उन्होंने तो अपना पूरा बचपन रेलवे स्टेशन पर बिताया, उन्होंने गहराई से रेलवे को समझा, गहराई से रेलवे की चिंता करते, और उसी के फलस्वरूप रेलवे पे उनका इतना ध्यान रहता है, इतनी चिंता रहती है। और आज 2,15,000 करोड़ का कैपेक्स का बजट जो सेफ्टी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा, जो आज 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए बजट में आवंटन किया है सिर्फ भारतीय रेल के लिए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हम सब मिलके इसकी सराहना करें, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें और आगे चल के इन प्रोजेक्ट्स को और गति देने में हम सब सहयोग करें। इस आशा के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि एकजुट होकर हम इस डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज 2021-22 का समर्थन करें, स्वीकार करें और लोकसभा को फिर भेजें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्लीज 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 प्लीज। प्लीज एक, वैसे तो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था एक एक विषय का जवाब मैं व्यक्तिगत तौर पे दूंगा, पर ये कई बार ये विषय आप उठाते हैं। मेरे हिसाब से ये आपने पूछना पड़ेगा उस समय के जो लोग उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बना रहे थे कि उन्होंने क्या कोई फिजिबिलिटी स्टडी करी थी, किस प्रकार से उन्होंने उसमें, और आप देखेंगे तो उसमें लिखा है एग्जामिन द फिजिबिलिटी। और आज भारतीय रेल के पास पर्याप्त मात्रा में जो फैसिलिटीज हैं, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिस पे आप सबने टैक्स भरा है उस पैसे का हम दुरुपयोग करें। तो स्वाभाविक रूप से जो सुविधाएं जरूरत है वही सुविधाओं पे निवेश होना चाहिए। और आज कोच मैन्युफैक्चरिंग की इतनी पर्याप्त सुविधा भारत में है। आपकी जानकारी के लिए LHB कोचेस, 1 मिनट और लूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कोच के विषय उठाया। LHB कोचेस 2014 में जब हमारी सरकार आई 2,500 से भी कम थे, लेस देन 2,005। आज बढ़ के वो 25,000 के करीब हो गए, 25,000। और LHB कोचेस सेफ है, बड़े अच्छे कंफर्टेबल जर्नी देते हैं। पर पता नहीं क्यों देश ICF कोचेस बना रहा था। हमने 2018 में ICF कोचेस बनाना पूरी तरीके से बंद किया। चाहिए महंगे पर अच्छे कोचेस बना रहे। और रही बात कैपेसिटी की, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी थी, आज भी किसी शायद सांसद ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय 2014 तक, फैक्ट्री 2008 में शुरू हुई, बनी 11 या 12 में, 2014 तक वहां स्वयं का एक भी कोच नहीं बना था, नॉट वन। कपूरथला या चेन्नई से आते थे कोच, यहाँ रंग लगता था, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग होती थी और बताया जाता था MCF ने प्रोडक्शन कर दिया मॉडर्न कोच फैक्ट्री। आपको जान के खुशी होगी, सदस्य ने कहा भी कि 711 कोच बन रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विजिट किया, उनको प्रोत्साहित किया दिसंबर 18 में शायद, तो 18-19 की प्रोडक्शन डबल कर दी हमारे वहां के कर्मचारियों ने, 1425 कर दी। और फिर 19-20 में पिछले वर्ष बढ़ा के 1900 से ज्यादा कर। आप कल्पना करिए सर,
कि एक रेल कोच फैक्ट्री जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 कोच है, 1000 कोचेस, रेलवे सरकारी फैक्ट्री 1900 से अधिक कोचेस बनाती है, यानी ऑलमोस्ट 200% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रेल कोच फैक्ट्री ने किया, जिसके कारण आज पर्याप्त मात्रा में देश में रेल कोचेस बन रहे हैं। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोक सभा, सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 17th of March 2021, passed the Appropriation Number 2 Bill 2021. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of the Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the Appropriation Bill Number 2, 2021 on the table. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 18th March 2021.